but I cannot forget the motivation given by the Ganesh Hegde sir for this institution as a principal of this institution. I'm very happy that Dr. Ganesh Hegde is always with this institution. And similarly, I heard about Dr. Narendra Chautalia ji. चौटाला जी नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ इस तरीके से जुड़े। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इस क्वालिटी जर्नी में ये कॉलेज पहले B+ था, आज A+ ग्रेड का कॉलेज है। और मुझे पिछले साल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और डेप्यूटी डायरेक्टर उन्होंने 6-7 इंस्टीट्यूशन का जिम्मा सौंपा कि ये 6 इंस्टीट्यूशन का ग्रेडेशन अच्छा होना चाहिए और इनको मोटिवेट करो कि वो एक्रेडिटेशन के लिए जाए। सो रियली वो सभी इंस्टीट्यूशन को मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंस्टीट्यूशन ने भी जर्नी एक मीडियम इंस्टीट्यूशन से शुरू किया था और आज अच्छे ग्रेडेशन पे गया है। तो आप लोग भी इसको मोटिवेशन की तरीके से लेकर आप भी पहले स्टार्ट द जर्नी फॉर द असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। And if the result is not, it is not aligned with your thoughts, don't bother. Just go for the assessment, and I hope you all will get a very good results, and you will get a confidence in the society that your college is assessed and accredited. Thank you very much. Thank you, Ganesh sir, once again. I am thankful to all the participants for joining this webinar. Thank you very much. Thank you, sir. We are honored to have Dr. Ganesh Hegde with us as a keynote speaker. Dr. Hegde is advisor of NAC Bengaluru, is an eminent personality who has committed himself to the realms of higher education. He is an eminent educationalist with a strong heritage of professional expertise. In 1996, he joined NAC and is presently acting as an advisor, contributing to the counseling with unflinching devotion. He was instrumental in bringing out the manuals, guidelines, and publications in the initial years of NAC. His career is adorned with remarkable performances. He has been elected as Board of Directors for International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education in the year 2013. He has organized many workshops on accreditation and assessment, and for different levels for principals and faculty members. He has conducted several assessors training programs at NAC for vice chancellors, professors, and principals who will visit the higher education institutions NAC peer team. He has successfully coordinated more than 900 institutions of higher learning for NAC process of assessment and accreditation. I am elated, fortunate, and privileged to invite such an eminent educationist with a strong heritage of professional expertise, Dr. Ganesh Hegde sir, for the keynote address. I welcome you on board, sir. Welcome, sir. Over to you. Thank you, madam. Hope Sheetal madam, I am audible. Yes, sir. Kindly make the host to make me to share my screen so that I will share my presentation with you. Yes, sir. Sure, sir. Yes, sir. You can share the. Hope the screen is visible to you. Yes, sir. Yes. Full screen is coming. Huh? Yes, sir. Thank you. मैं सबसे पहले सबको हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। और कार्यक्रम का प्रारंभ करने का पहले मैं सभी गुरु वंदना करना चाहता हूं सबको, जो गुरु लोग हैं आज का कार्यक्रम में उनसे प्रणाम करता हूं। और ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
एकं नित्यं विमनजमचलं सर्वादिसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सभी प्राचार्य गण को मैं नमन करता हूं। आमच्या महाराष्ट्र का लोक कॉलेज प्राचार्य का और आचार्य गणों का स्वागत करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। आज का इस कार्यक्रम में कॉलेज का प्राचार्य डॉक्टर अंजन नायडू जी, धोते बंधु कॉलेज में आप प्रिंसिपल है, डॉक्टर नरेंद्र छोटाले जी जो पुराना डायरेक्टर रह चुके हैं, डायरेक्टर of the KCG, which is called as a Knowledge Consortium of Gujarat, and also the principal of the Rajkot Science College. And I also take this opportunity to invite all the participants, Dr. Arvind Khatre ji, Dr. Sheetal Banerjee ji, Dr. SP Kapgade Saab, Dr. Eskar Chopne Saab, and all participants. Today, let us discuss something about how to improve the college and how to improve the quality of the institution, quality of the individual, and quality of the outcome of the student. जो स्टूडेंट है वो हमारा कॉलेज से जो बाहर आ रहा है वो कॉलेज के लिए क्या कर सकता है और सोसाइटी में क्या कर सकता है। जब भी सपोज मैं कापगटे साहब को पूछूंगा व्हाट यू वांटेड टू बिकम, then he will say that one, I wanted to become a vice chancellor, I wanted to become a good academician, or if you're teaching the good physics, I want to become a good teacher in the physics. Now, a vision always makes you to think about how you would like to communicate. The institution would like to communicate to the others what they would like to do in the coming years and the futuristic view. This vision statement makes by the NACS is that to make the quality as a defining element of higher education in India through a combination of a self and external quality evaluation. सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जो है जो आप स्वयं अध्ययन करके नैक के लिए भेज रहे हैं, जो नैक कर रहे हैं वो एक्सटर्नल क्वालिटी इवैल्यूएशन। एक्सटर्नल क्वालिटी इवैल्यूएशन में IQAC भी आता है, NAAC भी आता है और मे बी ISO 9000 or any other accrediting agency like NBA or IEEE or ABET or any various bodies will be there for international accreditation also. But institution should prepare a statement which should be short, simple and specific. Suppose if your college is science specific subjects are there, then you have to make the science temperament. And for that one, what you are giving and what you are making, that is more important. For example, if I should say, suppose Grahana Kal mein, how you have to view the solar eclipse. For the scientific temperament, what you will be doing, whether it is a COVID-19 situation or it is anything, science will have a lot of say in the quality of the life. Thomas Edison long back has said, embrace what you do not know, especially in the beginning, because what you do not may become your greatest asset. जो मेरे को पता नहीं है उसके लिए मैं खोजता रहता हूं मैं क्या सही हूं क्या गलत हूं। वैसे ही कॉलेज also think about it, what they would like to know about the accreditation. Accreditation is a byproduct of the quality aspect what institutions does in the years to come. Now, for applying to the NAC, you need IAICT certificate, you need an email ID, and you need a mobile number. I request all institutions and all the coordinators, आप अलग अलग कॉलेज में आप कोऑर्डिनेटर रहेंगे या तो आप प्रिंसिपल होंगे या तो आप फैकल्टी होंगे, जो भी हो आप एक्रेडिटेशन के लिए 1 साल का बाद जाएंगे, 6 महीने का बाद जाएंगे या तो 3 महीने का बाद जाएंगे, फिर भी आपको नैक का हायर एजुकेशन पोर्टल में रजिस्टर करने से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सपोज मान लीजिए शीतल जी वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन टू द नैक, so for that one there is a platform is available
from the NAC. If you register in the NAC portal, you can ask anytime the question to the NAC. What is needed for IIQA? IIQA के लिए जैसा हमारा डॉक्टर अंजय नायडू साहब ने बताया, the college has already gone for the 3 cycles of accreditation. Now, for going for the accreditation is a continuous journey. What you need is that present affiliating university approval, and if you are running MBA, MCA program, then AICT approval is required. AISH certificate is required. जो आपने सपोज मान लीजिए कॉलेज के लिए होते तो C63021 ऐसा करके जो नंबर आता है, that number you have to provide with a certificate to the NAC. Suppose this college जो दोते बंधु कॉलेज है, 3rd साइकिल के लिए जा रहे हैं, तो previous AQR to be given. Previous 5-year AQR has to be given. If you are going for the 2021 June, if you are going for accreditation, that means 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16. So 5 साल का डेटा देना पड़ेगा, and you need to submit the previous 5-year AQAR. Undertaking has to be given, and also self-declaration. Self-declaration क्या होता है? Self-declaration is stating that आपका पास BA, BSc, BCom है, तो आप उस कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम जो कर रहे हैं, whether it's a 3 years, whether it's a 2 years, whether it's a permanent or what to call temporary affiliation, you have to give. You need to give the undertaking by the head of the institution, and also the IP address. IP address क्यों चाहिए? When you upload the document to the NAC in the portal, so NAC can fetch the data from your IP address. So whenever you upload the information, it will come to the NAC, so that there is a connect between your IP address and the NAC. So that is the reason IP address is required, so that the authenticated data which come from your institution is correct. What we request to the institution is that kindly go through the nac.gov.in and go to the scroll down and go to the apply online. Once you apply the online, then you will be able to see here the lot of what to call UG, PG and standard operating procedure, extended profile and data templates are available. So kindly download all the things from the NAC website. आप क्या कर सकते हैं? आपका इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट में एक NAC आइकॉन क्रिएट कर दीजिए. वो NAC आइकॉन से क्या होगा? Whatever the information you wanted to provide to the NAC, which you can keep, or which you does not want to share with the public also, you can hide that information, but the information may be available to the intranet. So that information you can retrieve at any time of that thing, so that coordinator बदल सकता है, principal बदल सकता है, मगर website नहीं बदलेगा. So website में जो भी information है, it will be available to the college. Now उस data में आप validity period का बारे में, AQR का बारे में, certificate का बारे में और mentor mentee का बारे में, all things you can keep it with you. Now if you register in the NAC portal, what is the benefit? The benefit is at any point of time, whether it is a morning or evening or an afternoon, you can ask any question to the NAC. That support help desk is available. In the support help desk, you can ask any question to the NAC. NAC will reply within 24 hours to the 48 hours. IQAC can submit the IIQA. That means, what is IIQA? Institutional Information for Quality Assessment. This is the word, like a student is applying to an application form. This is an application form to the NAC. This will be accepted by the NAC or rejected by the NAC within 15 days. SSR submission has been given for 45 days. And in the 45 days, मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, 45 डेज नहीं है, पहले 3 महीने पहले या तो 4 महीने पहले ही आप पूरा तैयारी करके रख दीजिए, उसका बाद ही आप IIQA करेंगे, क्योंकि एक बार आप इनसाइड दी
NAC process, timeline is more important. आपके लिए भी 24 घंटा है, मेरे के लिए भी 24 hours is there. But we have to work within that time, how we will be doing the work. Data validation and verification will be done by the NAC within 21 days. And announcement after that, the DVV will be done within the 28 days. That means 21 plus 7 days. Finally, it is a 28 days. We will reply to you. Due to COVID-19 situation, NAC is also extending sometimes to the colleges whenever the request comes from the institution. Peer team visit normally will be completed within 60 days. That means within 2 months, you have to complete the on-site visit. After the on-site visit, the NAC will declare the result within 30 days. That is how the timeline has been made. Finally, just to tell you, from the 120 days to the 180 days, the result should be declared. So that maximum 6 months period, we should complete whole process. That is how the NAC is working on. There are 7 criteria are there. आपका 7 दिन है, 7 रंग है, सप्तर्षि मंडल है, and in your face also there are 7 are there. 2 आंखें है, 2 कान है, 2 nostrils है, but एक मुंह है. So with this 7 makes a lot of difference in the life. The 7 criteria: curricular aspect, teaching, learning, evaluation, research, innovations and extension, infrastructure and learning resources, student support and progression, governance, leadership and management, and institutional values and best practices. Now, what are the new things which NAC has introduced? NAC has introduced student satisfaction survey, innovations ecosystem, alumni engagement, institutional values and social responsibilities, and institutional distinctiveness. आप पूछेंगे alumni engagement में कैसे करना है? No, I just would share in the 6th criteria. I will share with you the alumni engagement. But just to give you one hint that the एक दिन एक on-site visit में chairman has asked the principal madam, आपका जो पुराने का छात्र जो है कब मीटिंग होता है? Then the madam said, no sir, साल में 2 बार होता है. So what are those days? So madam said August 15th and January 26th. So these are the 2 days are fixed for the alumni meet. So that your alumni is the one which gives a lot of emphasis and also the support to the colleges, and they will also give you the lot of ideas, including the placement, infrastructure, and also the student support system, and also the scholarships to the students. Many times it has been given by the alumni, so that alumni runs most of the new initiatives in the institutions. Now, when you look into the metrics wise, affiliated colleges, there are 31 key indicators or 32 key indicators. यूजी के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम नहीं है, मगर पीजी के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम है. Now, percentage wise, if you calculate the qualitative metric and the quantitative metric, जो पूरा total questions, NAC would like to make it less than the 100. That is the reason NAC has reduced most of the questions from the self-study report and made as a crisp, what to call question, whichever is the focused one. 93 metrics are there for a UG and 96 questions are there for the PG. Now, out of the 96 questions, 60 questions comes as a quantitative, 36 questions comes as the qualitative. For a UG, there are 3 questions are very less because innovations ecosystem is not that. Those questions are less in the UG colleges. Now, Dr. Anjan Naidu will be asking one question. What is the question? Sir, quantitative क्या होगा, qualitative क्या होगा? In a simpler way, just to tell you, those requiring the quantifiable fact. Suppose मान लीजिए आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पहले हाइट, वेट और बॉडी चेकअप करते हैं, सो उसका बाद आपका डॉक्टर का मिलना जुलना होता है. NAC is also making in a similar way that the quantifiable facts have been taken into consideration during the data validation and verification process.
but the qualitative metric will be evaluated by the peer team during the on-site visit. In a simpler way to tell you that the quantitative metrics are wherein the formula has been given: average pass percentage of the student, percentage of faculty having the PhD, number of students undergoing the project-based learning. So these are all numbers will be measured at a particular time, which is called the data validation and verification process. Now, qualitative metrics are the one wherein the institution will give the descriptive data. The descriptive data is the 500 word will be written by the college. हाँ, उस समय क्या करना चाहिए? आप मेरे को से प्रश्न पूछेंगे, सर देश में इतना भाषा है, गुजराती लोग गुजराती में बात करते हैं, मराठी लोग मराठी में बात करेंगे, तमिल लोग तमिल में करेंगे, वेस्ट बंगाल का लोग जो है बंगाली में बात करेंगे. नाउ क्वालिटेटिव मेट्रिक हैज टू बी रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज. हाँ, पहले अपना लैंग्वेज में होता है, थोड़ा सुधार करके उसको इंग्लिश लैंग्वेज में इन अ बेटर वे यू हैव टू present it to the committee. Now, in the 7 criteria, 34 key aspects are there for universities and autonomous, 32 and 31 key indicators are there for the PG and the UG colleges. Now, all the metrics, whether it is a qualitative metric or a quantitative metric, all things should be measured in the 0 to 4 scale. Now, Jagdish ji mere ko पूछेंगे, sir, how it will be validated? Everything will be validated on the data verification and the validation point, or it may be validated through the accreditation process. Now, compliance to the UGC, compliance to the state government, compliance to the affiliating university is mandatory. Kindly read the manual from the NAC website, data template, download all the standard operating procedures, and also the Excel sheet. Accordingly, you prepare. What is an extended profile? Now, the Dr. Banwankar Saab will be asking one question. Sir, how you will define this extended profile? Extended profile is nothing but if a question comes more than the 2 times, 3 times, or 4 times in a matrix or in an overall matrix, then this will be considered as an extended profile. For example, number of courses, number of programs, number of students, number of seats earmarked for a reserve category, number of outgoing students, number of full-time teachers, number of sanctioned posts. These are all numbers are there which will become as an extended profile. Now, Dr. Yogita Dekwar madam will be asking, sir, how to write an executive summary? Now, executive summary will be written by the college with the introductory note, criteria-wise summary, strength, weaknesses, and opportunities and challenges, and also any additional information will be given. Now, quickly, I will go through the criterion-wise how your institution can write a good report, so that in the coming 5 months to 6 months down the line, you will be able to prepare a good self-study report. Curricular aspect has got 100 mark, curriculum planning and implementation, academic flexibility, curriculum enrichment, feedback system. So these are 100 marks are there. In the 100 mark, so further it is divided into 20, 30, 30 and 20. Now further the 20 has been divided into the qualitative metric and the quantitative metric. Now, for example, ensuring the effective curriculum delivery with a well-planned and documented process is one of the questions is there. Adheres to the academic calendar, including the conduct of the continuous internal evaluation is one more question is there. Choice-based credit system or elective system is another question is there. Professional ethics, gender, human values, and environmental sustainability into the curriculum is one of the question is there. Percentage of courses, project work, field work, and internship is there. Now, you may be asking one question, sir, how the internship can be done? Now, when you look into the institution, for example, you are a faculty member in a political science. Now, Jagdish ji is teaching in the Dote Bandhu College in the political science, let us say.
how can we make the internship in political science? Suppose you make a small competition whether democracy is good or how to improve the democracy. Then you make that elocution competition. 3 students will first, second, and third will come. So you send them to some political party for the internship. Then they will learn how political parties will be there, how political science is there, and how political will become related to the science. Everything will be taught during the internship. Internship will make the person to learn about how practical life is there. Project-based learning, fieldwork thing, whether it is a microbiology, biotechnology, biochemistry, or it may be the sociology or social work, there is a field work will be there. So you can look into the various subject, and accordingly you can work out how project work and field work can be implemented. Number of students undertaking those project is also another thing which NAC is asking. Then the feedback collected, curriculum enrichment with the graduate employability also has been asked. Now I will just share with you what is a course, what is a program. Program is BA, BSc, MA, MSc is a program. What is a course? Course is a paper or a subject in a specified number of credit. It may be 2 credit, or it may be 4 credit, or it may be 8 credit. Depending upon the choice-based credit system, you will be making the number of credits as per the university. For example, history, you will have history of India, cultural transformation, colonization and nationalism, or modernity and cultural transformation is one of the things. In the NAC glossary also has been put on the in the standard operating procedure also, 1 hour lecture per week equal to 1 credit. 2 hour practical classes per week equal to 1 credit. This is as per the choice-based credit system which has been implemented by the UGC. This is from that document which I have taken. Credit for a practical could be proposed as part of the course as a separate practical course. Now, coming to the program, suppose MCOM program, core course will be there, elective course will be there, open elective will be there. Now, Dr. Jagdish ji will be asking, Jagdish Jangare Saab will be asking you one question. Sir, how you will define the core elective and the open elective? Core courses are the one wherein you will have maximum number of credit. For example, in MCOM, 60 credits are there for the core course. Elective course, there are 30 credits are there. Open elective, there are 8 credits are there. Now, in the core paper, you will have semester 1, 2, 3, 4. In the elective course, it will be elective to that particular program. Open elective is the one wherein whether it is a MA, MCOM, MSc student can take, suppose, Indian ethos and leadership, life skills and communication. Any student can take up, whether it is a BA, MCOM student or a MA student or MSc student. So every institution need to bring out or has to design program outcome, course outcome, and learning outcome. In the next slide, I will just share with you about those details. This is one of the things which I would like to share with you. The course credit scheme can be done by the institution along with the in line with the affiliating university. Semester wise details you can give, and list of electives you can give. It may be accounting, it may be HRM, it may be finance, it may be marketing in the MCOM. You can look into it. Selection of the open electives depends upon the institution to institution, depending upon the teachers' availability. Now, for example, Dotebandhu College may be having some of the B vocational educations also. And you can also create a small certificate course, diploma courses also for the benefit of the student. For example, food science, you can have some course. Software development, refrigeration and air conditioning, travel and tourism, animation, interior design, beauty and wellness. Depending upon the requirement of the student capacity and capability, you can decide what course can be done in the college. If it is a BO program, UGC suggested that
If a student completes 1 year, then he can get a 1-year diploma. Advanced diploma will be there for 2 years. And if he completes the degree, then he will get the Bachelor of Vocational Education. In the NEP 2020 also, the same thing has been designed for the flexibility in the curriculum. Now 70-30 internal mark and the external mark is available, as you are all aware. My way of request to the institution is that ability enhancement courses, competency improvement courses, skill development courses, foundation courses, these are something you need to decide, so that the student at the particular age will be taking this type of the advantage, and they will come to a higher level during their 3 years degree program. Core course will be there, elective course will be there, and in the core course you can have the papers on the practical and also theoretical thing, and compulsory papers will be there for the English communication and environmental science, organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry. You can have some of the programs, and discipline specific electives. For example, in the chemistry, you can have polymer chemistry, you can have green chemistry, you can have industrial chemicals, you can have instrumentation and methods of analytical methods you can have. And another thing is about the skill enhancement courses, business skills for chemist, green methods in chemistry, pharmaceutical chemistry, pesticide chemistry, or a fuel chemistry, various things you can have as some skill enhancement courses also. Now, Dr. Kalpana Ghoshal madam will be asking one question. Sir, how you define the value added courses and the add-on courses? Value added courses are the one which adds a value to the program, whether it is a BA, BSc, BCom or MA, MSc, MCom. Suppose if it's an MCom student, they can have a certified program on the GST, or a certificate course in capital market, or certificate course on the .NET and Visual Basics. Depending upon the requirement of the student, they may choose some of the value added courses. Add-on courses are the one, for example, TV production. MA, MSc student can take up, or MCom student also can take up. Industrial psychology is another thing. Functionally Hindi, anybody can take. And even girls also, health, fitness and lifestyle management. Irrespective of their degree program or a master degree program, they can have the add-on courses also. Now, the idea behind is about the value added courses and the add-on courses. At least the affiliating university should recognize these courses. Now, you will be asking, sir, what do you mean by certificate course? Certificate course can be designed by the particular institution, but it should have more than 30 contact hours, whether it is an add-on program, add-on courses, or a value-added courses, or a certificate course. It should be minimum 30 contact hours should be there. What NAC is looking for? You need to provide the brochures, the attendance, the syllabus, the number of students undertaken that program, some photographs of the courses during the things, validation points, examination system, certificates, blank certificate and field certificate, and also some geotagged photographs also need to be provided as a document for authenticated. Kindly look into the extended profile as well as the data template for this purpose. Now I will just share with you in criteria 1, for example, key indicator. One of the key indicator I will take, because there are so many indicators are there. It will take a lot of time to explain one by one. 1.3.1 talks about the institution integrates cost cutting issues. 1.3.2 talks about the average percentage of courses that include experiential learning through the project work, field work, and internship. 1.3.3 talks about the percentage of students undertaking the project work, field work, and internship. Now, how it will be evaluated? Every metric of this type of the things, for example, 10 mark, this 10 mark question will be validated through the 0 to 4 scale. Any metric, for example, 1.3.3, this is a quantitative metric. This will be validated through the data validation and verification process. Percentage of students undertaking the project work, field work, and internship. Now,
How it will be evaluated on a 0 to 4 scale? As I told you, this 0 to 4 scale will be there for the qualitative metric and also the quantitative metric. Now, for example, in a particular curriculum enrichment 1.3, there are 3 questions are there. Total weightage is 30. Now 30 is further divided into 10, 10, 10 mark. Out of the 30 mark, 20 mark is there for quantitative and 10 mark is there for qualitative. Now you will be asking one question. Dr. S.B. Kapkate Sab will be asking one question, sir, how it will be validated? So 10, that weightage, if you got a 0 to 4 scale, you got a 2, then you will get a 20. If you got a 3, then you will get a 30. Then 10 into 2, you will get a 20. Now finally you got a 70. Maximum what you can get is the 120. Now qualitative metric will be evaluated through the on-site visit. System generated score means the data validation and verification time, this will be finalized. Now coming to the teaching learning evaluation, there are 7 key indicators are there. Student and enrollment and profile, catering to student diversity, teaching learning process, teacher profile and quality, evaluation process and reforms, student performance and learning outcomes, and student satisfaction survey. Now Bhavankar sir will be asking that sir, how this teaching learning evaluation evaluated? Student to full-time teacher. Now what is a full-time teacher ratio? If a teacher has been appointed as a full-time for a 1-year period, then against the sanction post, he will be considered as the full-time teacher. Now accordingly, you can work out and kindly see the NAC glossary for the full-time teacher explanation. Student-centric methods, experiential learning, participative learning, ICT-enabled tools, full-time teacher with a PhD, average percentage of the full-time teachers against the sanction post will be calculated. Now, Yogita Dekwar madam will be asking one question, sir, how you will measure the ratio of the mentor to the student? Now, for example, shall I give you one more? The thing is that suppose there is 1,000 students are there. Now total number of the faculty strength is 25. Now what will happen is that the 25 teachers against the 1,000 students means that 1:120 is the ratio which you will automatically calculated by the computer. Now average percentage of the full-time teacher against a sanction post. Now sanction post is the 32 and full-time teachers are 22 and the rest of them are what you call on a part-time basis. Then 32 teachers against the 22 full-time teachers, the ratio and the percentage will be calculated. So accordingly, this will be calculated through the computer. Now program outcome, course outcome, and online student satisfaction survey all will be done through the online measurement, which is called as the data validation and verification. Someone said there is nothing permanent except the change. Change will happen. जैसा आज सुबह शीतल madam and everybody was telling that the COVID-19 situation has taught something new. How you will be innovative in your life, that has been taught by the COVID-19 situation. Use of the MOOCs, use of the NPTEL, and everything can be done by the students and as well as the teachers. Kindly go through the various software development or online platforms which are available. You can look into it. परिवर्तन केवल निरंतर होना चाहिए. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, हमने पहले नहीं तो ऐसा तो नहीं किया था, आज क्यों करना है? आज इसी के लिए करना है क्योंकि ये परिवर्तन का समय है and you need to change your attitude as well as the way of acting upon the different situations. Distance in your classroom will be there, but not on the learning. आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे को बहुत प्रयास करना पड़ेगा. इसी के लिए टीचर का सहायता चाहिए, इंस्टीट्यूशन का सहायता चाहिए, क्योंकि आप आविष्कार कर सकते हैं,
अन्वेषण कर सकता है और नवाचार का साथ आप आगे बढ़ सकते हैं. Final year student need to take some project work so that it will be mentored by the faculty members. One of the college was talking about innovative teaching approaches and its impact on the student learning. Now, e-learning, ICT-enabled learning, case study method, group discussion, brainstorming, live demo, web resources, peer teaching, activity-based learning, industry institution interaction, like that. There are various activities have been done. Now, Dr. Anjan Naidu will be telling, सर हमारा कॉलेज में एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है. वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है? सर एवरी फ्राइडे आफ्टरनून 4 o'clock to 5 o'clock every teacher will be there, whether it is a social science, science or physical science or a bioscience. All teachers will be there and they will be discussing about at least one faculty member giving one lecture on a particular day. That will be decided by the previously. Now, review of the regular journals, whether they have written or they wanted to going to write or whatever, whether they have read some article, that will be what to call shared with the people so that they will be able to know that new academic ventures will be done. Flipped classes, IEEE Explore, and then classrooms with the LCD and Microsoft Classrooms, Moodles, ICT tools, NPTEL, and Schoolology, SPSS, Turnitin, Plagiarism Check, Udemy. There are various platforms are available in the open forum. You can look into the various things. My way of looking is that one, the Bloom's has long back has said, education should focus on the master of the subject and the promotion of higher forms of thinking. If you wanted to make the higher order thinking, I feel that faculty also need to know about the newly coined word which is called accreditation taxonomy, because it is a part of your life. As quality culture is part of your thing, accreditation taxonomy also become a part of your life. Business statistics, course outcomes, learning outcomes that can be decided by the each faculty member. If you are political science, history, economics, all 4 teachers can together, they can make individually political science separate, social science separate, and also the sociology, social work separately. You can create your own course outcome and the learning outcome. One of the college was talking about the course learning outcome like this way, just to share with you: lecture session, classroom participation, assignments, individual group activities, midterm examination, and also the end semester examination. Finally, the discipline is also more important. You can look into the various financial planning also for the learning outcome. My way of looking for the teaching learning is that one on a 3C model. What is that one? Conduct of classes, creation of content, connect with the student. Conduct of the classes, whether it is a virtual or online, or it may be face-to-face, it depends upon the situation to situation. But how you will do with creating a new content. For the online platform, the same cannot be done in the chalk and talk method. So you need to learn how to create a content. Then finally, it is a connect with the student. If it is a online, how to talk. If it is a face-to-face, what need to be done. So eye-to-eye contact is more important for the connecting with the student. I have also another model which we call in the institutional thing is that competition, cooperation, and collaborate with others. Suppose Dhote Bandhu College is there in the in Gondia, which is one of the remotest place of the Maharashtra. Now, गोंडिया का कॉलेज TIFR से कोलैबोरेट कर सकता है क्या? गोंडिया कॉलेज नागपुर का कुछ अच्छा संस्था से कोलैबोरेट कर सकता है? कर सकता है. Where there is a will, there is a way. How to do that depends upon you to look into about the cooperation and the collaborative. Competition anyway it will be there. Whether it is a life, whether it is a any type of the work, you will have a competition. You need to look into it. And I just would like to share with you that in this particular 2.3, one of the key indicator, peer assessment will be there for the 2 metrics,
and one metric will be having a quantitative metric, which is through the data validation and verification. Now this data validation and verification will be done with the third party validation. Maximum one can get is a 200, but the institution has got the 150. Every coordinator, मैं शीतल बैनर्जी से निवेदन करता हूं, when you prepare a small report for the institution, you decide about how you evaluate the institution. That will be the self-assessment of the college. Now, peer assessment will be there for the qualitative metric, and quantitative metric, there is a benchmark is there. Benchmark is a confidential document at the NAC, and it's not publicly available. Now, this will be called as a system generated score, where there will be no on-site visit, will not be there. Only on the qualitative aspect, there is an on-site visit will be there. For example, one question comes as an average percentage of full-time teacher. Now, how you will calculate that one average percentage? Number of full-time teachers is 122 and full-time teacher with PhD is 52. Then the percentage comes as a 42%. Now, every year wise, if you look into the 5-year data and divided by 5 if you make, then it gives you the average percentage. Kindly understand the question, whether it comes as a percentage or a number or an average percentage, which will give you the guidance what to be done. मैं ऐसा सोचता हूं, उनके लिए सवेरे नहीं होते जो जिंदगी में कुछ भी पाने के उम्मीद छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद कुछ पाने के लिए उम्मीद रखते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं, और हमारा पुराना जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी यूज्ड टू से दैट वन, काइंडली ड्रीम बिग। आज इस मोड में 2020 में उनका याद आता है, if India wanted to become the developed nation and it need to innovate. So innovations is one of the things which look for by the faculty member and also the student and also the research scholars. Research, innovations and extension is more important. हाँ, दोतेबंदे कॉलेज में साइंस का बहुत बड़ा योगदान है, और साइंस का साथ साथ innovative ideas will also lead you some good destination. Resource mobilization for research, innovations ecosystem, research publication and awards, extension activities and collaborations are there for UG and PG colleges. Innovations ecosystem is not there for the UG. What I request the institution is that grant for research for projects, percentage of department having research, number of workshops and seminars, intellectual property rights, industry, academia, innovative processes, number of seminars, conferences and workshops, number of research papers per teacher, number of books, chapters written by the faculty member, extension activities, number of paper published per teacher. This need to be looked into by the institution. मैं ऐसा सोचता हूँ, innovation is nothing but think differently and act positively. This should be the approach. कभी कभी हाँ ऐसा ऐसा होता है, जो ग्रुप होता है अलग ग्रुप होता है, मगर आप अलग बन सकते हैं। आप कैसे अलग बन सकता है? Because of your thinking process. Now, if you are think differently and you will also act positively, the way of learning also will change due course of time. अटल इनोवेशन मिशन इज अवेलेबल। नीति आयोग का डॉक्यूमेंटेशन आप वेबसाइट में देख लीजिए। गवर्नमेंट इज आल्सो promoting this type of the Atal innovations missions. Student participating in extension work programs such as Swachh Bharat Abhiyan, Shresth Bharat Abhiyan, Ek Bharat Shresth Bharat, number of extension programs, number of awards and recognition, number of linkages faculty, number of field trip, internship, on-job training and research, number of functional MOUs and national and international institution. Before you write the self-study report of your institution, मेरा निवेदन है आपसे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले पढ़ लीजिए। जो जो क्वेश्चन है उसी के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है। नेशनल इनोवेशन कॉन्टेक्स्ट इज अवेलेबल फॉर यू इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड MHRD they has got the innovation cell in the portal. Atal ranking for the institution is also there. But what government is looking from the higher education institution?
अगले जो 5-6 साल का पहले NAC would like to, India would like to become within 50 in the innovations index. The internationally there are innovations index are there. Recently, government also has brought out state-wise what to call innovations index, which will give you a direction that how in state governments are promoting the innovations. MHRD has also got the innovation cell. उन्नत भारत अभियान हो, मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान से लेकर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आंदोलन के साथ साथ आप एक्सटेंशन में जुड़ सकता है, रिसर्च इनोवेशंस एंड एक्सटेंशन में. Where there is a will, there is a way. This is a small picture which I would like to share with you, that the local person, for a repair person having a battery driven by the solar cell. Now, ऐसा इंडिया में जो लोकल पर्सन कैन थिंक दिस वे ऑफ जुगाड़ करके कर सकता है, मगर क्यों हमारा फैकल्टी और स्टूडेंट नहीं कर सकते? कर सकता है. दैट इज द रीजन आई quoted this as the where there is a will, there is a way. हाँ, भगवान आपके लिए इतना अच्छा नॉलेज दिया है, यूजिंग दैट नॉलेज आप नया कर सकते हैं. How it will be calculated in this particular matrix on the resource mobilization for research, 15 mark of question है. 15 mark of question all are the quantitative nature. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 all are quantitative. For example, if you are given a 3 or a 2 or a 0, then you will be able to calculate accordingly. मेरा निवेदन है सभी से, आप लोग पहले तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आपको मूल्यांकन कर लीजिए, उसके बाद NAC के बारे में आप सोच लीजिए. Infrastructure and learning resources, physical facilities, library as a learning resources, IT infrastructure, maintenance of the campus is there. मेरे को ऐसा लगता है obstacles are the challenges for the winners, but it is an excuse for the losers. If you wanted to become a winner, and don't give the excuses, and kindly do the work and propagate a positive layer in the institutions. Infrastructure and learning resources, ICT enabled facilities, Shodh Ganga, Shodh Sindhu, e-journals, e-books, databases, annual expenditure for purchase of books, IT facilities, Wi-Fi, student computer and ratio. For all the things which I would like to share with you, that wherever you are having the doubt, kindly look into the standard operating procedure. For all quantitative metrics, NAC has brought out the standard operating procedure. जो आप सोच रहे हैं, जो योगिता देवकर मैडम सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं, और डॉक्टर अंजन नायडू सोच रहे हैं, ये तीनों एक ही जैसा होना चाहिए. दैट इज द रीजन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैज बीन designed by the NAC. A library is the room for the birth of ideas, a place where history comes to life. मेरा निवेदन है, whether it is an incubation center, whether it is a placement, whether it is anything, the library is the best place to look into the various activities churning out there, providing the facilities for the students, drinking water, uninterrupted electricity, solar cells, solar water heating, and solar lighting, which will facilitate you better. Library space, books and journals, periodicals, open access, internet, digital, e-library, full-fledged ICT and digital connectivity, maintenance of the campus, dynamic institutional website, health and hygiene is another thing which you can look into it. Student support and progression, student support, student progression, student participation and activities, alumni engagement, these are some of the things you can look into it. There are various scholarships are available by the AICTE as well as the UGC and also the MHRD and the state government. So whether students are applying there, free ship provided by the government, capacity building of the students, skill enhancement, soft skill, yoga, meditation, health and hygiene, ICT, computer facilities, remedial coaching, personal counseling, and transparent mechanism for timely redressal and placement of outgoing students. These are some of the things which you can look into it. Sometimes you need to look
at a life from a different perspective. Life is there, but you have to look about the perspective of the institution angle. Outstanding performance in sports, cultural, student council, representation of the students, alumni association, alumni contribution. मेरा निवेदन है, suppose Dr. S.P. Kapgate Sahab is a principal of one of the college in the Gadchiroli. Now, alumni association का कैसे हम कर सकते हैं? When a final year student is coming for the TC, there is a caution money will be there. Those caution money, you can just tell them, kindly donate to the alumni association, become a member in the alumni association, and those things will, small amount will lead to the bigger amount, and this will strengthen the alumni in the college. Anti-ragging, prevention of sexual harassment, career guidance, facilitating education loads. These are some of the things you can look into it. Institutional vision and leadership, strategy development and deployment, faculty empowerment strategies, financial management and resource mobilization, internal quality assurance. These are some of the key indicators for the assessment. A leader possesses clear vision, is a courageous, has an integrity, honesty, and humanity, and a clear focus. Perspective plan, strategic plan can be done by the college. Administrative setup, e-governance, areas operation, effective of various bodies, financial support to attend the conferences, faculty development programs, and short-term program, and internal and external financial audit can be done. For me, IQAC is nothing but physically fit, mentally alert. भस्त्रिका कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, साइलेंस में बैठ सकता है. It depends upon you to think about it, how you would like to come in the institutional thing. If you could not do the yoga, you may do some physical exercise like skipping or a walking or a jogging or a go to the gym also. But physically fitness is more important. In that way, institutional fitness is also more important. IQAC can create a small icon for the IQAC also. Institutional strategies, learning outcome, academic and administrative audit, gender audit, then the energy audit. Various audits can be conducted by the institution. Internal quality assurance cell, one small room can be designated for the coordination and the cooperation of the IQACs. मैं ऐसा सोचता हूँ, one nation, one data should be there. In the similar way, one institution, one data should be there. एक भारत श्रेष्ठ भारत करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is promoting the things, but for me, one OID means one institutional data. Suppose मान लीजिए मैं कल्पना मैडम से पूछता हूँ और मैं शीतल मैडम से पूछता हूँ और नहीं तो मैं डॉक्टर अंजन नायडू से पूछता हूँ कॉलेज के बारे में. So everybody should speak the only one data. One data, how it will come? Unless you have the digitization of the data, you cannot do it. But that is the reason one institution, one data should be there. IQAC is nothing but devotion and commitment. You need to devote a good time for the institution, and also you need to commitment has to be given by the faculty. IQAC may have a small motto which is called sustenance through the quality inculcation. So what I request the institution is that I and you can together make a we. Now आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल में जो है IQAC में आप सभी लोग देख सकते हैं. This is one of the university. IQAC is making a meeting. So आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल आप create कर सकते हैं institution में. So मेरे के लिए good documentation practice is the GDP. What GDP is nothing but good documentation practices. Document should be clear, precise, accurate, legible, unambiguous, and it should not be erased by the ink, and there should not be pencil should not be used. IQAC may bring out small IQAC newsletter. So in the governance, you can make e-governance through
pre-admission, admission, enrollment, attendance, classroom management, financial management, curriculum planning and curriculum implementation, examination system, choice-based credit system, and graduate attributes, and finally audit and alumni can be done. For me, criteria 1 to 7, institution can create some file, and the proverb is, if you have not done documentation of an activity, that means you have not done that activity. So if you have done, you must be having some documentary evidence for that one. IQAC may create different things like functions in the IQAC. You can more details. You can go to the NAC website and download the guideline from the IQAC. Resources versus the reputation. If the Dotebandhu college's resources are more, then it will try to get a good reputation. If the reputation is good, and it will try to get the more resources so that it will be first in the region and first in the country. So like that, institution will be striving. Now, IQAC guideline newly has been brought out by the NAC, and this was the earlier 2 months before, but the new guideline has been put on the NAC website. More details, you can look into it. And what I would like to share here in this guide is the 2.5.4. The Dr. Anjan Naidu will be asking one question. Sir, how the NAC will evaluate? One of the things which will click like B, only student registration, hall ticket issue and result processing are there. Now you need to give the current manual, annual report, expenditure statement, now some automated manual and the screenshot, and also the result declaration, and everything need to be put it into the within 5 MB. If it's more than the 5 MB, kindly put in your institutional website and provide a link to the NAC. I'll not go into the detail of that one. Coming to the 7th criteria, institutional values and best practices. There are 3 key indicators there: institutional values and social responsibilities, best practices, and institutional distinctiveness. Now, renewable energy, rainwater harvesting, green initiative, quality audit, environmental audit, energy audit, disabled friendly campus, barrier free environment, and green audit can be conducted. For the green audit or an energy audit or an environmental audit, whichever the way you call that one, and you can call it, conduct an audit. For the green audit also, suppose if you belong to the Maharashtra, then there is a Maharashtra Pollution Control Board will be there. If you belong to the Madhya Pradesh, there is a Madhya Pradesh Pollution Control will be there. If it is a Delhi, there is a Delhi Pollution Control will be there. Now, some senior person will be there who will be looking about a good quality process for the industry or an institution. You can invite them and make a part of your audit team, and you are one faculty member and one botany or a zoology or a environmental science person will be there. So 3-member team can make a small audit and tell to the college what need to be done. So there may be, say, sewage treatment plantation also can be done. There is a one college, something called the gender audit. So gender audit also can be conducted by the institution. In one of the college in the Chennai, one of the principal madam was sharing that in the final year student, when they come, either they will be getting married or they will be going to the next thing, how to face the life after the marriage. That was the real challenge. For that one, college has made the 2 days program wherein NGOs, lawyers, and also the police officers, and they have been called small presentation stating that how to face the life after marriage. So this will facilitate better. So gender sensitivity towards the various things. It may be study room, it may be ladies common room, it may be notice board, it may be SMS alert, it may be CCTV, it may be ramp, or it may be waste management, which may be library, it may be sports facilities, it may be yoga, it may be sanitary napkin, vending machine. Various things can be taken up as a gender issues also. Shivaji University is also having a UGC recommended certificate course on gender sensitization also. Kerala University is having an environmental audit report, which you can access from the IQAC of the University of Kerala.
So resources, for example, in the physical facilities, ramp, and all things Divyangan friendly campus, how you can do, you can look into it. Code of conduct of the handbook can be created, and state at least two best practices. How you will define the best practices? Now, suppose let us say in the Dotaya Bandhu College, science college is there, physical science and the life science will be there. So totally there are 8 or 10 departments are there. Every department can prepare a one best practices. Finally, the IQAC will decide depending upon the presentation made what is best. So what is unique? So that will be the best practices of the college. Now describe the explain the performance of the institution in one area of distinctiveness, whether it is a social science or a science, depending upon the institution to institution, it may be extension also. So institution need to put vision, priority, and thrust in that particular institution distinctiveness and give it to the NAC for the validation purpose. A process. What is a documentation? Documentation is a process that involves a systematic interaction of the people, events, or documents that create the records. Quality cannot be assured in a regulated process without a good documentation process. Now, optional metrics. Criteria 1 to 7, you cannot opt out. Criteria 3, 4, 5, 6, maximum is the 30 weightage is that one, and or 3% of the non-applicable metrics is there, which you need to give during the final submission of the self-study report. In most of the cases which we have seen, people are not not opting the metrics because the opting metrics is there is only on the 3, 4, and 5, 6. Now, how the software is developed? Software is developed like this way. You can see the screenshot here, and the 500 words you can be placed or paste it in the NAC computer. Before placing that one, you can prepare self-study report in the Word file and directly then you place it before this type of the software during the online submission. This is for the quantitative metrics, and you can add some of the things in the prepared self-study report, and this need to be given data driven. All any additional information means that you need to create your own document, and that link has to be given. In the file size, uploading is the maximum is 5 MB. If it is more than 5 MB, kindly prepare your document, upload in the institutional website, and provide a link to the NAC in the software. Now I'll quickly go through the data validation and verification process. Extended profile, which I already told you that the extended profile is the one wherein number things are there. Total number of classrooms, if you may say 22. Number of full-time teachers year-wise during the last 5 years. Then the 5 years, you will say that 22, 25, 23, 24, and 25. So finally, the average will come to the 22 or 23. Now this will type of the things will be calculated by the NAC. This is available in the Word. You can prepare in the Word, and accordingly you can place it during the on-site online submission. Now this slide which I already shared with you for the DVV process, which what I would like to share with you there, that quantitative metric of a 58 or 60 will be validated through this data validation and verification process. Now 5 kinds of the quantitative metrics are there. Quantitative metrics which seeks the year-wise data. That means every year of the 5-year data has been asked. For example, average percentage of the full-time teachers. Now 5-year data has been asked. So you need to provide. For the 1920, you can ask the add one more column here. Then you need to give from the 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, and 19, 20. Now, second type of the quantitative data is that where seeks the block year data, which means the percentage of programs in which a choice-based credit system has been implemented. And submetric is the number of programs wherein the changes have happened. Quantitative metrics which seeks the input data. For example, bandwidth of the internet. So there is an option will be there. For example, E, D, C, B, A.
A means 4, B means 3, C means 2, and D means 1, E means 0. Now you will be wondering how we will get the maximum. One is, suppose if you say we have a more than a 50 Mbps line, then what you need to give is that one, which agency you have hired, that one, that bill has to be given, monthly payment has to be given for 2 to 3 months continuously, how you are paid, that has to be given. And then the institution may get some letter from the that agency who is giving you the internet connectivity, and their bill, and also the your MOU with them also makes you the difference. And also availability in different campus locations, there some either videograph or a photograph of a geotag will enable you to get the maximum. So this information what is required has been written in the standard operating procedure. Quantitative metric which seeks the input data for the latest completed academic year. For example, students undertaking the field project, so last 1 year data has to be given. Quantitative metrics which automatically calculates the response from the metrics using the data provided in the extended profile. And for example, student to full-time teacher ratio, as I told you, suppose there is a 10 teachers are there and 500 students are there, so 1:50 will become the what to call student to full-time teacher ratio. So computer automatically calculates in the portal. Now financial data should be 1st March to the 31st, 1st April to the 31st March, and publication should be for related data should be 1st January to 31st December, and other data will be from the academic year. You can look into it. As I already shared with you these slides, I just not want to further thing. And data templates which you know that it is available in the Excel sheet. You need not to create any Excel sheet, but Excel sheet is available. But only thing is here that you have to provide in the same data. Kindly don't change any column in the whatever NAC has prepared, because it has gone lot of research, and the 3 to 4 partners will be cross-checking, cross-validating. If you give the wrong data, they may not give you the proper what to call validation also. So if your validation has to happen properly, then kindly prepare in the same template, and don't change any column or don't add any column to the this type of the matrix which is called as a data template. Now data validation and the verification process, which I would like to sharing with you, that the what is a quantitative metric. Now the DVV will do the data validation and verification. You must have given the some document here and there which is not a proper, but the DVV would like to make it correct in the sequence so that the your institution valid documentation will be validated properly by the NAC. The qualitative metric will be what to call evaluated by the peer team during the on-site visit. Now DVV partner verifies input and the extended data, input from the quantitative data templates with the complete details, validates with the uploaded documents like AISHET, NIRF, UGC, and annual report and institutional website, and also the read the line and the metrics query raised during the DVV process. Then only reply to the NAC. Kindly, if you have any suggestions or anything, you can raise the issue in the support help desk. Raise the query only without suggesting the difference in the, but they sort the additional information. The DVV partner will be asking. In the next slide, I will be sharing with you how the raise of the queries will be there. Just to give you one example, how on the and why the DVV is required. For example, you have suggested that 52 teachers are there in the college, and you have given the 48 people's PhD certificate in the link which you provide. Now, the DVV clarification comes as that stating that you have said that 52 teachers are 100% are having the PhD, but where is the 4 people who are not given the PhD, what to call certificate? Now, during the process of that one,
you have come across that you have not given the two people PhD, though they are having the PhD. Now you will complete with a what to call this bridge by giving the two more additional data. Now the finally from 52 it comes to the 50, and there is a final DVV clarification will be concluded with that one time clarification. Standard operating procedure, kindly look into it, and if the input is more, the document may be provided for the small random selection. Random selection will be done by the DVV partner. Now, standard operating procedures, data validation and verification. Recently, NAC has brought out the new revised guideline on a 13/2/2020. You can look into it. Timeline is more important. आपके लिए 15 दिन से लेकर 21 days will be given, but you cannot sit on the thing. You need to respond to the NAC during the DVV clarification. No extension will be given. Till the COVID-19 situations, तब तक जब हम बाहर नहीं आते हैं तब तक थोड़ा एक्सटेंशन तो देंगे, but in further when the regularization happens, there will be no extension will be given by the NAC, and 21 days means 21 days maximum. Within 15 days, maximum 7 days will be given by the NAC for the clarification process. Once you submit a self-study report to the NAC, you need to be what to call very alert. In a simpler way to tell you that if a student is writing an examination for 3 hours, when he entered the what to call the hall for writing examination, in between he cannot come out and then come back. So DVV partner is also there like that. Once you are evaluated by the DVV, in between you cannot come back the things. So you need to be very alert during those things, those days when after submission of the self-study report to the NAC. Metric level deviation also will be available to the institution also. Now, 4 type of the deviation analysis for a simpler thing which I made as a DVV thing. Positive deviation. What is a positive deviation? Suppose if you are saying that percentage of students passed out. Now, calculation you may have said that 89% of the students have been passed out. But when we calculate from the last 5 years data, it comes to around 92%. Then the partner will be asking you that, shall I keep 89 or 92? Then you will say that and kindly keep the 92. Then this is a positive deviation will happen. What is a negative deviation? You say that when 52 teachers are having the PhD, then you have given the documentary evidence only for the 40 people, and during the clarification also you are not given any data to the DVV partner to verify. Now, what will happen is that your data from the 52 it will come to the 40 only. Then that is a negative deviation will be there. Now, where is a no deviation? You say that one number of students getting the scholarship percentage. We calculate from your data stating that it comes to the 72%. When we calculated also it comes to the 72%. Then there is no deviation. There is no question will not be raised. Less deviation will be there. What is a less deviation? Suppose if you say number of classrooms having the ICT enabled services, including the LCD and other projector and everything. 22 classrooms are having the what to call LCD project. That's what you have said. But actually it is coming to 21 only. So small deviation will be there, which may be called as a less deviation. So our request to the institution is that kindly prepare full good self-study report, then only jump into the IIQA and also the SSR submission. This will facilitate you better so that you will be in a good position to face the NAC. In this particular metric, what we call number of students, there are affected metrics will be there. Affected metrics will be 5.1.5, 2.2.2, 5.1.2, 5.1.1, 4.2.6. The metrics wise, you will be able to see that so many metrics will be affected. So extended profile and the data to be given to the in a particular metrics should be verified twice or thrice by the institution so that
you will be in a better position. Now, this is one of the things where findings of the DVV will be given and a response from the HEI also will be there and a status will be there. हमारा निवेदन इतना ही है, whenever you submit a self-study report to the NAC, kindly be alert and kindly see the institutional portal regularly. Institution disabled friendly, this is one of the metrics is there. Institution obtains the feedback is another question is there. And metric evaluation, if you look into that, the thing is that institution may look into that one. Higher education input was 26.25, but when we clarified that one, DVV suggested only 9 because documentary proof is not there as per the standard operating procedure. Now, another thing is about the institution provides incentive. Initially, they said yes, but DVV suggested there is no what to call documentary evidence. Then higher education also agreed that there is nothing is to be given. Then recommendation will come as a no. So this is a negative deviation for that one. File size should be less than the 5 MB space. It should be provided with the particular URL if you are submitting in the institutional site. Kindly do not change the location once you submit to the NAC because there is no phone call will not come saying that you have given the wrong IP address and the long link. That will not be excused by the NAC, and you need to give doubly cross check whether you are giving a proper documentation or not. Password protection should not be there wherever you give the link to the NAC, and Google Drive में और ऐसे ही Drive में data मत रखिए so that it will not be taken into validation. No other means of the communication should not be there, and DVV partner will be raising issue only through the portal. If you have any query, kindly communicate to the NAC. NAC will reply to you through the portal only. Geotagged photograph should be there. Now, Rakesh Vasnik will be asking one question, sir, geotag photograph के लिए क्या करना चाहिए? जियोटैग फोटोग्राफ के लिए फोटोग्राफी में लॉन्जिट्यूड अल्टीट्यूड होता है, उसका अक्षांश रेखांश देख के आपको करना पड़ेगा. इट इज नॉट ए जियो टैग्ड, JIO नहीं है, GEO है. So you kindly look into the thing. English translated version may be provided for the documents which has been asked by the DVV partner. Unit of measurements, it may be in lakhs. Glossary for understanding, kindly go through the glossary. Exact audited statement should be given. In case of government institutions, then it may be the finance officer of the particular institution or the any authority. But in the private institutions, it is a chartered accountant has to sign the audit report. Now, within 15 days, the clarification will come from the NAC thing. So 25% has been kept as a pre-qualification stage. Out of the 62% or 63%, whichever is the quantitative metric, out of that one, 25% you have to pass. Then only second stage will take up, which is called the on-site visit. So without the pre-qualification, on-site visit will not be taken up. So kindly see that seriously about the to pass at least for the 25% so that you will come to the NAC fold for the accreditation purpose. Please refer to the standard operating procedure for the quantitative metric, and the pre-qualification will be there. In the seventh what to call 2.7.1, which we call as the student satisfaction survey. This is a predetermined weightage is a 60, and for the other universities and college, autonomous college, there are various weightages will be differs. And this is type of the question is that one cautionary note to the institution is that kindly cross-check and cross-validate the email ID which you have given is a correct. What you can do, kindly collect the, if you are going for October 2020-21, going for accreditation. Now you have a data of the student. You communicate to the student through the email so that regularly they will visit or they will use the email, and that proper email you will be giving to the NAC. That will facilitate you in better to get a good marking during the student satisfaction survey, where student will be replying to the NAC through the
online. Now, in this particular student satisfaction survey, there 60 mark will be there, and maximum one can get, so 240 weightage. And for strictly upload the text in the NAC, what to call, portal, 100% or a 50% student need to be given. That means every Excel sheet, don't put the data more than 500 student data. If you have more, you can use the next slide, next sheet, and this will facilitate you better, because NAC can send more than the 2 to 3 times to the student also, depending upon the institution, when the student satisfaction survey starts. Actually, the 30 days in advance, the student will get the email from the NAC once your DVB partner has taken a decision. Now, 10% or 100 student should be given reply to the NAC, or for the 500 students is for the university, if it is a university. Now, 20 objective question, 1 subjective question will be there, and on-site visit, there is a 2 days will be there, 3 members will be there, vice chancellor, 1 professor, 1 principal will be there. And my request to the institution is that this type of the 7 thing, 1 is time management, 2nd is institutional on-site visit, then the facilities visit of the management, material management, travel management, report preparation by management, and exit meeting. Now, the time management, once you submit the self-study report to the NAC, you need to look into about how you will conduct the on-site visit. Short cultural program, student interaction, parent-teacher association, alumni interaction. These are interactions will be there. You need to manage your time. Institutional on-site visit, regarding the department visit, lab visit, center facilities. You have an incubation center. You wanted to show to the team members. So kindly make it put in that plan, so that you will be able to properly communicate to the persons. Material management, documentary evidences, paper, research papers, patent, attendance, teacher's diary, criteria-wise input, onward journey, return journey, accompanying person, hotel, food, tickets. NAC will do the what to call ticketing, but 3 days in advance, you will be communicated who will be coming. At that time, you have to prepare this type of the things. Report preparation, facilities for the writing the report, exit meeting. You need to prepare a background banner, and a photograph need to be taken up during the exit meeting. Logistic fees should be paid during the 2nd level what to call submission after the on-site visit. And during the on-site visit, once you pre-qualified, you need to pay the 2nd level fees, and as well as the logistic fee. During those period, you have to put 2 days, what to call, which days you will be getting you want the visit. NAC will not disclose the visiting team well in advance. Only 3 days in advance, they will be only 3 days in advance, the peer team member's name will be communicated to the institution. NAC will take care for the logistic of the visiting teams. NAC will pay directly the honorarium. You need to pay, do not pay anything to the peer team during the on-site visit. All the things will be taken care by the NAC, but only thing is that midday lunch and the tea snacks can be provided by the only for the on-site. At the hotel, NAC will take care of the peer team members. Tentative visit schedule, there are various things will be there, visiting facilities. Then finally, the exit meeting will be there. So if you are having a 25 department, NAC may not visit all 25 department. So 12 department maximum they can visit. So out of the 12, you decide 50% of the department, NAC will decide 50%. So that finally 50% will be visited by the on-site visit team. Now the statistical thing about the NAC accreditation outcome, I'll share with you 2 minutes lastly. Now quantitative metric, qualitative metric, student satisfaction survey, which ABC, which I call as,
will come to the accreditation outcome document. Now, finally, the grade will come. Suppose if you have got the 3,480, then divided by 1,000 will give you the 3.48. That means it is A plus grade will be there. If you got the 2.02, then it will be B grade. Now, what NAC is communicating to the institution as an accreditation outcome document, comparison between the quantitative metric and the qualitative metric in different indicators which NAC has asked about, the 93 and 96 indicator, all indicator you will be able to see whether it is their high performance indicator or low performance indicator. Now, high performance indicator will be 3 to 4 and low performance indicator will be 0 to 1. Now, distribution of the high performance key indicators is the 3.01 to 4. This is about the graphical representation where you are strong, which will be communicated to you in the graphical representation. Average performance indicator comes with a 2.01 to 3, and where you are need to improve upon. But where you have low performance, that also will be communicated to the institution with a 0 to 2, where they have got the less mark, that also will be communicated. And criterion wise, you will be getting where you get the maximum, you have got the low. For example, just to give, though these colleges must be good because 4, 3.35, 3.82, 3.32, 3.6 and 3.53, out of the 7 criteria, 1 criteria only they have got. But the research makes a lot of difference. Innovations make a lot of difference. So if they have got the maximum mark here also, then the things could have been changed. But the research innovations extension is also more important when you can look into a graphical presentation, performance in the research innovations extension, everything can be given to the institution. I just brought some few slides only, but it is a around 15-page document will be given to the institution. Now, finally, just to tell you, NAC has reached more than 14,000 institutions during the last 25 years. But first cycle, second cycle, third cycle, fourth cycle, institutions also coming forward for the accreditation. Finally, I would like to share with you that हरिवंश राय बच्चन जी ने एक लाइन बताया है, हिंदी का कविताकार है, लहरन से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को हार नहीं होती। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, दोते बंधु कॉलेज को, खासतौर पर डॉक्टर अंजना नायडू and his whole team, and also the Dr. Sheetal Banerjee, Dr. Avindra Katre, and I also thank Dr. Narendra Chotalaji, who has joined online for the discussions, and I thank each participant. आप सबको शुभेच्छा, धन्यवाद. Over to host. Thank you, sir. Thanks a lot. Sometimes words becomes powerless to express the gratitude. Thanks a lot for such a wonderful, insightful talk, sir. On behalf of organizing team, I owe my gratitude for your valuable presence and expertise. Thanks once again, sir. धन्यवाद. Dear friends, we are fortunate to have Dr. Chotalia, ex-director, Knowledge Consortium, Gujarat, as an eminent speaker. Sir is pioneer of academic and administrative audit, AAA, and more than 300 AAA of colleges and University of Gujarat State. AAA was nominated for PM Awards in 2013 and 14 and he has guided more than 100 colleges for ANA of NAC. Sir has mentored the principals in charge of government colleges in the year 2012 to 2015. He has mentored Saurashtra University of Gujarat to be first A-grade university in Gujarat. He has mentored Gujarat Ayurveda University
in Gujarat having highest CGPA among all state universities. He has been appreciated by Principal Secretary of Higher and Technical Education Department for organizing National Educational Summit in 2014 and mentored NMIMS Mumbai for ANA by NAC. He has 15 international paper presentations to his credit. I am elated, fortunate, and privileged to invite such an eminent educationist with a strong heritage of professional expertise, Dr. Chotalia sir, on the topic Role of IQAC before applying for NAC accreditation. I welcome you on board, sir. Over to sir. Thank you. Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. I have shared my screen. Can you see the screen or not? Till not now, sir. Not now. Yes, sir. शेयर कर दीजिए. अच्छा, इसे शेयर करता हूँ. Yes, Now it is visible, sir. फुल स्क्रीन कर दीजिए. Okay, is it now? Okay. Yes, sir. It's okay, sir. Respected Dr. Ganesh Hegde sir, advisor of NAC. Respected principal of the college. Respected coordinator of the college, the senior professors, senior teachers, and all the invited participants. Today, I would like to speak about what to do for accreditation by NAC and how to prepare for it. This is the point on which I would like to talk. So, what is the aim of the Paramarsh that we know? The aim of the Paramarsh is mentoring non-accredited colleges to get accredited. तो ही ये जो यूजीसी का जो स्कीम है, जो परामर्श का जो स्कीम है ना, तो ही अचीव होगा, हम कर सकते हैं कि तो ही मींस देन ओनली वी कैन रीच टू द एम ऑफ द परामर्श, अदरवाइज नॉट. तो मेंटरिंग नॉन accredited colleges to get accredited, मतलब this is the final outcome. Okay, after the some time or some periodically we should check how many colleges have been ready for accreditation by NAC, how many, at what stage they are, what are the problems they are facing. We should check, because this is the aim of the Paramarsh. And at the end of the scheme, we should check. UGC may ask us how many colleges got accredited under this scheme. It means we should promote all the colleges so that they can get accredited as soon as possible.
whenever they need any kind of help, okay, the institution, the DB college can mentor, okay, we can also help. So this is the aim of the Paramarsh. Before apply, हमें क्या करना चाहिए ये मैं सोचता हूँ बिफोर अप्लाई. अगर मेरी कॉलेज नॉन एक्रेडिटेड कॉलेज है और मैं ये पार्टिसिपेट आई में पार्टिसिपेट इन दिस वेबिनार, मुझे प्रिंसिपल ने भेजा है कि सर आप कोऑर्डिनेटर आप जाओ समझ के आओ, आप हमें कॉलेज का एक्रेडिटेशन करवाना है, कैसे करेंगे आप देखो. तो मैं कैसे जानूंगा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए. What is required before apply? What is required for the accreditation? This is important thing. What is required? I think required is requirement of IQAC. सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ साहब ने जो बताया, गणेश साहब ने, कि IQAC के लिए एक स्पेशली रूम होना चाहिए, एक कमरा होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए. तो दिस इज वन ऑफ द फैसिलिटीज. ओके, इसलिए मैं अभी ही मैंने इस स्लाइड को ऐड किया है कि एक जगह पर ये IQAC के लिए स्पेशली एक रूम बनाया है स्पेशली फॉर IQAC. यू कैन सी ये यहाँ जो दिखाया गया है ये सब जो है, तो ये क्राइटेरियन वाइज डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेशन है, यू कैन सी. और इतना ही नहीं, पूरे 5 साल में इसका जो भी अवार्ड्स मिला, रिकॉग्निशन मिला, मेडल्स मिले, ये सब यहाँ मेंशन किए हुए हैं. साहब ने बताया कि वन नेशन, ऐसे ये वन डेटा सेंटर, डेटा एक ही जगह पे मिलना चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा, सबको मिल सकता है. तो IQAC को एक म्यूजियम जैसा बना सकते हैं हम. तो दिस इज द म्यूजियम, वी कैन से म्यूजियम ऑफ द डाटा, म्यूजियम था, ऐसा कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वी शुड एस्टैब्लिश IQAC एज सून एज पॉसिबल. अगर नहीं किया है तो IQAC को एस्टैब्लिश कर दीजिए. अगर नहीं किया है तो कुछ प्रॉब्लम है हमारे लिए. क्या प्रॉब्लम है हम देखते हैं. क्योंकि वो वहां पर एक क्राइटेरियन नंबर जो है 6.5, क्राइटेरियन नंबर 6 में 6.5 की एस्पेक्ट है. देयर आर 3 मैट्रिक्स, 3 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वालिटेटिव है और 1 क्वांटिटेटिव है, और ईच कैरीज 10 पॉइंट्स, मतलब टोटल 30 पॉइंट्स. इसमें मेंशन किया है कि क्या इनिशिएटिव क्या लिया है IQAC का, इनिशिएटिव ऑफ द IQAC. अगर IQAC की एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुई तो हाउ कैन वी शो द इनिशिएटिव्स ऑफ द IQAC? क्योंकि IQAC का जन्म ही नहीं हुआ है तो कैसे बता सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें IQAC का कंपोजिशन करना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल. इसके लिए एक चेयरपर्सन होना चाहिए. चेयरपर्सन जरा सुन लो, चेयरपर्सन होगा कौन हो सकते हैं, तो इंस्टीट्यूशन के जो हेड होते हैं वही, मतलब हेड मतलब यहाँ प्रिंसिपल होते हैं वही, मतलब मैनेजमेंट में से कोई नहीं आ सकता, क्योंकि मैनेजमेंट में अगर मैनेजमेंट है वो हेड है, तो नॉट हेड ऑफ द मैनेजमेंट, है ना, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब हेड ऑफ द कॉलेज. यहाँ पर हमारी कॉलेज है तो कॉलेज का जो हेड होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वही चेयरपर्सन बन सकते हैं. दूसरी बात यह है कि बाकी कौन हो सकते हैं, तो कि फ्यू सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे पास मान के 3 है, तो इसमें सीनियर कौन है और कौन विलिंगनेस है, कौन अच्छा अपना इनपुट दे सकता है, कौन काम कर सकते हैं, उसमें से हम सिलेक्ट करके 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और 3 अच्छे 3 भी ले सकते हैं. मतलब फ्यू लेना है, ज्यादा नहीं लेना है हमें. 3 to 8, 3 से लेकर 8 टीचर्स कैन ज्वाइन द IQAC. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि IQAC की जब रचना करते हैं ना, तो टीचर्स आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन IQAC, लेकिन काम करने की जब बात आती है ना तो भागते हैं. ऐसे नहीं चाहिए हमें. टीचर्स जो है, जो विलिंगनेस है, जो काम, क्योंकि IQAC में ज्यादा काम करना पड़ता है, तो विलिंगनेस जो है वही IQAC में टीचर्स आने चाहिए. माना कि सीनियर है लेकिन खुद काम तो करते ही नहीं, और हम अगर काम सौंपते हैं एज ए प्रिंसिपल, तो हाँ करते हैं लेकिन करते भी नहीं, इन टाइम नहीं करते हैं. तो ऐसे टीचर्स को हमें IQAC कोऑर्डिनेटर में नहीं, IQAC में नहीं रखना है, सेल में नहीं रखना चाहिए. हमें सेल में तो वही रखने चाहिए हमें टीचर्स जो काम कर सकते हैं, काम करने की इच्छा रख सकते हैं ना, इच्छा कोशिश कर सकते हैं. दूसरी बात, टीचर्स की बात करते हैं तो हमें टीचर्स में अगर मेल टीचर्स है, फीमेल टीचर्स हैं, तो मेल टीचर्स और फीमेल टीचर का रेशियो इक्वल हो, वो भी हमें देखना चाहिए.
1 मेंबर फ्रॉम मैनेजमेंट, हाँ हमारा मैनेजमेंट होता है, उसमें से हम एक मेंबर ले सकते हैं, है ना, कोई भी ले सकते हैं, वो ट्रेजर भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी है, जो मतलब यहाँ एक भी बात है कि जो IQAC मीटिंग में उपस्थित रह सके उसको ही हमें इस सेल में मेंबर के हिसाब से रखना है। अगर वो IQAC की मीटिंग में उपस्थित रह सकते नहीं, उसके पास कुछ ना कुछ काम ही रहते हैं, तो हमें उसको मेंबर के हिसाब से यहाँ पर IQAC में नहीं रखना है इसको। एक बात। दूसरी बात, स्टूडेंट्स में से हम 1 या 2 स्टूडेंट ले सकते हैं। लोकल सोसाइटी में, माना लोकल सोसाइटी की जब बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में खास करके NGO बहुत से होते हैं, माना कि रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, ऐसी बहुत सी NGO होती हैं। इसमें से किसी एक मेंबर को ले सकते हैं या तो 2 मेंबर को ले सकता है। ऐसे NGO को हमने इसमें शामिल करना चाहिए जो हमारे संस्था में आ सके, कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके, कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलेज, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ऐसे NGO को हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, कुछ कहीं ना कहीं उसके रिलेशन भी होते हैं। तो वी शुड आस्क द फैकल्टी मेंबर्स और अदर्स कि ऐसे NGO को ढूंढ निकालो, और इसमें जो कौन है, जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है या मेंबर है, कोई भी है, तो जो यहाँ इस संस्थान में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं उसको फाइंड आउट करो, प्लीज आइडेंटिफाई। तो इसको हम शामिल कर सकते हैं अपने IQAC में। और ये पुराने स्टूडेंट्स की जब बात होती है तो पुराने स्टूडेंट्स एलुमनी तो बहुत से होते हैं, मतलब लास्ट ईयर जो पास आउट हुए वो भी हमारे एलुमनाई है, और 10 साल पहले हुए वो भी एलुमनाई है, 50 साल पहले हुए वो भी एलुमनाई है। तो हमें किसको लेना है? हमें उसी एलुमनस को लेना है। एक ले सकते हैं तो 2 एलुमनाई ले सकते हैं जो अपने कॉलेज की IQAC मीटिंग में उपस्थित रह सके, कंट्रीब्यूशन दे सके, कुछ डिवोशन है, डिवोटेड पर्सन होना चाहिए। तो दीज आर द persons we should be, okay, we should involve in IQAC। और इंडस्ट्री है, हमारे नजदीक में कोई इंडस्ट्री है, नजदीक में नहीं है तो कोई एम्प्लॉयर है, या तो कोई और वो भी नहीं है तो कोई भी स्टेक होल्डर्स जो हैं उसमें से हमें किसी एक को या तो 2 नॉमिनी ले सकते हैं। जनरली हमें क्या, अभी तो ये जो युग है, अभी ये जो एरा है, दिस इज द एरा ऑफ IT एरा कह सकते हैं। ये IT एरा तो बहुत कुछ नजदीक कर दिया है हमने। साहब बेंगलोर में बैठे हैं, गुजरात में बैठा हूँ, फिर भी हम एक दूसरे को देख सकते हैं। आप गोंडिया में हैं, हम और आप बात कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉयर कहीं पर भी हो, लेकिन उसको अगर हम उसको कह सकते हैं कि जी प्लीज आप इफ दे आर विलिंग देन वी कैन ज्वाइन इन IQAC, उसको मेंबर में शामिल कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ही मस्ट हैव विलिंगनेस, अदरवाइज नहीं। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ IQAC। IQAC है तो ही हम नेक में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ओके, इसके लिए मैं बताऊंगा कि देयर आर 3 मैट्रिक्स ऑन IQAC। ओके, 3 मैट्रिक्स जिसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहली एक बात यहाँ मेंशन की है कि इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली for institutionalizing the quality assurance strategies and processes। अगर IQAC का जन्म ही नहीं हुआ है तो हाउ कैन IQAC कैन कंट्रीब्यूट? और इतना ही नहीं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड क्या है? कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट होना चाहिए, है ना। कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? सिग्निफिकेंट, जिसको कह सकते सार्थक होना चाहिए, है ना। इसको अगर इसको नेग्लिजिबल है तो कुछ इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता है। तो जो हम चाहते हैं कि हमारी कॉलेज का एक्रेडिटेशन हो, अच्छा परफॉर्मेंस हो, अच्छा ग्रेड आए, है ना, तो सही ग्रेड आए, फेयर ग्रेड आए, तो इसके लिए देयर शुड बी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम IQAC। दैट इज रिटन इन दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक जो है क्वालिटेटिव मैट्रिक है, जिसमें मेंशन करना है 500 वर्ड्स में, नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। अगर ज्यादा है हमारे पास, जो ज्यादा इनिशिएटिव हमने की, माना कि क्योंकि ये जो एक बात बताऊं, यहाँ 5 साल का, है ना, 5 साल में जो भी इनिशिएटिव लिए है, जो भी काम किए हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है IQAC को, वो मेंशन करना है। लेकिन हमारे कॉलेज तो भी नहीं है, है ना।
एक बार भी हम कुछ कॉलेज में नेक में गए ही नहीं है, फिर भी हम पार्टिसिपेट होना चाहते हैं कि नहीं हमारे कॉलेज नेक में जाए। अभी मतलब 6 महीने हुए, 3 महीने हुए, 5 महीने, अभी हम कल ही कर रहे हैं, IQAC का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब पूरे 5 साल का जो एवरेज निकाला जाएगा, एट दैट टाइम हमारा कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए कि एवरेज जो है अच्छा आए, वरना क्या होगा, एक साल में हमने एवरेज वर्क कर लिया, तो इसको 5 ईयर से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो परफॉर्मेंस जो है इतना अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो है दिस विल बी checked, this will be verified, this will be validated by the peer team because this is the matrix. तो peer team member देखेंगे ये तो एक साल में ही हुआ, बाकी 4 साल में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक साल में इतना काम करो, उसको लगना चाहिए कि हाँ एक साल में जो काम किया है वो बहुत काम किया, हार्ड वर्क किया है, IQAC से बहुत काम किया, IQAC से प्रोएक्टिव, हाइपर एक्टिव कह सकते हैं, हाँ इतना अच्छा काम किया है, जो 5 साल में नहीं किया वो एक साल में करके दिखाया है, वो ऐसा हमें करना चाहिए हमें। तो इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब 2 प्रैक्टिसेस इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एज द रिजल्ट ऑफ IQAC initiative within 500 words, within maximum 500 words, not more than that. The institution reviews in teaching learning process, structures, methodologies of operations and the learning outcomes at periodic intervals. That is important thing. हम एक बार करें ये जरूरी नहीं है, साल में एक बार नहीं है, पीरियोडिक इंटरवल में ये जो इसका रिव्यू होना चाहिए। किसका रिव्यू होना चाहिए? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। टीचिंग क्यों करते हैं हम? लर्निंग के लिए, हुआ लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं। स्टूडेंट्स मस्ट बी लर्नर, स्टूडेंट्स को हमें लर्नर बनाना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लर्निंग कर सके, इसीलिए हमें टीचिंग करते हैं। तो टीचिंग एंड लर्निंग टुगेदर है ना, ये दोनों प्रोसेस है लेकिन एक ज्वाइन है। अकेले स्टूडेंट लर्निंग नहीं कर सकते, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंस रहता है। वी आर टीचर्स, वी टीच देम। तो टीचिंग ऐसा होना चाहिए कि सो दैट दे कैन लर्न, है ना। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि जो भी आउटकम्स जो होते हैं, आउटकम अटेन करने के लिए, है ना, अचीव करने के लिए, हाँ हाँ वो अटेन करने के लिए हमें रिव्यू करना पड़ेगा। लर्निंग आउटकम्स, जैसे ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लर्निंग आउटकम्स के बारे में चर्चा करेंगे। पीरियोडिकल इंटरवल में करना पड़ेगा थ्रू IQAC। इंस्टीट्यूशन का मतलब कॉलेज प्रिंसिपल थोड़ा करता है ना। थ्रू IQAC ये रिव्यू हो सकता है। तो IQAC को रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू करते हैं तो इसका डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए। हमने बुलाया, टीचर्स को बुलाया, मीटिंग की, रिव्यू किया, लेकिन हमारे पास इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, है ना। ओके, थ्रू IQAC सेटअप एज पर नॉर्म्स, जो IQAC के जो नॉर्म्स जो डिफाइन किए हुए हैं, नेक ने बहुत काम किया इसके ऊपर, बहुत ही काम किया है। क्योंकि जो भी नॉर्म्स बनते हैं, बहुत सी मीटिंग होती है, मीटिंग के एंड में इसके कंक्लूजन पर आते हैं कि ये नॉर्म्स होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें बहुत छोटी लगती है हमें यहाँ पढ़ने में, लेकिन इसके लिए इसके पीछे बहुत काम करते हैं। recorded and incremental improvement in various activities, ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी हुई है। वेरियस एक्टिविटीज वेरियस है, एक ही एक्टिविटीज नहीं है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, देयर आर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देयर आर को करिकुलर एक्टिविटीज है। तो 3 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज तो होती ही है ना। मैं एकेडमिक की बात बताता हूँ, तो एकेडमिक में 3 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज होती है। वो होती है करिकुलर एक्टिविटीज, जिसको हम पढ़ाई करते हैं। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज जो है वही को करिकुलर एक्टिविटीज, जो करिकुलम को साथ करिकुलम को पढ़ाने के लिए, इसको एनरिच करने के लिए जो माना कि सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सिंपोजिया करते हैं, दीज आर द को करिकुलर एक्टिविटीज, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए हमें चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें स्टूडेंट्स में जो इनेट टैलेंट है वो बाहर आ सके, है ना। इसको प्लेटफॉर्म देना है। तो इसके लिए माना कि स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डन।
तो ये सब एक्टिविटीज है, इसमें इम्प्रूवमेंट कितना हुआ, ये इम्प्रूवमेंट की बात, वेरियस एक्टिविटीज, इम्प्रूवमेंट इन वेरियस एक्टिविटीज, पहले होता था अब कैसा हो रहा है, और वो भी होना चाहिए इंक्रीमेंटल, इस पे इंक्रीज होना चाहिए। इसका अगर ग्राफ बनाए हम तो हम देख सके कि हाँ पहले इतनी एक्टिविटी होती थी, अब इतनी हो रही है ना। पहले माना कि गीत संगीत है, इसकी इतनी एक्टिविटी होती थी, लेकिन अब हो रही है इससे दुगनी हुई है, 3 गुना हुई है, ज्यादा हुई है, या क्वालिटेटिव हुई है। हम तो एक्टिविटी करते हैं, स्टूडेंट्स को बेचना है, स्टूडेंट्स को गीत संगीत नृत्य के लिए तैयार करते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, लेकिन जिसका परफॉर्मेंस एट द यूथ फेस्टिवल इन द यूनिवर्सिटी या तो इंटर यूनिवर्सिटी या कहीं और पर भी, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल है, वहां पर जो इवेंट्स होते हैं वहां पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है क्या, इसको तो ये इंक्रीमेंटल होना चाहिए, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, इसको इम्प्रूवमेंट तो होना ही है, लेकिन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये नई कॉलेजेस हैं, दिस आर द न्यू कॉलेजेस। न्यू कॉलेजेस के लिए हमें बस यही दिखाना कि यहाँ क्वालिटी में हमने इम्प्रूवमेंट लिया है, क्या है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय IQAC लास्ट 5 years। तो अब हमारे 5 साल तो है ही नहीं। हम ये तय कर ले, ये सब कॉलेजेस हैं जो परामर्श के अंडर में काम कर रही है, आज पार्टिसिपेंट के हिसाब से कोई प्रिंसिपल आए हैं, या तो कोई IQAC कोऑर्डिनेटर आए हैं, या तो कोई अदर टीचर्स है ये वेबिनार में जुड़े हैं, तो उसको मैं एक विनती करता हूँ, आप तय कर ले कि मुझे 2021 में नेक में अप्लाई करना है। तो इसी साल में ही, वैसे 1 महीना तो गुजर गया, बाकी कितने महीने बचे हैं, तो मैं कहता हूँ तो 10 महीने ही बचे, तो है ही नहीं हमारे पास। February is going to complete, तो फिनिश हो जा रहा है। तो हमारी ये 10 महीने में हमें क्या करना है, 10 महीने में ये तैयार करना है कि हमें साहब ने बताया कि IIQA में तो हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, IIQA तो कर ले, रजिस्ट्रेशन तो कर ले, नेक में बाद में जाएंगे हम, लेकिन IIQA के मतलब रजिस्ट्रेशन तो पहले कर ले, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम अपने आप को तैयार कर ले। तो इस 10 महीने में हमें कितना करना है, बहुत कुछ काम करना है, बहुत कुछ। तो ही हम 2021-22 में नेक में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पहले से ये प्रिपेयर कर लिया है, अब हमने तो कोई बात नहीं है, तो हम नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या मांगा है, फॉर द फर्स्ट साइकिल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट मेड फॉर प्रीसीडिंग 5 years, है ना, विद द रिगार्ड टू क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो IQAC ने क्या काम किया है वो देखना है। दूसरी बात, क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ये इनिशिएटिव जो है ये कौन से इनिशिएटिव्स IQAC ने कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं, ये कॉमन है, मैं बताता हूँ, तो कॉमन, ये तो होना ही जरूरी है ना, इसको कह सकते हैं कि नेसेसरी है, ये तो नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, दिस आर नेसेसरी। तो ये नेसेसरी में क्या आता है, रेगुलर मीटिंग ऑफ IQAC। रेगुलर का मतलब क्या कह सकते हैं, है ना, रेगुलर का मतलब हम नक्की तय कर ले कि हमें कब मीटिंग करना है, एवरी मंथ करना है, एवरी 2 months करना है, एवरी 3 months करना है। तो इसकी मीटिंग शुड बी रेगुलर है ना। यहाँ रेगुलर शब्द नहीं होता तो क्या, मीटिंग ऑफ द IQAC, ये नहीं है, लेकिन रेगुलर मीटिंग ऑफ द IQAC दैट इज इंपॉर्टेंट। अरे मीटिंग होती है तो मीटिंग कर ली हमने, बस बातें कर ली, हम ये करने वाले हैं, कुछ रिव्यू कर लिया, कुछ हमारे पास मिनिटाइज तो है नहीं, तो भी इस मीटिंग का कोई इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। जब मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले मीटिंग, माना कि हम सोचते हैं कि आज है गुरुवार, सैटरडे को मीटिंग रखनी है IQAC की अपनी कॉलेज में, कि आज वेबिनार हुआ, गणेश साहब आए थे, उसने ये सब चीजें हमें समझाई बताई, चलो सबको हम शेयर करें कि हम क्या सीख के आए। तो इसके लिए हम सैटरडे को मीटिंग करने वाले हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको कॉलेज में जाके, प्रिंसिपल जो है वो तो चेयरपर्सन है IQAC की, उनसे बात करनी होगी कि हाँ सर हम मीटिंग सैटरडे को मीटिंग रखने वाले हैं, मीटिंग रखेंगे, मीटिंग में क्या बोलेंगे, क्या करना क्या है, दैट इज कॉल्ड एजेंडा। तो हमारा एजेंडा क्या होगा, तो एजेंडा तय कर हमें क्या क्या करना है, किसके बारे में डिस्कस करना है ना। तो सबसे पहला एजेंडा क्या होना चाहिए मैं बताऊं, जब भी मीटिंग होती है ना, सबसे पहला एजेंडा हमेशा के लिए होता है
रिव्यू ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। पहले, इसके पहले जो मीटिंग हुई उसमें जो हमने डिसीजन लिए और हमने तय किया कि ये डिसीजन के हिसाब से हमें ये एक्शन करना है, ये लेना है, ये काम करना है, ये काम है, तो हमने सोचा कि ये 5 काम करना है ना, वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, वर्क 4, वर्क 5। तो वर्क 1, हाँ वर्क 1 हमने किसको असाइन किया था, हाँ उसका नाम लिखा होना ना कि वर्क 1 वाज असाइंड मिस्टर XYZ। तो मिस्टर XYZ शुड बी देयर। उसको पूछना चाहिए कि हाँ ये काम हमने लास्ट मीटिंग में तय हुआ था कि ये आपको ये असाइन किया गया था, तो प्लीज बताओ कि स्टेटस क्या है, स्टेटस ऑफ द वर्क असाइंड इन द लास्ट मीटिंग। तो ये हुआ मीटिंग का रिव्यू। तो फर्स्ट एजेंडा ऑफ द IQAC मीटिंग शुड बी रिव्यू ऑफ द लास्ट मीटिंग, रिव्यू ऑफ द लास्ट मीटिंग। इसके बाद जो भी हम तय करते हैं कि हमें ये नेक्स्ट, माना कि 5 नेक में जाना ही है, हम तय करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी के लिए हमने क्या क्या सोचा है, किसको क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वर्क्स वी आर टू डू, तो क्या क्या वर्क कौन कौन करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है, वैसे अलग अलग मतलब कि किस कमिटी को सौंपना है, स्टूडेंट्स को रखना है, कैसे करना है। तो ये जो चीजें हैं उसको तय करने के लिए हम एजेंडा में आइटम वाइज दिखाएंगे, ये है ना। तो ये आइटम वाइज एजेंडा तय कर लेंगे, फिर सर्कुलेट करेंगे, सभी को मिल जाना चाहिए, हर एक IQAC मेंबर को ये मिल जाना चाहिए कि हाँ ये मीटिंग कब है, कहाँ पर है ना, ये सब मिल जाना चाहिए सब थ्रू द सर्कुलर। ओके, अभी तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, या तो मीडिया है हमारे, ईमेल से भी भेज सकते हैं, टेलीफोनिक भी भेज सकते हैं। ये चीजें जो है डॉक्यूमेंट्री में होना चाहिए। हम कहते हैं कि हमने मीटिंग की, मीटिंग नंबर 43 माना कि है, तो मीटिंग नंबर 43 का एजेंडा आइटम क्या था, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो या पेपर फॉर्मेट में हो, कोई बात नहीं, लेकिन दैट शुड बी फॉर्मेट, दैट शुड बी डॉक्यूमेंट फॉर द सर्कुलर ऑफ द मीटिंग। पहली बात ये। इसके बाद होती है मीटिंग होती है, तो मीटिंग में हमें एजेंडा वाइज, एजेंडा नंबर 1, एजेंडा आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, एजेंडा आइटम वाइज डिस्कस करना है और डिसीजन लेना है, हमें क्या करना है, कब करना है, किसको करना है, कैसे करना है, कौन करेंगे, कितने टाइम लाइन करेंगे। तो जब डिसीजन लेते जाएंगे, जो भी डिसीजन लिया जाए वो लिखना है, और इसके जो जिसको हम सौंपते हैं, जिसको हम असाइन करते हैं कि ये काम ये करने वाले हैं, और इसके बाजू में नाम लिखना है, डिसीजन जो किया, डिसीजन लिया गया, ये काम कितने टाइम में हुआ है, टाइम लाइन शुड बी देयर, है ना। डिसीजन 1 इसको ना, माना कि ये काम करना है, तो ये काम कौन करेंगे, माना कि कॉलेज की वेबसाइट जो है इसका मेंटेनेंस करना है, कौन करेंगे, तो हमारे कॉलेज में जो IT के टीचर्स हैं तो वो करेंगे, तो IT के टीचर्स के नाम लिखना है, कितने टाइम में करना है, तो लिख देंगे। हाँ, माना कि ये आज है 11 तारीख है, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं 20 तारीख तक ये सब पूरा हो जाना चाहिए, तो बाजू में डेट भी लिख देते हैं, नाम भी लिख दिया, डेट लिख देते हैं। तो इस तरीके से डिसीजन में आना चाहिए कि ये काम इसको सौंपा गया, इस काम इसको सौंपा गया, तो ये पूरा मिनिटाइज होना चाहिए। और लास्ट एजेंडा हमेशा के लिए होता है फ्रॉम द चेयरपर्सन, या तो IQAC कोऑर्डिनेटर, कुछ नई बातें दिमाग में आती हैं या तो कहीं नहीं सीख के आते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटो रहता है ना, वो मोटो होता है आ नो भद्राह कत्वो यंतु विश्वता। हमारे इस संसार में चारों ओर से हमें शुभ विचार मिले, शुभ विचार मिले, शुभ विचार मतलब शुभ देखें, हम जो भी देखते हैं अच्छा देखते हैं, जहां पर भी अच्छा देखते हैं उसको हम एडप्ट करें, स्वीकार करें, है ना। एक चीज हमें एक दिस इज कॉल्ड अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच को कहते हैं। जब कोई अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए शुरुआत है, नेक में जाना है, पहली बार जाना है, शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए, शुरुआत में हमें किसी को एडप्ट करना चाहिए। माना कि हम कहते हैं कि हाँ ये DB कॉलेज है, ये अच्छा काम कर रही है, क्राइटेरियन 1 में, क्राइटेरियन 2 में, क्राइटेरियन 3 में, क्राइटेरियन 4 में, सब में अच्छा काम कर रही है। तो हमें इसकी कॉपी करना है, बस जरा सोचो, हमें इसको कॉपी करना है, सबसे पहले तो हम कॉपी करना है, कॉपी करना सीखो। वो किस तरीके से मीटिंग करते हैं, किस तरह की मीटिंग को मिनिटाइज करते हैं, हम इसको ऐसे ही करेंगे, तो इसको कॉपी करेंगे।
और हम शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे कि हाँ इसके बाद हम अपना ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन शुरुआत तो होती है कॉपी से ही होती है। जब हम बच्चे थे, जब छोटे थे, बालक थे, हम क्या करते थे? हम बड़ों की कॉपी ही तो करते थे। हम सीखे, जो भी सीखे कॉपी करके ही सीखे, इमिटेशन से तो सीखे। तो वी शुड इमिटेट, हमें कॉपी करनी चाहिए, लेकिन किसकी कॉपी करनी चाहिए? जो हमसे बेहतर काम करते हैं उसकी कॉपी करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छी कॉलेज है, बहुत अच्छी कॉलेज है। ये कॉलेज को सीजीपीए कितना मिला है? वो 3.5, मोर देन 3.51। मतलब ये अगर इस हिसाब से देखें तो इसको ए प्लस प्लस ग्रेड कहा जा सकता है ना, ए प्लस प्लस ग्रेड है। लेकिन पुराने फ्रेमवर्क में गए हैं, इसलिए 3.5153 है मेरे ख्याल से। तो मतलब इसको ए प्लस कहा जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचना ये हमारा टारगेट हो सकता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो वो कर रहे हैं, है ना, ये कॉलेज कर रही है, धोते बंधु कॉलेज जो कर रही है, इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? तो ये हमारा टारगेट रखना चाहिए, हमें सीखना है हमें। दूसरी बात, कोलैबोरेटिव क्वालिटी इनिशिएटिव्स विथ अदर इंस्टीट्यूशंस, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये आईक्यूएसी में आता है कि आईक्यूएसी ने कितनी क्वालिटी इनिशिएटिव लिए हैं जो कोलैबोरेटिव है। कोलैबोरेशन विथ अदर इंस्टीट्यूशंस, यहाँ तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है परामर्श के अंदर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अंडर द परामर्श देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस। तो माना कॉलेज नंबर 1 है, कॉलेज नंबर 2 है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक चीज खास ध्यान रखनी है। लेट मी शो यू। यहाँ अदर कॉलेजेस लिखा है, लेकिन एक चीज यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट में एस लिखा है। तो इंस्टीट्यूशन एक से भी होती है, ज्यादा भी हो सकती है। और यहाँ एक चीज है, यहाँ एस फॉर एक चीज बताता हूँ, सिस्टर इंस्टीट्यूशन नहीं होनी चाहिए, सिस्टर कॉलेज नहीं होनी चाहिए। एक ही मैनेजमेंट की 2 कॉलेजेस हैं, तो उसके साथ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव नहीं लेना है हमें, खास ख्याल रखना है। अगर वो सिस्टर इंस्टीट्यूशन है तो उसको नहीं काउंट करते, है ना, क्योंकि वो तो एक ही मैनेजमेंट के अंडर में आता है। तो हमें अदर मैनेजमेंट के अंदर जो कॉलेज आती है ना, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन होना चाहिए। बहुत से देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डन बाय आईक्यूएसी ऑफ एक्स कॉलेज, आईक्यूएसी ऑफ वाई कॉलेज। सबसे बहुत अच्छी चीज है, अच्छी कॉलेज के लिए हम अब आपस में हम तय करें कि एक मैनेजमेंट है, दूसरा मैनेजमेंट है, दोनों के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 1 या 2 या ज्यादा कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ले सकते हैं, कर सकते हैं। एनआईआरएफ में पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो कर लेना चाहिए। अभी भी हमारे पास लेकिन मेरे ख्याल से 19 फरवरी तक उसको एक्सटेंड किया गया है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं, है ना। तो पार्टिसिपेशन ऑफ एनआईआरएफ बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा होता है कि हाँ, माना कि एनआईआरएफ तो माना कि नहीं कर सकते इस साल नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर करेंगे, हो सकता है तो बिल्कुल हमें पार्टिसिपेट करना ही है। जो भी हमें क्या नंबर रैंक को क्या मिले वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एनआईआरएफ में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एक चीज बहुत ही अगत्य है। दूसरी बात है, इसके अलावा भी एक्रेडिटेशन हो सकता है, जैसे है ना वो उसके लिए अलग अलग एजेंसी होती है, माना कि आईएसओ प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ एनबीए एक्रेडिटेशन होता है, वो होता है प्रोग्राम का एक्रेडिटेशन होता है ना। माना कि ये खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो है एनबीए है, ये एनबीए है ना, वही एनआईआरएफ संभालता है। मैं बताऊं, एनआईआरएफ और एनबीए दोनों का बोर्ड सेम ही है। मतलब ये एनबीए है, वही एनआईआरएफ के लिए रैंकिंग में एक बहुत बड़ा उसका योगदान रहता है, वही लोग काम करते हैं। तो उसके लिए जो स्ट्रेटेजी है, कैलकुलेशन है, वो अकॉर्डिंग टू एनबीए बहुत सा मिलता जुलता है। तो इसके अलावा भी कोई एजेंसी हो सकती है, इससे हमें ऑडिट करवाना है, क्वालिटी ऑडिट करवाना है। और एक चीज ये भी बता सकता हूं मैं कि यहाँ स्टेट एजेंसी भी हो सकती है, नेशनल एजेंसी भी हो सकती है, इंटरनेशनल एजेंसी भी हो सकती है, लेकिन ये होना चाहिए, क्वालिटी ऑडिट होना जरूरी है ना। ये क्वालिटी इनिशिएटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? जब कहते हैं क्वालिटी इनिशिएटिव्स, तो सबसे पहला जो जिस कॉलेज का एक बार असेसमेंट हो चुका है नेट में, तो उसको तैयार करना चाहिए, AQAR तैयार करना चाहिए। ओके, प्रिपेयर्ड या तो सबमिटेड। एक चीज बताऊं, जो कॉलेज पहली बार जा रही है वो कहेंगे तो ये हमें तो लागू नहीं पड़ता है ना, हम कैसे AQAR तैयार करते, तो हम वी आर ओके अंडरगोइंग फर्स्ट टाइम,
मैं एक बताना चाहूंगा कि AQR जो है इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर लो एक बार, है ना। ये AQR का फॉर्मेट क्या है वो डाउनलोड करो, और AQR के जो फॉर्मेट में क्राइटेरियन वाइज जो जो डेटा हमें भरनी है वो एक बार भर के देख लो, है ना, कैसे क्या पर क्या क्या है। एक्चुअली दिस आर द पैरामीटर्स थ्रू विच वी कैन सेल्फ एसेस अवर इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो इसके लिए प्रिपेयर तो करो, ये प्रिपरेशन काम में आएगी। नेक जब नेक में अप्लाई होंगे ना, एट दैट टाइम दिस AQR विल बी यूजफुल फॉर अस। कोलैबोरेटिव क्वालिटी इनिशिएटिव्स विद अदर इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर वही पूछा ये बार, फिर यहाँ पर आया, क्योंकि ये एक ही मैट्रिक्स में मैं अभी लेता हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा है। ओके, इसके लिए क्या फाइल होनी चाहिए, जो भी हमारे पास फाइल है, तो फाइल डिस्क्रिप्शन, पेस्ट वेब लिंक ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं मानता हूँ ये एनुअल रिपोर्ट वाली बात जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये देखो, जनरली ये प्रैक्टिस बहुत सी कॉलेज में नहीं होती है, एनुअल रिपोर्ट नहीं प्रिपेयर होता है। हमें एनुअल रिपोर्ट जो गुजर गया वो गुजर गया, डन इज डन, पास्ट इज पास्ट, लेकिन इस साल से हम कर लेंगे, है ना। माना कि ये आधा साल हो गुजर गया, कोई बात नहीं, अब शुरू करेंगे। वी शुड प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है। एनुअल रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स में हमें डॉक्यूमेंट्स देना हो कि ये एक्टिविटी हमने इस साल इस महीने में की थी, इसका आधार क्या है, डॉक्यूमेंट। अगर हमारे एनुअल रिपोर्ट में ये शामिल है, इसके फोटोग्राफ है, इसका रिपोर्ट है, तो इसको स्कैन करके हम डीवीवी में अपलोड करते हैं, तो इट इज एक्सेप्टेड, इट इज रियली एक्सेप्टेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक चीज तय कर लो कि हमें इस साल का तो एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना ही है, और एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना है वो भी क्राइटेरियन वाइज प्रिपेयर करो, है ना। क्राइटेरियन 1 में क्या कौन कौन सी चीजें आती है, क्राइटेरियन 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में, 6, 7, इन ईच क्राइटेरिया क्या क्या इस रिपोर्ट में आना चाहिए। लुक एट द क्राइटेरियन वाइज और इसके अच्छा रिपोर्ट तैयार करो, एनुअल रिपोर्ट। इसके अलावा जो भी चीजें आती है सब के सब शामिल करो इसमें एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट में एक ही एनुअल रिपोर्ट में बहुत से पेजेस हो सकते हैं, हमें ये जरूरी नहीं है कि एनुअल रिपोर्ट ये है इसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, हमारे पास इसकी ई कॉपी भी हो सकती है ना। तो ये ई कॉपी वाला एनुअल रिपोर्ट बनाओ, इसका एडिटोरियल बोर्ड बना दो। अब इस साल नहीं हो सकता, नेक्स्ट ईयर से इसको एनुअल रिपोर्ट है वो, इसके लिए ISBN नंबर भी नहीं, ISBN के अप्लाई कर दो, ISBN के साथ उसको पब्लिश करो, कोई बात नहीं है। So that will be, this is very important. Let me show you. Annual report is very important document for us, for the documentation, for the proof. Okay. फिर upload e-copies of accreditation and certifications. अगर हमने जो भी accreditation किया है, करवाया है, सर्टिफिकेट है, इसकी ई कॉपी जो है इसको हमें अपलोड करनी पड़ेगी। मतलब ई कॉपी मतलब स्कैन कॉपी कह सकते हैं इसको। अपलोड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये एक ही क्वालिटेटिव मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा हूं मैं। इसके हमारे पास इसके अलावा भी है, कुछ है एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं हम तो दे सकते हैं, लेकिन ये देने के लिए जरूरी चीज क्या करना है, जैसे गणेश साहब ने बताया ऐसे ही करना है। क्या करना है, हमें हमारी कॉलेज की जो वेबसाइट है, ये जो पोर्टल है या तो वेबसाइट है, तो वेबसाइट के ऊपर हम स्पेशली एक टैब बनाएंगे। साहब ने बताया कि नेक का टैब बनाना है, वहां पर इस टैब में इसके अंदर एक पेटा टैब बनाएंगे, है ना। इसके अंदर टैब के अंदर टैब, सब टैब कह सकते हैं इसका। तो एक पूरा फोल्डर बनाएंगे, इस फोल्डर में वहां पर इसका नाम भी रख सकते हैं कि SSR डॉक्यूमेंट्स, SSR सॉइल स्टडी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें हम ये सब चीजें जो है ना, हमें जो डॉक्यूमेंट है हम दिखाना चाहते हैं वो भी हमें इस फोल्डर में सब फोल्डर बनाओ। 7 पॉइंट मतलब क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरियन 2, 3, 4, 5, 6, क्राइटेरिया नंबर 1 पर क्लिक करते हैं तो वहां पर भी 1.1 खुलना चाहिए। 1.1 के लिए जो जितने भी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स के हिसाब से हमें कौन कौन से मैट्रिक्स में क्या हमें डॉक्यूमेंट दिखाना है, तो इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। और हमने अपलोड कर दिया इन द रिस्पेक्टिव क्राइटेरियन की एस्पेक्ट एंड मैट्रिक्स हमने रख दिया। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी लिंक जो है इसको खोलना है, ओपन किया, वेब पेज में दिख रहा है ये पूरा डॉक्यूमेंट। बस अब
हमें एड्रेस बार में जाना है, वहां से इसकी लिंक कॉपी करना है, जिसको हम कहते हैं यूआरएल कहते हैं। यूआरएल को कॉपी करना है और वो यूआरएल जो होता है उसको हमें शेयर करना है। तो यहाँ पर शेयर करते हैं सिर्फ थ्रू द लिंक ओनली, नथिंग एल्स, थ्रू द लिंक। इसके बाद है अपलोड डिटेल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डेटा टेम्पलेट। हाँ, डेटा टेम्पलेट जो है हमारे पास, डेटा टेम्पलेट कहाँ पर दिया जाता है? जो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है वहां पर डेटा टेम्पलेट है, इसके लिए फिक्स है। ऐसी डेटा टेम्पलेट में ही हमें इस जो फॉर्मेट दिया गया उस फॉर्मेट में ही हम डेटा देना है ना। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट चेंज इट। आपने बताया भी, अगर चेंज करेंगे तो हमें मार्क्स गए, उसको छोड़ दो, हमें भूल जाना चाहिए, हमें ये मार्क्स दिख गए ही नहीं हमें। इफ वी चेंज, हम कहते हैं कि हाँ ये यहाँ पर कुछ गलती रह गई, मिसप्रिंट रह गई, कोई भी जो भी है, वी शुड नॉट चेंज इट। अगर हमने चेंज किया, इट मीन्स वी लूज द मार्क्स, वी लूज द पॉइंट्स। हमें कुछ चेंज नहीं करना, जो भी है ऐसा ही रहने देना है, उसमें ही हमें डाटा देना है ना। फिर भी हमें कुछ देना चाहते हैं एडिशनल, माना कि वहां गलती है, देना चाहते हैं, एडिशनल देना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से लिंक है, लिंक देने की बात नहीं है। ओके, अब ये बताऊं मैं कि IQAC को अब ये अगले 6 महीने में क्या करना है, ये अगले 6 महीने में क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस कितना कवर होता है, रेगुलर मीटिंग करें। माना कि अच्छा सही तरीके से हो रहा है कोई बात नहीं, तो भी इसको हम मिनिटाइज करेंगे मीटिंग में, लेकिन रिव्यू करना ही है। सिलेबस कवर्ड इन द क्लास, जो भी क्लास है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर में भी माना कि अलग अलग डिवीजन 1 है, डिवीजन 2 है, जितने भी है, तो सिलेबस कवर्ड इन क्लास, सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, ये सब जरूरी इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज द मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी। IQAC का रोल है सिलेबस कवर्ड इन द क्लास। अगर सिलेबस कवर नहीं हो रहा है बिफोर द एग्जाम, और जब स्टूडेंट को पूछा जाएगा, क्वेश्चन तो आएगा ही, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, ओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। ये जो है इसका इंपॉर्टेंस कितना है जरा देखो, 60 है आउट ऑफ 1000। हम देखते हैं कि क्राइटेरियन 1 इसका वेटेज कितना है, क्राइटेरियन 2, क्राइटेरियन 3, क्राइटेरियन 4, क्राइटेरियन 5, तो 1 ओके। तो क्राइटेरियन 6, 7 देखें, इसका वेटेज कितना है, तो 100 है। 6 का वेटेज कितना है, तो 100 है। 4 का वेटेज कितना है, तो 100 है। तो लेकिन ये जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे अकेला एक मैट्रिक्स ही है, वो तो पूरा क्राइटेरियन नहीं है, लेकिन खुद का मैट्रिक्स का वेटेज है 60। तो 60 इंटू 4 240 हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर इसमें हमने मार्क्स गवाए, स्कोर गवाया, सोचो कि हमारी वाट लग गई। मैं कैसे बताऊं कि फिर हमें अच्छा परफॉर्मेंस के लिए क्वांटिटेटिव में या क्वालिटेटिव में विजिट में सोचो ही मत। अगर हम सोचते हैं कि A ग्रेड तक जाएंगे, इट इज नेवर पॉसिबल। मैं कह सकता हूँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने जहां अच्छे स्कोर मिल सकता था वो गवा दिया हमने। इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉलेज का नाम नहीं दे रहा हूँ। एक कॉलेज ने SSS को बहुत लाइटली लिया। उसने बोला कि हाँ टीचर्स तो हमारे फ्रेंडली है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, है ना। स्टूडेंट्स बहुत फ्रेंडली है टीचर्स के साथ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अच्छा ही जो देंगी फीडबैक देंगे कॉलेज के बारे में, टीचर्स के बारे में, जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, 21 तो फर्स्ट 21 मतलब 21 क्वेश्चन जो है वो तो कुछ भी लिख सकते हैं बच्चे। लेकिन पहली बात तो ये हुई कि SSS शुरू हुआ तो ये विदिन एक वीक के लिए जरा देखें तो 1% ही स्टूडेंट, जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके 1% ही स्टूडेंट ने उसको रिस्पॉन्ड किया था, बाकी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था। फिर देखा तो नहीं हो रहा है, फिर तो कोऑर्डिनेटर को चिंता हुई कि तो बहुत बुरी बात है। स्टूडेंट्स को फिर अप्रोच किया, भाई ये नहीं हो रहा है, ट्रिपल में से ट्रिपल एस नहीं हो रहा है अच्छी तरह से। फिर स्टूडेंट्स को हम फिर एक बार खुद ने ईमेल भेजें कि भाई SSS का अगर आपको ईमेल आया हो तो उसको रिस्पॉन्ड करो और SSS भर दो। हुआ, हो भी गया, विदिन 15 डेज ये पूरा हो गया। लेकिन जब पता चला आफ्टर सम टाइम, DVV जब DVV वेरिफिकेशन आया तब पता चला,
तो ये पता चला कि उसके जो स्कोर जो है ना, इट इज वेरी लेस. आउट ऑफ 240 द कॉलेज ऑब्टेन 89. जरा देख लो, सोचो, स्टूडेंट्स ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दे दिए, नेगेटिव फीडबैक दे दिए, है ना. माना कि यही है सिलेबस कवर्ड इन द क्लास, तो स्टूडेंट ने लिख दिया ना कि कवर नहीं हो रहा है पूरा. इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स जब फीडबैक देंगे तो जरा सोचो, अगर हम क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं कह सकते कि नहीं सिलेबस कवर नहीं हुआ है फिर भी आपको तो अच्छा ही फीडबैक देना, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उसको, ये स्टूडेंट्स और नेकी में दोनों ये कब रिस्पॉन्ड करते, कैसे करते, उसमें कॉलेज कैन नॉट इंटरवेन, नहीं कर सकती, मैं इसके कोई विक्षेप नहीं कर सकते. तो डायरेक्टली होता है, ये इंटरेक्शन होता है. दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये मॉनिटरिंग करना ही पड़ेगा IQAC को. सेकंड जो है टीचर्स प्रिपरेशन फॉर द क्लासेस. जब पढ़ाने के लिए टीचर्स जाते हैं, क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो खुद प्रिपेयर करके जाते हैं, ये बच्चों से पूछा जाता है. तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ना प्रिपेयर करते नहीं आते, वैसे आ जाते हैं कि चलो आज ये लेक्चर लेना, चलो मैं जाता हूँ लेक्चर लेके आता हूँ. तो विदाउट प्रिपरेशन टीचर आ गए क्लासरूम में, पढ़ा दिया, अच्छी कोई बात नहीं है. लेकिन जब एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे में कि टीचर्स जो पढ़ाने के लिए आते हैं तो विथ प्रिपरेशन आते हैं क्या, तो स्टूडेंट्स का ये रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि हाँ टीचर्स जो आते हैं वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, है ना. क्योंकि वहां पर भी 0 1 2 3 4 है, वहां पर भी तो 4 स्कोर मिलना चाहिए उसमें भी, है ना, अदरवाइज 0 मिल जाएंगे. नेक्स्ट, टीचर्स आर एबल टू कम्युनिकेट ऑलवेज इफेक्टिवली. कम्युनिकेट कर सकते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, वो कम्युनिकेट होता है, लेकिन इफेक्टिवली होता है क्या, और हमेशा के लिए इफेक्टिव होता है क्या, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली पूछे ही जाते हैं. तो वहां पर भी ये देखना, हमें IQAC को देखना है कि टीचर्स शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ऑलवेज इफेक्टिवली. ये हमें होता है या नहीं होता है, वो चेक करना है. टीचर्स अप्रोच, टीचिंग के लिए अप्रोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसा अप्रोच है ना, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है. और एट दैट टाइम अगर स्टूडेंट ने दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया कि नहीं टीचर्स का अप्रोच ठीक नहीं है, इतना है ना, एक्सेलेंट तो नहीं है, पॉजिटिव कहते हैं, एक्सेलेंट तो नहीं है, तो हम ये यहाँ पर जो 60 into 240 है, ऐसे मार्क्स गवाएंगे ही. दूसरी बात है फेयरनेस ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन प्रोसेस बाय टीचर्स. टीचर्स जो इंटरनल इवेल्युएशन करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल इवेल्युएशन जो है, एक्सटर्नल असेसमेंट जो होता है वो तो यूनिवर्सिटी से होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्राइटेरिया नंबर 2 में जिसका इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा है, हमें पता है कि 350 है आउट ऑफ 1000, मतलब 35% है. इसका मतलब क्या हुआ, 35% का मतलब ये हुआ कि जो पीयर टीम जितना स्कोर देने वाली है ना, उतना स्कोर इसका क्राइटेरिया नंबर 2 में ही है. क्राइटेरिया नंबर 2 जो है और वो और पीयर टीम दोनों के पास सेम ही है, तो क्राइटेरिया नंबर 2 में ही बहुत फोकस करना पड़ेगा हमें. तो क्राइटेरिया 2 में यही बात है कि फेयरनेस ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन. क्राइटेरिया नंबर 2 का नाम क्या है, टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन. उसमें इवेल्यूशन का पार्ट स्पेशल रखा है. इवेल्यूशन किसका इवेल्यूशन करना है, हमें इवेल्यूशन कैसे करना है, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए. CI लिखते हैं ना, कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्यूशन लिखा जाता है. तो इवेल्यूशन शुड बी इंटरनल एंड कंटिन्यूअस. तो इवेल्यूशन करते हैं तो क्या, किसको इवेल्यूशन करना है, स्टूडेंट्स का इवेल्यूशन करना है, नहीं, स्टूडेंट्स का इवेल्यूशन नहीं करना है. टीचिंग का इवेल्यूशन करना है, वो भी नहीं करना है. इवेल्यूशन करना है हमने जो एक्सपेक्टेड आउटकम तय किए हैं उसका. ये एक्सपेक्टेड आउटकम हमने तय किए कि स्टूडेंट शुड हैव द नॉलेज ऑफ दिस, अगर ये नॉलेज है या नहीं है वो चेक करना है. तो एक्सपेक्टेड आउटकम जिसको कहते हैं, जिसको कोर्स आउटकम्स में आते हैं, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स में आते हैं, प्रोग्राम आउटकम्स में आते हैं, खास करके यहाँ पर होना चाहिए कोर्स आउटकम की बात बोल रहा हूँ. तो कोर्स आउटकम में जो एक्सपेक्टेड आउटकम तय किए हैं, जो डिफाइन किए हैं, उसका इवेल्यूशन होना चाहिए. और इवेल्यूशन हुआ through the assignment, through the multiple choice questions, through the internal test, through the seminar, है ना, किसी न किसी तरीके से इंटरनल असेसमेंट हुआ, इवेल्यूशन हुआ. और इवेल्यूशन होने के बाद वो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए. माना कि स्टूडेंट्स को ये इस माना कि असाइनमेंट में कितने मार्क्स मिले ना, असाइनमेंट नंबर 1 दिया गया, सबके असाइनमेंट असेसमेंट हुआ, तो स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स दिए, माना कि 10 मार्क का असाइनमेंट था, तो आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले, 5 मिले, 7 मिले, 8 मिले, 3 मिले, जो भी. तो वो
ट्रांसपेरेंट होना, मतलब कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर होना चाहिए, कॉलेज की वेबसाइट पर होना चाहिए, SMS थ्रू भी भेज सकते हैं, स्टूडेंट्स की सिग्नेचर भी ले सकते हैं कि हाँ इतने मार्क्स मिले, तो स्टूडेंट्स कैन आस्क कि साहब मुझे यहाँ पर 3 मार्क्स 7 मिले, 3 मार्क्स कहाँ कटे, ये फेयर नहीं है। तो फेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट शुड फील, स्टूडेंट को फील होना चाहिए कि ना ये असेसमेंट वाला बिल्कुल फेयर हुआ है, यहाँ पर 3 मार्क्स बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड आंसर यही था, ये हमारे आंसर गलत इस 3 मार्क्स के लिए इसलिए कटे, इट वाज नॉट अप टू द मार्क्स, है ना, ये होना चाहिए। एवरी टाइम परफॉर्मेंस इन असाइनमेंट्स शुड बी डिस्कस विद द स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, SSS में पूछा ही जाता है, स्टूडेंट्स को पूछते ही है कि स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट पहली बात तो मैंने देखा है, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत, आई एडमिट, मैंने बहुत से कॉलेजेस देखी हैं कि इसमें देखते हैं कि असाइनमेंट लेते हैं लेकिन असेसमेंट नहीं करते हैं, चेक नहीं करते हैं, बस ऐसे पढ़ रहते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स का असाइनमेंट लिया हमने, इसको असेसमेंट करो, है ना, जब भी टाइम मिले, कोई बात नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा, टीचर है तो टाइम निकालना पड़ेगा। असाइनमेंट हमने फिर इस असाइनमेंट के मार्क्स देते हैं, तो आउट ऑफ 10 हमने 7 दिए, तो 3 मार्क्स कहाँ कटे? तो इसका जो है ना, ये शुड बी डिस्कस। क्लासरूम में जब जाते हैं तो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, सबसे पुअर क्या रहा, सबसे अच्छा किसका रहा, क्या एक्सपेक्टेड था, तो ये सब चीज है ना डिस्कस करनी चाहिए, शुड बी डिस्कस इन द क्लासरूम, है ना, अमंग द स्टूडेंट्स, ये जरूरी है। कॉलेज टेक्स एक्टिव इंटरेस्ट, कॉलेज, यहाँ पर कॉलेज की बात हो रही है, तो कॉलेज एक्टिव इंटरेस्ट लेती है या नहीं लेती है, इसका मॉनिटरिंग तो IQAC को करना है। कॉलेज टेक एक्टिव इंटरेस्ट किसके लिए? इन प्रमोटिंग किसको प्रमोट करना है? इंटर्नशिप के लिए, जो साहब बता रहे थे, इंटर्नशिप के लिए, या तो स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए, या तो फील्ड विजिट के लिए, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अगर इंटर्नशिप होता है तो बहुत अच्छी बात है। इंटर्नशिप की हमें पता है, हमें पता है कि इंटर्नशिप कहाँ कहाँ पर हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। अगर हमारे कॉलेज में इसका कोई, है ना, नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं है, तो इंटर्नशिप नहीं हो तो कोई बात, स्टूडेंट एक्सचेंज तो कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ इंटर्नशिप के लिए कोई हमारे कोई स्कोप ही नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। मेडिकल कॉलेज में होता है कि इंटर्नशिप जरूरी होता है, हमारे कॉलेज में नहीं हो सकता है, तो कोई बात नहीं, स्टूडेंट एक्सचेंज का प्रोग्राम हो सकता है, स्टूडेंट कैन बी एक्सचेंज। हाँ, एक कॉलेज दूसरी कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ सप्ताह के लिए, फॉर ए वीक कर सकते हैं। माना कि टीचर ऑफ वन कॉलेज, है ना, इकोनॉमिक टीचर इकोनॉमिक्स ऑफ वन कॉलेज, टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स अदर कॉलेज, तय करते हैं कि एक है ना, ये मार्च महीने में है ना, माना कि ये स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट यहाँ इसके वहां पर जाएंगे, 15 स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, उसके लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है। तो ऐसे कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकते हैं, फाइंड आउट। तो इसके कॉलेज टेक्स एक्टिव इंटरेस्ट लेना, सिर्फ इंटरेस्ट लेना ही, एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग इंटर्नशिप, स्टूडेंट एक्सचेंज, या तो फील्ड विजिट, स्टूडेंट्स को फील्ड विजिट दे सकते हैं, स्टूडेंट्स फील्ड में जाएं और वहां कुछ ना करिकुलर एक्टिविटी करें, या तो को करिकुलर एक्टिविटी करें। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, करिकुलर एक्टिविटी के लिए अंडर द एकेडमिक करिकुलर एक्टिविटी में आना चाहिए, करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, या तो को करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये अपने अभ्यास के संबंधित कोई है ना फील्ड विजिट करते हैं बच्चे, तो इसके लिए कॉलेज प्रमोट करती है, इंटरेस्ट लेती है या नहीं लेती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। टीचिंग एंड मेंटरिंग फैसिलिटेट स्टूडेंट्स इन कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। स्टूडेंट्स का जो ग्रोथ होता है, कॉग्निटिव तो थ्रू द, हमारे पास सिलेबस है, कॉग्निटिव तो हो गया ज्ञान, कॉग्निटिव मतलब ज्ञानात्मक, तो ज्ञान के हिसाब से स्टूडेंट्स का ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल ग्रोथ हो रहा है। तो इसके लिए कौन कर सकते हैं? तो इसके लिए टीचिंग है या मेंटरिंग है, दोनों काम में आ सकता है। टीचर एंड मेंटरिंग, टीचर का 2 रोल है यहाँ पर, टीचिंग भी करना है, साथ में मेंटरिंग भी करना है। मेंटरिंग इसलिए करना है कि स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट अपनी जो समस्याएं हैं टीचर स्टूडेंट्स को बता सके कि हाँ आई हैव सम प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर में है, या टॉपिक में है, या तो और भी हो सकते हैं, खुद की अपनी फैमिली की प्रॉब्लम भी हो सकती है कभी। हम ये देखते हैं, आजकल देखते हैं कि स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट में जो है वो सुसाइडल केस देखते हैं हम, कुछ स्टूडेंट ड्रॉप आउट भी होते हैं। तो
ये जो चीजें जो है, अगर स्टूडेंट्स को इमोशनल सपोर्ट मिलता है ना, तो थ्रू द मेंटर, तो ऐसे सुसाइडल केस नहीं होते, अगर ये ड्रॉप आउट नहीं होता। तो इसके लिए टीचिंग एंड मेंटरिंग शुड फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स। ये होता है या नहीं होता, इसका है ना मॉनिटरिंग कर सकते हैं IQ से। कॉलेज शुड प्रोवाइड मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, है ना। कॉलेज मल्टीपल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है या नहीं करता है, वो चेक करना है, IQAC का रोल है ये। टीचर, ऑल द टीचर्स, यहाँ पर टीचर्स लिखा, टीचर्स इन्फॉर्म एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसीज, कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। जब कॉलेज में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, या तो मैं ये कहूँगा सेमेस्टर सिस्टम है, या तो फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ एनी सेमेस्टर, बिफोर कमेंसिंग द क्लासेस, टीचिंग शुरू करने से पहले ही ये हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या इन्फॉर्म करना चाहिए? एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसीज, कि ये स्टूडेंट्स जो है, तो ये सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स में क्या क्या नॉलेज बढ़ेगा, क्या स्किल आएगी। मतलब स्टूडेंट्स विल एक्वायर द स्किल्स, स्टूडेंट्स विल गेट द नॉलेज, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड दिस। तो ये क्या क्या है, दिस कॉम्पिटेंसी है, इसको क्या कॉम्पिटेंसी का मतलब क्षमता बढ़ेगी, है ना, जो एक्सपेक्टेड है। तो एक कौन सी क्षमता बढ़ेगी, स्टूडेंट्स की कौन सी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एक सेमेस्टर ये एक पढ़ लिया स्टूडेंट ने, एक कोर्स पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, जो भी पढ़ लिया, तो इसके पढ़ने से स्टूडेंट्स में क्या इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड आउटकम है, मतलब इस पे क्या बढ़ोतरी होगी, क्या एक्वायर होगा, स्टूडेंट्स के पास क्या होगा। और दूसरी बात, कोर्स आउटकम, जो हमने कोर्स आउटकम, फर्स्ट पहली बात तो ये है कि कोर्स आउटकम्स मस्ट बी वेल डिफाइंड। एक्चुअली ये काम किसका है, दिस इज द वर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये जो काम है वो यूनिवर्सिटी का है। अगर यूनिवर्सिटी के पास कोर्स आउटकम वेल डिफाइंड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने कॉलेज में, अपने सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का मतलब कोर्स, सब्जेक्ट का मतलब होता है कोर्स, तो अपने कोर्स में अपने सब्जेक्ट के आउटकम निकालेंगे। माना कि सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से स्टूडेंट्स में क्या क्या चेंज आएगा, जो नहीं पढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसमें क्या डिफरेंस होगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स of the macroeconomics, students will get the knowledge of this, students will have the understanding of this, students will be able to apply his knowledge or her knowledge to solve such kind of problems. तो ये जो expected outcomes होते हैं, तो ये expected outcome क्या है, teacher should know, students should know. Not only this, parents also should know. पेरेंट्स को पता होना चाहिए। तो इसलिए क्या होना चाहिए, ये जो कोर्स आउटकम्स, प्रोग्राम आउटकम्स, कॉम्पिटेंसीज, ये जो है अपनी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर होना ही चाहिए। कहां पर होना चाहिए, अंदर द स्टूडेंट्स का जो हम बनाते हैं टैब रहता है ना कॉलेज, ये अपनी वेबसाइट के ऊपर टैब होते हैं अलग अलग, होम, अबाउट, एक स्टूडेंट्स के लिए टैब होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए जो बेनिफिशियली है, जो भी चीजें हैं, जो भी एक्टिविटी हो, स्टूडेंट्स क्लिक करें तो देख सकते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या है। ये कॉम्पिटेंसी आती है, कोर्स आता है, सिलेबस आता है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स आते हैं, प्रोग्राम आउटकम्स आते हैं, ये सब चीजें आ सकती है वहां पर। पुराने क्वेश्चन पेपर वहां पर वो भी उसमें अपलोड कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स कैन डायरेक्ट डाउनलोड है। तो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स के लिए जो यूजफुल चीजें जो है वहां पर होनी चाहिए। तो दिस शुड बी कम्युनिकेटेड वेल। कम्युनिकेशन एट द टाइम ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी हो सकता है, इंडक्शन जो होता है जब भी कभी है ना, जब एट द टाइम, उसको भी हम कर सकते हैं। दूसरी बात है, मेंटर डज अ नेसेसरी फॉलो अप विथ असाइनिंग टास्क टू द स्टूडेंट एवरी टाइम। जब भी स्टूडेंट्स को कुछ न कुछ टास्क असाइन करते हैं तो इसका टीचर्स फॉलो अप लेते हैं या नहीं लेते, शुड बी मेंटर्ड, शुड बी मॉनिटर्ड। टीचर्स ऑलवेज इलस्ट्रेट, हमेशा के लिए इलस्ट्रेशन देते हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देते हैं ना, इलस्ट्रेट करते हैं। क्यों? इलस्ट्रेट द कंसेप्ट थ्रू एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस। कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो ना, एट द टाइम
कुछ एग्जाम्पल देते हैं, लाइव एग्जाम्पल देते हैं कुछ, है ना। तो ये एग्जाम्पल देते हैं या नहीं देते, कुछ एप्लीकेशन बता के बस जो भी ज्ञान हुआ प्राप्त किया उसकी भी एप्लीकेशन भी मिलनी चाहिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ये टीचर्स करते हैं या नहीं करते, ये शुड बी मॉनिटर। टीचर्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड, हाँ ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट्स जो है हमारे पास जो होते हैं, इसकी दो चीज है हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए, वो एक स्ट्रेंथ है, दूसरी है वीकनेस। जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत से अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग कुछ न कुछ उसके पास होता ही है। each student has some strength and each students can have some weaknesses ना। तो इसकी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है, इसमें क्या टैलेंट है, तो इसको हमें एनकरेज करना है, इसको प्रोवाइडिंग राइट लेवल ऑफ द चैलेंजेस, उसको चैलेंज देना है, कुछ ना कुछ चैलेंज देनी है। तो जिससे क्या होगा, इसको एनकरेजमेंट मिलेगा, है ना। इसके जो भी स्ट्रेंथ है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो वो टीचर्स करते हैं या नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। दूसरी बात ये भी है, मैंने बताया वीकनेस की बात है, जब वीकनेस हो स्टूडेंट्स में, कोई ना कोई वीकनेस हो, तो स्टूडेंट्स है ना, तो आइडेंटिफाई करे और इसको हेल्प करना है। तो ये टीचर्स करते हैं या नहीं करते, दिस इज। दूसरी बात आती है, टीचर्स यूज स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमेशा के लिए, एसएसएस में पूछे जाते हैं कि आपके कॉलेज के टीचर जो है वो एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से पढ़ाते हैं, है ना। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको कहते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंटर में होना चाहिए। टीचर शुड नॉट बी सेंटर, सिलेबस भी सेंटर में नहीं होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सिलेबस भी सेंटर में नहीं होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए स्टूडेंट। स्टूडेंट सेंटर में है तो हम इसको बहुत सी जो सिलेबस में है वो तो पढ़ाते ही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं हम उसको। तो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में खास करके जो आ रहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। साइंस में तो ये पॉसिबल है, साइंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंस में फिजिक्स पढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बॉटनी पढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, जूलॉजी में होता है, स्टैटिस्टिक्स में होता है, मैथमेटिक्स में भी हो सकते हैं, ऐसे इकोनॉमिक्स में भी हो सकते हैं। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हो जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैन बी प्रोवाइडेड। तो दूसरी बात, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट। तो स्टूडेंट्स है ना, माना कि अभी मैं देखिए अभी जो है अभी वेबिनार चल रहा है, वेबिनार में देयर आर सम पार्टिसिपेंट्स। अभी क्या कर रहे हैं, ये मोनोलॉग है, वैसे तो डायलॉग तो है ही नहीं। अभी तो मैं क्यों क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकर, यू आर लिसनर्स। तो ये अभी जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं होता तब तक आप पार्टिसिपेंट नहीं है, मैं तो कहता हूँ तब तक ये पार्टिसिपेटिव लर्निंग नहीं है। इफ यू डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, इट मीन्स यू आर नॉट पार्टिसिपेंट, यू आर जस्ट लिसनर्स। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होना चाहिए। जब पढ़ाते हैं कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसको टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी। जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं टीचर्स तो कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। इससे क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो स्टूडेंट्स में डेवलप होता है, एनालिटिकल स्किल जो उसकी डेवलप होती है, जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग में कह सकते हैं ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें टीचर्स करते हैं क्या? अगर नहीं करते हैं तो हम आज से ही बताएंगे हमारे टीचर्स को वैसे ये नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स को जब पूछेंगे एसएसएस में, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे में, तो स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो नेगेटिव हो सकता है एंड वी विल लूज द स्कोर ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टीचर्स शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानता हूं। अगर ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके रिलेटेड अलग अलग मैट्रिक्स हैं। क्योंकि कितने स्टूडेंट्स माना कि हमारे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं, लेकिन आउट ऑफ 1000 कितने स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हैं? तो कहते हैं कि हाँ 300 स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट करते ही है। तो 300 आउट ऑफ 1000 मतलब 30%। तो व्हाट इज अबाउट द 70%? इसका मतलब 70% स्टूडेंट ऐसे ही तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नेगेटिव हुआ, तो हमें स्कोर नहीं मिल सकता है वहां पर। अगर स्कोर हमें चाहिए तो स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक that may be of cultural activities, that may be of sports activities. हमारे यहाँ एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था नॉलेज कंसल्टेंट में गुजरात में, बहुत अच्छा कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं सप्तधारा कहते हैं। 7 धाराएं हैं यहाँ पर। एक धारा का नाम है ज्ञान धारा।
तो ज्ञान धारा के अंतर्गत यहाँ पर डिबेट हो, क्विज, वक्तृत्व स्पर्धा, ये सब चीजें जो है यहाँ पर इस धारा के अंतर्गत प्रोग्राम स्टूडेंट्स हर एक कॉलेज को करना कंपलसरी है। ये एक, दिस इज वन ऑफ द धारास, सात धाराएं हैं। सेकंड धारा, सेकंड, लेट मी टेल यू सेकंड, गीत संगीत नृत्य धारा। तो इसमें गीत के लिए कंपटीशन होनी चाहिए। तो गीत की जब बात करते हैं तो गीत के अलग अलग प्रकार होते हैं, फोकल सॉन्ग भी होते हैं, कंठी सॉन्ग भी, में से जिसको कहते हैं कंठी संगीत भी हो सकते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग भी हो सकते हैं, क्लासिकल सॉन्ग भी हो सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगिंग। तो इसके लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग गीत की, संगीत के लिए संगीत जो है वो वोकल भी होता है ना, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग कंपटीशन। तो गीत, संगीत और नृत्य, नृत्य में भी अलग क्लासिकल डांस भी होता है, फोकल डांस भी हो सकता है कुछ। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस। तो इसमें इसके लिए भी कंपटीशन होनी चाहिए। तो हर एक कॉलेज में ये होता है। मैं गुजरात स्टेट में ये कंपलसरी बना दिया है, गीत संगीत नृत्य धारा। फिर आता है रंग कला कौशल्य धारा। तो ये रंग के साथ जुड़ा हुआ है, रंग कला कौशल्य के साथ, माना कि रंगोली बनानी है, पेंटिंग करना है, स्केच करना है, पोस्टर बनाना है, कोलाज करना है, ये सब चीजें जो है, मेहंदी लगानी है। तो ये सब चीजें जो आती है वो रंग कला कौशल धारा में आया। बहुत स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट होते हैं। पार्टिसिपेट माना कि 100 स्टूडेंट पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन इसको रैंक देते हैं 1 2 3 4 5 दे सकते हैं, है ना। लेकिन देयर शुड बी नंबर ऑफ एक्टिविटीज, देयर शुड बी नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नाट्य धारा, फिर सृजनात्मक अभिव्यक्ति धारा, खेल कूद व्यायाम योग धारा, सेवा सामुदायिक धारा। ऐसी 7 धाराएं हैं। और ये एक सर्कुलर निकाला था कि हर एक स्टूडेंट्स को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट एटलीस्ट इन 1 धारा। ये देयर आर 7 बैंड्स, है ना। तो एटलीस्ट 1 बैंड में स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना ही है। इट इज कंपलसरी, इट इज मेड कंपलसरी। एक से ज्यादा धारा में स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट। तो हम भी ऐसा कर सकें। तो इससे क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि हाँ, मोर देन 75% स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। दैट इज, इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इस मैट्रिक में हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। इसकी जितना भी स्कोर है वो हमें पूरा मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताता हूं आपको खास। एफर्ट्स मेड बाय द कॉलेज, बाय द टीचर्स to inculcate soft skills, life skills, employability skills to make ready for the world of work। तो इसके लिए जो है कितने एफर्ट्स करते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स कैन रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। इसके बारे में मॉनिटरिंग करना है IQAC को। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। हम ये तो मेंशन क्राइटेरिया नंबर 2 में है ही। हाउ मेनी टीचर्स यूज ICT फॉर टीचिंग। तो हम तो लिख देते हैं कि 100% लिख देते हैं, पर ये PAT में आती है, वो चेक करती है या 100% टीचिंग होता है या नहीं होता है थ्रू द ICT का यूज करके होता है या नहीं होता है ना। तो इसमें LCD प्रोजेक्टर का यूज हो सकता है, मल्टीमीडिया का यूज होता है। देयर आर डिफरेंट ICT इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। दूसरी बात, ये ICT का यूज करता है, मतलब यहाँ पर एटसेट्रा लिखा है, एटसेट्रा मतलब यहाँ पर इन रिसोर्सेज की बात होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का यूज करते हैं स्टूडेंट, टीचर्स यूज करते हैं। इसके लिए रेडीमेड यूट्यूब में से बहुत सी चीजें मिलती हैं। यूट्यूब से इसमें चुनना है कि क्या स्टूडेंट को दिखाना है। इस टॉपिक के लिए माना कि ये कोई एक टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ाया गया, किसी एक्सपर्ट टीचर ने पढ़ाया है और वही वहां पर इसका वीडियो मिल रहा है। तो इस वीडियो पूरा नहीं, इसकी टिपिंग दिखा सकते हैं फॉर सम टाइम ओनली, इस टॉपिक क्लियर करने के लिए। तो ऐसी बहुत सी चीजें वहां पर, ग्राफिक मिल सकते हैं, ऑडियो मिल सकते हैं, वीडियोस मिल सकते हैं। तो दोज कैन बी यूज्ड व्हाइल टीचिंग, है ना। कुछ एनिमेशन भी मिल सकते हैं। तो ये यूज होता है या नहीं होता है, टीचर्स यूज करते हैं या नहीं करते हैं। मैं कह सकता हूं कि हर एक टीचर, फॉर ईच एंड एवरी टीचर्स कैन यूज ICT इफ ही और शी विल। देयर इज विल, ओके, देयर इज पॉसिबिलिटी, देयर इज अ वे इफ देयर इज विल। अदरवाइज हम कहते हैं कि हम तो ये लैंग्वेज पढ़ाते हैं, इसमें कैसे यूज करते हैं, तो ये टॉपिक पर ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कैसे करें। ऐसे नहीं, हर एक सब्जेक्ट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विलिंगनेस होना जरूरी है। ओके,
ये सब जो क्वेश्चन मैं ये सब जो चीजें बताई जिसको मॉनिटरिंग करना ही है, ये भी साथ में करना ही है बिफोर अप्लाइंग नेक में अप्लाई करने से पहले इसके ऊपर पूरा ख्याल रखना, आपको फोकस होना है, किसी को फोकस करना रहेगा। दूसरी बात है कैलेंडर की बात आ रही है, कैलेंडर की बात आती है तो ओके कस्टमाइज करना है। यूनिवर्सिटी हमें कैलेंडर देती है, एकेडमिक कैलेंडर देती है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर होता है कहते हैं एकेडमिक ही होता है, सही है, लेकिन इसमें एग्जाम के अलावा कुछ बात होती नहीं है ना। एग्जाम सेमेस्टर 1 की एग्जाम कब होगी, सेमेस्टर 2 की एग्जाम कब होगी, सेमेस्टर 3 की, 4, 5, 6 एग्जाम कब कब होगी वो टेंटेटिव दिया जाता है हमें, है ना, कौन से महीने में या तो कौन सी डेट पर हो सकती है। हमें ओके इसके साथ हमें क्या करना है, हमारे संस्थान के पास तो आ गया एकेडमिक कैलेंडर, माना कि हमने डाउनलोड किया या तो सर्किट हमें मिला, कोई बात नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है कि फरवरी में हम क्या क्या अपने कॉलेज क्या करेगी, मार्च में क्या करेगी, अप्रैल में क्या करेगी, मई में क्या करेगी, हर एक महीने में कौन कौन सी एक्टिविटी होगी। कॉलेज में जो इंटरनल इवोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स का, असाइनमेंट, मल्टीपल चॉइस को एमसीक्यू देते हैं या तो सेमिनार करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, टेस्ट 1 माना कि टेस्ट लेते हैं, इंटरनल टेस्ट लेते हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2 तो कब लेते हैं, माना कि 2 टेस्ट ली जाती है ईच सेमेस्टर, तो टेस्ट 1 कब होती है। तो ये इसका जो कैलेंडर में हमें कहां पर है लिख देना है, मतलब इसको रखना है कैलेंडर में, इसका दैट शुड दे मस्ट बी प्लेस इन द कैलेंडर, क्योंकि ये कैलेंडर हम अब बना रहे हैं, इसको कस्टमाइज कर रहे हैं। तो वी कॉलेज कस्टमाइज द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द कॉलेज। और इतना ही नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कब होगी, कल्चरल एक्टिविटी कब होगी, ये सब धाराएं, ये सब एक्टिविटी कब होगी, ये सब चीजें हमें बतानी है। ओके, इंट्रोड्यूस एड ऑन सर्टिफिकेट कोर्सेज, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। 30 आवर्स, माना कि हम कोई सर्टिफिकेट कोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, इंस्टीट्यूट कर सकती है कोई भी, माना कि हम बढ़ाना चाहते हैं, हम बढ़ा रहे हैं और कोई भी एक 30 आवर्स का एडवांस से कोई कोर्स शुरू करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, माना कि पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आई एम टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि तो मैं ग्राफ थ्योरी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर में, तो ग्राफ थ्योरी के लिए एक एक्स्ट्रा कोर्स डिजाइन कर देते हैं, इसमें ग्राफ थ्योरी के अलावा कुछ नहीं पढ़ाना नहीं है, और 30 आवर्स का सिलेबस बना दिया हमने। इसमें क्या है, जो सिलेबस में है वो इसके साथ कुछ और भी है जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास इसका नॉलेज होता है, तो स्टूडेंट्स का नॉलेज जो है वो एनरिच होगा। दिस इज फॉर एनरिचमेंट, दिस इज फॉर एनरिचमेंट एक्चुअली ना, तो एनरिच करने के लिए है। इसमें कुछ टॉपिक सिलेबस में है और कुछ टॉपिक सिलेबस में है, उसको उसके डेप्थ में जाना है, और 30 आवर्स का हमने एक मॉड्यूल तैयार करना है। मॉड्यूल शुड बी प्रिपेयर, क्या क्या पढ़ाना है, उसको पढ़ाने के लिए हमें दिखाना है कि दिस इज द कोर्स ऑफ 30 आवर्स। 30 आवर्स से कम हुआ तो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड बाय डीवीवी पार्टनर। सर ने हमें बताया कि डीवीवी पार्टनर जो है वो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स को असेसमेंट करेंगे ना, वही करेंगे, वैलिडेट करेंगे। आफ्टर वेरिफिकेशन डीवीवी पार्टनर विल वैलिडेट वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो एट दैट टाइम वो चेक करेंगे, ये 30 आवर्स का तो है ही नहीं, ये मॉड्यूल में नहीं लिखे, ये टॉपिक पढ़ाने के लिए 1 आवर, इसको 1-2 आवर्स के 1 आवर टोटल आवर काउंट करते 25 आवर्स का होता है। माना कि सच में ये प्रोग्राम हम सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है, वी प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑल्सो, स्टूडेंट्स को दे भी रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें नेक में जब परफॉर्मेंस करते हैं तो वी विल नॉट हैव द स्कोर। इसका मतलब ये हुआ कि द कोर्स जो है कम से कम 30 आवर्स का होना चाहिए। तो कुछ संस्थान पूछती है मुझे कि सर 30 आवर्स का तो है ही नहीं हमारे मॉड्यूल में, तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इतना बढ़ाने के लिए 30 आवर्स तो होता नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता है, स्टूडेंट्स को कुछ काम सौंपो ना, कुछ असाइन कर दो स्टूडेंट्स को काम, जो स्टूडेंट्स विल स्टूडेंट्स को फील्ड में भेजो, फील्ड में जाएं और कितने फील्ड के लिए, मतलब फील्ड के लिए 10 आवर्स दे दो, वो जाएं और वहां से इसका एप्लीकेबल कहां पर ये नॉलेज कहां पर एप्लीकेबल है उसका रिपोर्ट बना के हमें सबमिट करें। स्टूडेंट्स विल गो इन द फील्ड, इन वेरियस फील्ड,
ये कहीं पर भी जाए, हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, बस स्टैंड में जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, एयरपोर्ट जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। जो पढ़ा है उसका वहां पर कैसे यूज हो सकता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नॉलेज कैसे हो सकता है, लेट देम फाइंड आउट इन द ग्रुप में फाइंड करने के लिए, माना कि 5 स्टूडेंट का, बस 5 स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया, ये जाएंगे। तो ये जो है ग्रुप एक्टिविटी है, दैट कैन बी ऑफ 15 आवर्स, दैट कैन बी ऑफ 10 आवर्स, दैट कैन बी ऑफ 5 आवर्स, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, एक सर्टिफिकेट कोर्स तैयार हो जाएगा मोर देन 30 आवर्स के लिए, मोर देन 30 आवर्स, है ना। इसका मतलब ये 30 आवर्स से ज्यादा बनाना है हमें, हम 32 आवर्स का बना दो, 40 आवर्स का बना दो, 45 आवर्स का बना दो, कोई बात, बना सकते हैं। एक चीज है हमारे, मैंने देखा एक कॉलेज में जो टीचर्स जो है, टीचर्स and those are of mathematics, they are teaching लाटेक्स, जिसको कहते हैं ना, लेटेक्स भी बोलते हैं, LATX, लाटेक्स, जो टाइप करने के लिए, है ना, पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स फॉर्मूला, मैथमेटिक्स लिखने के लिए, टाइप करने के लिए इस लेटेक्स का यूज करते हैं। तो एवरी ईयर हर एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। मैंने कहा ये पढ़ाते ही हैं तो इसको एक कन्वर्ट कर दो, सर्टिफिकेट कोर्स में कन्वर्ट कर दो। तो वो तो इसको बढ़ाने के लिए मुझे तो एक सप्ताह ही चाहिए, ज्यादा जरूरी था ही नहीं। मतलब सप्ताह में कितने में, हाउ मेनी आवर्स डू यू यूज? तो मैंने, उसने बताया कि बस वी नीड ओनली 7 to 10 आवर्स। ओके ठीक है, 7 to 10 आवर्स पढ़ाने के लिए, ठीक है। आपने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद ये आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, प्रैक्टिस के लिए बुलाओ स्टूडेंट्स को, बताओ, है ना। पर मैं टीचिंग के लिए 10 आवर्स, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 5 आवर्स, और प्रैक्टिस के लिए 15 आवर्स कर दो, या 7। स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स को काम दे दे कि ये इतना इतना टाइप करके आए, मैथमेटिक्स टाइप करके आए, इतना करके आए, इसका, है ना। तो ये 15 आवर जो है, 15 आवर्स फॉर प्रैक्टिकल और 16 आवर्स फॉर टीचिंग, या कुछ भी कर दो, तो ये प्रोग्राम हो जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स बन जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि जब भी व्हेन वी क्लेम, द कॉलेज क्लेम कि हाँ ये सर्टिफिकेट एड ऑन कोर्स है, हम पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, और इसमें ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, टेक पार्टिसिपेशन, तो वो बता सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये कर सकते हैं, तो ऐसे कोर्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टॅक्सेबल तिकडे लागतो नाही, ऍक्टिव्हिटी सूट आहे, त्या सूटचा बेनिफिट नाही इकडे काम। ओके, दूसरी बात हमें ये एक चीज यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए कि हमें जरूरी नहीं कि एक से ज्यादा भी सर्टिफिकेट कोर्स डिफाइन कर सकते हैं, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफाइन करना ही चाहिए। मैं तो मानता हूँ अलग अलग 5 या 10 कोर्स डिफाइन मींस इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और हर एक में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हो, ऐसा करना चाहिए, जिससे, क्योंकि ये क्राइटेरिया नंबर 1 में आता है, और इसका स्कोर भी बहुत ज्यादा है, इसका इंपोर्टेंस वेटेज भी ज्यादा है। तो ये करेंगे, इस साल तो करना ही है, अगर नेक में जाना है तो इसे करना ही कंपलसरी मान लो। हर एक कॉलेज में सेम होता है, कोई बात नहीं, इसे किसी और कॉलेज से हम डायरेक्ट एडेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, उन लोगों ने मॉड्यूल तैयार किया, उसको एडेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन वी इंट्रोड्यूस इन अवर कॉलेज, और एट द एंड ऑफ द कंप्लीटिंग ऑफ द कोर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ इसने ये कोर्स किया है, कर सकते हैं। लेक्चर सीरीज कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है क्रॉस कटिंग इश्यूज के लिए, खास करके कहते हैं कि क्रॉस कटिंग इश्यूज क्राइटेरिया नंबर 1 में ही 1.3 में आता है ये सब। तो क्रॉस कटिंग इश्यूज जो भी हैं हमारे, हम जानते हैं, जेंडर इश्यूज भी है, ग्लोबल जो कहे ग्लोबल वार्मिंग वो भी है, एनवायरमेंट के भी है। तो ये सब इश्यूज को हमें क्रॉस कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में पढ़ाते हैं, जो भी चीज पढ़ाते हैं, तो इसमें कोई ऐसा टॉपिक जैसा ढूंढ निकालो, ऐसा लिंक ढूंढ निकालो जिसके साथ कोई बाहर से कोई एक्सपर्ट को बुला सके, कोई टीचर्स को बुला सके ना। हेलो, आवाज सुन, तो एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. ओके, Yes. सॉरी सर, हाँ क्योंकि यहाँ पे मैसेज आया था। हाँ, तो एक लेक्चर सीरीज बना दो, जिससे क्या, इससे फायदा ये होगा कि हम कह सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में कोई ऐसा टॉपिक तो मिलता ही है कि जो क्रॉस कटिंग इश्यूज को टच करता है। तो इसके लिए हम बाहर से, मतलब हम अपनी पड़ोस की कॉलेज से बुला दो, टीचर्स को बुला दो, या असिस्टेंट टीचर भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। और टीचर आए, एक लेक्चर, एक सीरीज, एक लेक्चर देंगे, एक 1 आवर का भी लिख सकते हैं। तो
Sir, is disconnected. Participants are requested to remain connected. Maybe due to some connectivity issues, we are we are unable to hear, sir. Please stay connected with us. सर डिस्कनेक्ट हुआ है ना लिंक करो सर को Meanwhile, all the participants are requested to post their queries in the chat box, which will be answered by our resource person. We will be soon in contact with him. शीतल जी, Yes, sir. ऐसा करिए, कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, तब तक आई थिंक ही विल रीजॉइन. Okay, sir. Anand Mori, sir, are you there? Yes, sir. 2 मिनट. हेलो मैडम. Yes, sir. Participants are requested to post the queries in the chat box, or else you can unmute yourself and ask directly. I will request Dr. Hegde, sir, to answer the questions. मैं लाइन में हूँ. Yes, sir. मीनवाइल आपका नहीं तो दिलीप जी का कोई प्रश्न होते तो पूछ सकते हैं. Yeah, sure, sir. Sir, is it necessary to establish internal quality assurance cell for the colleges which are going for the first cycle of accreditation? हाँ, जरूरी है, क्योंकि Yeah. उसमें 50 मार्क का क्वेश्चन है ना. Yes, sir. Totally, there are the different in governance. There's a 100 mark is there. Yes. ना 100 Yes, मार्क्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 20 है. एंड देन just give me a second. I just open up and tell you the 6.5.1 में ना, this is on the 6.5 क्वेश्चन है ना. 6.5 में ना, 6.5 में 5 क्वेश्चन है. इसके लिए 30 वेटेज है. देख लीजिए, 100 मार्क्स में 30 वेटेज है. 30 into 4, मैक्सिमम यू कैन गेट 120 मार्क हियर ना. फर्स्ट साइकिल के लिए ज्यादातर से प्रश्न पूछा गया है, हाउ यू विल इंटरनलाइज द क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स और स्ट्रेटजीज और प्रोसेसेस है ना. तो उसमें ये हो सकता है, सपोज मान लीजिए एक स्ट्रेटेजी आपने बताया, 7th क्राइटेरिया में भी आपने किया, इनिशिएटिव आपने किया ना, मतलब ग्रीन ऑडिट इनिशिएट किया है ना, जेंडर ऑडिट इनिशिएटिव किया. इनिशिएटिव तो आपने किया है. Yes, sir. मगर काम हुआ है 7th क्राइटेरिया में. Yeah. So that is one thing. 6.5.2 में institution reviews the teaching learning process, methodologies and operations of the learning outcome and periodic interviews. जैसा चोटालिया साहब ने बताया regarding the learning outcome, evaluation of the through the question paper is one of the method. Now learning outcome also can be judged through the what to call face to face. Face to face में क्या होगा, you will give some project based learning, so then you will मौखिक आप प्रश्नोत्तर करेंगे है ना, तो तब आपको पता चलता है इनको समझ में आया है नहीं आया है. So it's not only the examination, with the different ways also you can make the whether the students have learned or not. Practical is one of the things.
दैट इज अ वे ऑफ 6.5.2. सो उसके लिए IQAC ने क्या किया है? IQAC ने लर्निंग आउटकम वेबसाइट में लगाया है क्या? स्टूडेंट को पहुंचाया गया है क्या? पेरेंट्स को बताया गया क्या? तो सपोज मान लीजिए एक जो बच्चा है, दे आर नॉट कमिंग टू द कॉलेज एंड दे आर नॉट लर्निंग एट ऑल. सो पेरेंट्स इंटरेक्शन करके आपने कुछ तो किया होगा. So something you can write here, that how you will review your policies and procedures, how you will be doing that you can mention here. Then average number of quality initiatives of the promoting the quality culture per year. That means discipline हो सकता है, value based हो सकता है, research ethics हो सकता है, library management के बारे में हो सकता है. So there are various ways you can look into it. These are quality initiative. Quality initiative does not mean that only that part of the things. Sometimes it is a library. Sometimes it is the extension. Sometimes it is the institutional values. Sometimes it is the institutional distinctiveness पे हो सकता है. So you have to think about how quality initiative can be done in various department. जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में हो सकता है वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में नहीं होगा. So you have to think that what initiative sociology for extension can do and physics can do the technological intervention. So the teachers has to decide what is that initiative. Now 6.5.4 में quality assurance initiative with respect to the IQAC and AQR, ये annual quality assurance report जो है वो फर्स्ट साइकिल के लिए जरूरी नहीं है. तो मैं ऐसा दिलीप जी मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट साइकिल है उनका अकाउंट नैक का खाते में खोला नहीं है अभी तक, है ना. पैसा कैसा जमा करेंगे? जब अकाउंट खोलेंगे तब तो पैसा जमा होगा. So annual quality assurance report will be submitted after the first cycle. That is the thing. Now other things they can do, academic and administrative audit they can do, different audits they can do. Then the participation of NIRF में कर सकते हैं, or any other issues you can look into it. Then the last one is internal improvements, incremental improvements made for the preceding 5 years. अभी 5 साल का डेटा चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल में पहले क्या था, अभी क्या है. फैकल्टी कितना था, अभी कितना है. नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, हाउ यू हैव इंक्रीज. फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट गिव एन example of a university. Now university in 2015-16 they were telling that 102 programs are there. When they come for the fourth cycle, third cycle to fourth cycle, they are telling that the 113 programs are there. Now during the last 5 years they have introduced more than 12 programs. So this is an incremental growth. So those type of the things you have to identify from the administrative point of view, academic point of view, and also the extension point of view, like that way, sir. Dilip ji. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. Sir, I'm Dilip Jena from Dhotebandhu Science College, Gondia. Sir. Sir, most of the time the mentee colleges, particularly the coordinators, who are preparing their assessor for facing the first cycle, so they are getting confused that they don't have faculties. यानी जितनी फैकल्टी चाहिए उनके पास वो अपॉइंटेड नहीं है, तो वो CSB के द्वारा कॉलेज चला रहे हैं. मतलब जो क्लॉक आवर बेसिस टीचर्स है, रियली दे आर एंगेजिंग द लेक्चर्स. सो क्या कुछ प्रॉब्लम्स आएगा उनको? नहीं, क्लॉक आवर बेसिस सर जो है ना वो सिर्फ महाराष्ट्र में है ना. जेना साहब, जेना साहब आप सुन रहे हैं है ना. जो क्लॉक आवर बेसिस में जो है 1 घंटा में पढ़ाएंगे, दूसरा घंटा में रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं चलता है ना. See, the appointment should be for at least 1 year. The management has to be made aware. ये जो फैकल्टी को आप देख रहे हैं है ना, तो साल भर तो उनको तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर तो देना चाहिए है ना. So then whatever may be the salary will be there, because it depends upon the government, management and
various factors will be there. और ठीक है, at least the appointment should be there for 1 year. Then only you will be considered as a full-time teachers. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, thank you sir. नहीं, कुछ समय तो सर कभी कभी क्या होता है ना, दवाई खड़ू होता है ना, दवाई मीठा नहीं होता है ना। यस सर। तो उनको समझाना ही पड़ेगा, जो आप लो कवर बेसिस में कर रहे हैं ठीक है, मगर उनको तो साल भर तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर तो दे दीजिए। यस सर, ना, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दिलीप जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, आनंद मौर्य जी बोलिए। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी रेफरेंस स्केल टू सिक्योर मार्क्स फॉर क्वांटिटेटिव मैट्रिसेस? सर आनंद मौर्य जी क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर फिजिक्स। फिजिक्स कौन सा कॉलेज में? ये डीबी साइंस कॉलेज। डीबी साइंस में नहीं। So if a student you say that he is a excellent student, उनका पास परसेंटेज क्या होना चाहिए? सर इट शुड बी पास 40%। नहीं सर, इफ यू से आप फिजिक्स पढ़ाते हैं है ना, बीएससी फिजिक्स में वो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, यू से दैट ही इज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट है ना, उसका पास परसेंटेज क्या होना चाहिए? दैट शुड बी मोर देन 75। मैं वो सोचता हूँ 90% से ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गो टू द एक्सेलेंट है ना। मैंने पूछा है आपसे एक्सेलेंट है ना, मैंने आपको पूछा नहीं है गुड है ना। सो देयर इज ए स्केल विल बी देयर है ना, जैसा 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 and above like that, वो स्केल बनाया। पर सी यू कैन आल्सो मेक योर ओन स्केल, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट जो परसेंटेज है, एवरेज परसेंटेज है, नंबर है, वो सारा what to call, they have made a benchmark. That benchmark is not publicly available है ना। ओके सर, ओके। So you can make your own thing. Suppose पास परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो आप एक स्केल बना दीजिए उसके लिए। So आपका परसेंटेज क्या आता है आप देख लीजिए, then you will be able to understand where you stand. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चोटालिया सर। आ गया चोटाली सब? हेलो, बैंडविड्थ जी सर। हाय सर। आइए सर। हेलो, Welcome, sir. I request all the Manti colleges, the coordinators of Manti colleges, principals, and all the associated persons to put their queries in the chat box, or rather they can unmute themselves and ask the questions. It is a golden opportunity that Dr. Ganesh Hegde is with us, and Chotalia sir is also with us, has just joined. You can get the answers of your queries. शीतल जी। Yes sir. डॉक्टर नरेंद्र चौटाली साहब आए हैं, Yes तो sir. उनसे अनुरोध करते हैं साहब का व्याख्यान सुनने के लिए। Yes sir, you have it was due to connectivity issues, I think. Sir, you can continue your talk, sir. Do you want to share the screen, sir? Chatalia sir? जी, ओके, ये हुआ ना? Yes sir. फुल स्क्रीन कर दीजिए।
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. Feedback system. Feedback system should be structured. हर एक कॉलेज में एक फीडबैक सिस्टम जो है ये अच्छी तरह से हमें स्ट्रक्चराइज करने से बनानी है, बहुत अच्छी तरह से बनानी है। तो फीडबैक सिस्टम शुड बी कैसे रॉबस्ट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पहली बात तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, है ना। एक ट्रांसपेरेंट हो, रॉबस्ट हो, तभी हो सकती है कि जब इसके ऊपर हम पूरा ध्यान दें। अभी फीडबैक सिस्टम दो प्रकार की फीडबैक सिस्टम है। यहाँ पर मैं फीडबैक सिस्टम की बात बोल रहा हूँ ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम्स। एक फीडबैक जो है वो सिलेबस के ऊपर लेना है, दैट कम्स अंडर करिकुलर एस्पेक्ट की क्राइटेरिया नंबर 1। क्राइटेरिया नंबर 1 में जो 1.4 है, ओके, द स्ट्रक्चर्ड फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है ना वो है सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस जो है, कॉलेज जो है वो सिलेबस को डिजाइन नहीं कर सकती। कॉलेज कैन नॉट डिजाइन द सिलेबस, कॉलेज कैन नॉट डेवलप द सिलेबस, लेकिन कॉलेज जो है फीडबैक ले तो सकती है स्टूडेंट्स से या टीचर्स से या एलुमनाई से या तो पेरेंट्स से या तो इंडस्ट्री से, है ना, एम्प्लॉयर से। तो कॉलेज कैन कलेक्ट फीडबैक ऑन सिलेबस, ऑन करिकुलम फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स। वो आर द स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स, जिसको प्राइमरी स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स। जो हमारे टीचर्स भी फीडबैक दे सकते हैं ना, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एलुमनाई एंड एम्प्लॉयर्स। ये 5 जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उससे हमें फीडबैक एवरी ईयर लेना है। और लेने के बाद फीडबैक तो लेने के लिए, पहले फीडबैक लेने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए। वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो फिजिकली ले सकते हैं, दूसरा जो है अभी तो गूगल फॉर्म में बना सकते हैं, या तो माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी बना सकते हैं, या तो कोई और भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली बनाना बहुत बहुत आसान है ना। फॉर्म, गूगल फॉर्म बना दिया, फीडबैक ले लिया। तो इससे फायदा ये होता है कि इसको एनालिसिस करना बहुत आसान बन जाता है। इफ वी टेक द फीडबैक इन गूगल फॉर्म, इट इज वेरी इजी टू एनालाइज। हर एक फीडबैक का एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाएगा, हर एक सेंटेंस का, हर एक स्टेटमेंट का। तो मेरा सुझाव ये है कि हर एक कॉलेज में, मतलब जो कॉलेज जा रही है नैक में, तो उसको ये गूगल फॉर्म बनाना चाहिए। बनाना नहीं बनाना आता तो सबको सिखाओ। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दो सबसे पहले तो हर एक कॉलेज में। जो कॉलेज नई कॉलेज है, एक बार भी नहीं गई है नैक में, कोई बात नहीं है, तो सबसे पहले एक फैकल्टी के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रख दो। IQAC का ही इनिशिएटिव हो जाएगा। दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द IQAC। क्या करना है, एक सप्ताह का एक इनिशिएटिव ना, एक फैकल्टी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दो, जिसमें हाउ टू यूज ICT, ओके, वो सिखाओ। जिसमें खास करके PPT कैसे बनानी है। PPT बनाना तो सबको आता है, लेकिन अच्छी तरह से कैसे बनाना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कैसे एनिमेशन अगर बनाना है तो इसमें एनिमेशन का कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे ऑडियो का यूज कर सकते हैं, कैसे वीडियो का यूज कर सकते हैं, वो भी सिखाओ। नहीं आता है तो उसको बहुत काम की चीज, यूज करिए तो बहुत काम की चीज है। विंडोज में फिर वर्ड जो है, वर्ड में भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो टीचर्स को सीखना जरूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल कि एक साथ हमें 50 स्टूडेंट्स को मेल करना है, तो कैसे कर सकते हैं, अलग ना, स्टूडेंट्स का नाम भी आए, उसका क्लास भी आए, सब्जेक्ट भी आए, तो मेल मर्ज कैसे करते हैं उसको सिखाना है। तो वो भी सिखाना है। सीखने के बाद प्रैक्टिस भी है ना। हमने सीख लिया, हमने याद दिया, तो वो तो सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, यूट्यूब में देख के भी सीख सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट पर जाते हैं, ब्राउज करते हैं, उसको भी देख के भी सीख सकते हैं। ऐसे नहीं, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। कुछ काम भी देना है, एक टास्क भी देना है कि हर एक टीचर जो अपने सब्जेक्ट में एक मेल मर्ज बना के हमें सिखाए, एक टॉपिक जो कोई भी काम देना है, मतलब जिसको सीख जाए। तो हर एक टीचर को सबसे पहले ये सिखाओ कि हाउ टू मेक गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, गूगल क्लास का कैसे यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम का कैसे यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द LMS भी काम आएगा। तो एक चीज बनाओ कि गूगल फॉर्म में हम फीडबैक ले, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो। फीडबैक लेना है करिकुलम के ऊपर,
ऊपर, तो करिकुलम इज रिलेवेंट, सबसे शुरुआत यहीं से होती है, रिलेवेंट टू लोकल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज, हमारे नेशनल जो एम है उसके साथ है, हमारे विजन मिशन के साथ है। ये सब चीजें जो है फीडबैक में ले सकते हैं हम। हर एक का जो फीडबैक जो है वो डिपेंड्स, करिकुलम में जो केमिस्ट्री का फीडबैक, केमिस्ट्री का सिलेबस वो डिफरेंट होता है, फिजिक्स का अलग होता है, गुजराती का अलग अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, मराठी का अलग हो सकता है, इकोनॉमिक्स का अलग हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस का अलग हो सकता है। तो अपने सिलेबस के हिसाब से अपने करिकुलम के हिसाब से तो टीचर्स जो है वो फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक लिया, फिर एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के बाद हमें सुझाव भी मिलते हैं फीडबैक में, तो क्या चेंज करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक में चेंज करने की जरूरत है। तो ये हमें ले लिया, सुझाव मिला, तो वी कैन नॉट चेंज द सिलेबस बट वी कैन गिव द फीडबैक। ये जो फीडबैक जो है वो कन्वे सकते हैं, किसको फिर कन्वे कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो हर एक सब्जेक्ट का बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, तो उसको हम ये फीडबैक कन्वे कर सकते हैं कि ये फीडबैक है, स्टूडेंट्स से मिला है, ये एलुमनाई से मिला है, पुराने स्टूडेंट जो है जो पढ़ के बाहर निकले, उसको लगता है कि हमने ये पढ़ा होता तो हम जब मार्केट में जाते हैं तो ये हमें यूजफुल बन सकता था। तो ये एलुमनाई से मिलता है। कुछ एम्पेयर भी चाहते हैं कि नहीं है, स्टूडेंट्स के पास अगर ये स्किल है, अगर ये नॉलेज है, तो हम स्टूडेंट्स जो है इसको हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं अपने फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में, या तो अपनी कंपनी में। तो इसके हिसाब से हम क्या सिलेबस में चेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल की किसकी बात करते हैं, जो भी है। तो ये सिलेबस के ऊपर जो फीडबैक सिस्टम ऑन सिलेबस, जिसको कहते हैं करिकुलम के ऊपर है, फीडबैक ऑन करिकुलम, तो इसके ऊपर लेना है और इसको हमें डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, इसको डॉक्यूमेंटेड रूप में हमें भेजना है यूनिवर्सिटी को। ये हम चेंज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, और ये करने से क्या क्या फायदा हो सकता है, इसके साथ हमें जस्टिफिकेशन के साथ वहां भेजना चाहिए। और तो आफ्टर सम टाइम, जब भी सिलेबस या तो करिकुलम डिजाइन में, तो इसका रिव्यू होता है, एवरी 3 ईयर्स तो होता ही है। हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में एवरी 3 ईयर रिव्यू होता ही है, रिवाइज होता है, सिलेबस रिवाइज होता है। तो एट दैट टाइम कुछ ऐड करते हैं, या कुछ डिलीट करते हैं, या कुछ चेंज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने ये सिलेबस में हमने सुझाव दिए थे, भेजे थे, और ये जब रिवाइज हुआ तो ये ना चेंज हुआ। तो ये दिस इज कॉल्ड एक्शन टेकन। फीडबैक लिया, कलेक्ट किया, एनालिसिस किया हमने कि ये इसमें तो, और ये सुझाव जो हमें मिले इसको भेजने चाहिए थे, हमने स्क्रूटिनाइज किया और भेजे, एक्शन टेकन। और इसके बाद एक्शन जो भी चीजें हैं वो हमें रखना है, हमें अपनी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करना है कि एक्शन, हमें ये फीडबैक मिले, ये एनालिसिस है, और ये एक्शन टेकन के लिए हमने ये किया। तो ये करते हैं तो हमें फीडबैक्स के ऊपर जो 20 मार्क्स के जो है, 20 पॉइंट्स के जो है, ये मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, दोनों क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है। इसके लिए डीवीवी पार्टनर है। यहाँ ये टीम विल नॉट चेक, जो पीयर टीम आएगी वो चेक करने वाली नहीं है, तो वो डीवीवी पार्टनर विल चेक। तो डीवीवी पार्टनर को क्या चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं उसको, हम नहीं, वी कैन नॉट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स, वी कैन नॉट प्रोवाइड, दैट इज इट, दे आर डिस्प्लेड इन द वेबसाइट, तो वी विल लूज द मार्क्स, वी विल लूज द स्कोर। तो इसके लिए हमें कलेक्शन करना है, एनालिसिस करना है, एक्शन टेकन वो दिखाना है हमें, और इतना ही नहीं, हमें ये भी दिखाना है कि दे आर अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट, है ना, कॉलेज की वेबसाइट पर है, रखा है। और ऐसे रखो कि जिसको डायरेक्ट कोई भी स्टेक होल्डर फीडबैक को देख सके, है ना। सेकंड इज फीडबैक सिस्टम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसीजर, इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूवमेंट इन द एक्टिविटीज, इम्प्रूवमेंट इन सम प्रोग्राम्स हो सकता है। तो ये अलग अलग जो है, ये इम्प्रूवमेंट के पर्पज के हिसाब से हम फीडबैक लेते हैं। स्टूडेंट्स, खास करके स्टूडेंट्स से लेना जरूरी है। तो यहाँ स्टूडेंट्स से, या तो एलुमनाई से, या तो पेरेंट्स से कुछ फीडबैक लेते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट के हिसाब से लेते हैं। ये क्राइटेरियन 1 में नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट इन क्राइटेरियन 1, लेकिन आई हैव रिटन बोथ द थिंग्स। ये IQAC को ये सब मॉनिटर करना है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, इम्प्रूवमेंट के पर्पज से ये फीडबैक कलेक्ट करना है। ये इम्प्रूव है ना, फीडबैक ऑन टीचिंग भी हो सकता है। मैंने किया है एक बार, है ना, कि टीचर जो टीचिंग करते हैं तो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, इफेक्टिव टीचिंग है या नहीं है, डेप्थ में पढ़ाते हैं या नहीं है,
कोई रेफरेंस देते हैं या नहीं है, सिलेबस कोई असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट चेक किया जाता है या नहीं। ऐसे मैंने 15-20 क्वेश्चन बनाए थे। फीडबैक मैंने सबको स्टूडेंट से मिली है हमने क्लास से, इन एब्सेंस ऑफ द टीचर्स। और फिर मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, मैंने सबके सब फीडबैक मेरे टीचर्स को दे दिए, रिलेवेंट टीचर्स को दे दिए, कि मैंने बताया कि सर ये जो फीडबैक है ना, दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ओके, हुम वी आर टीचिंग, आप जिसको पढ़ाते हैं उसे लिए है, अब इसमें आप क्या सुधार करना चाहते हैं, है ना, इसको आप मुझे बताना। तो इससे फायदा ये हुआ कि आफ्टर सम टाइम टीचर्स केम टू मी एंड बट शो मी कि सर ये टॉपिक मैं पढ़ा था, मुझे मानता था कि स्टूडेंट को समझ में आ जाता है, लेकिन पता चला कि नहीं, कि वो स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ करते हैं, निकल जाते हैं, सिलेबस पूरा हो जाता है, ऐसे होता है, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आपसे मैं ध्यान रखूंगा, इसको बढ़ाने के लिए मैं कुछ दूसरी टीचर का भी मैं से सहयोग ले सकता हूँ। नहीं, मुझे कोई टॉपिक नहीं आता, कोई मिस कर देता हूँ, मैं अगर स्किप करता हूँ, स्किप भी नहीं करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट टेक एनी एक्शन, बट जस्ट आई शोड द मिरर, मैंने बताया कि ये मिरर है, देखो ये स्टूडेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जस्ट देखो, तो इससे कुछ फायदा होता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब ये इंप्रूवमेंट के लिए है। तो वाई, इससे फायदा ये हुआ कि टीचर्स जो टीचर ने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, तो स्टूडेंट्स के फीडबैक उसके बाद भी मैंने लिए, तो फीडबैक बहुत सुधार मिला। एक बार फीडबैक लिया तो दूसरी बार नहीं लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बार ये मैंने आफ्टर सम एक्शंस कोई फायदा हुआ है नहीं हुआ है, वो भी दूसरी बार फीडबैक लेना चाहिए। तो इससे एक स्टडी बन सकता है कि फीडबैक लेने से कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, इफ व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ द फीडबैक। ओके, ये सब चीजें मैंने बताई, बात की फीडबैक कलेक्शन, एनालिसिस, एक्शन टेकन एंड डिस्प्ले ऑन वेबसाइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये अभी बिफोर नेक में अप्लाई करें, ये सब चीजें हमें हर एक डिपार्टमेंट को बोलना है, हर एक डिपार्टमेंट को। कोई ना अपने डिपार्टमेंट में अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कोई सेमिनार कंडक्ट करे। जैसे कि ये जो अभी अब देख रहे हैं, ये जो दोते कॉलेज है, दोते बंधु कॉलेज, अभी ये चल रहा है वेबिनार है, वेबिनार एक सेमिनार ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इसलिए वेबिनार कहते हैं हम। तो ये सेमिनार ही है, लेकिन इट इज कंडक्टेड बाय द IQAC। तो हम क्या करें, IQAC जो करें वो भी अच्छी बात है, वो तो क्वालिटी के लिए करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट, वो लैंग्वेज के डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, शास्त्र के भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशियोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट को एक टारगेट दे दो कि ये विद इन 6 मंथ हम एक सेमिनार करके दिखाओ हमें, या तो एक कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ, या तो एक वर्कशॉप करके दिखाओ, या तो सिंपोजिया करके दिखाओ, है ना। उसके जो टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, हमारे VCT में जो कॉलेजेस है वो भी आ सकते हैं, कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, स्टेट लोकल लेवल पर, लेकिन करो। शुरुआत यहीं से हमें करनी चाहिए कि हाउ मेनी टीचर्स, हाउ मेनी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, सिंपोजियास एटसेट्रा आर कंडक्टेड बाय द कॉलेज एट दैट। अगर ये करते हैं तो ही हम इसमें मार्क्स मिल सकते हैं, तो ही हमें स्कोर मिल सकता है, अदरवाइज इसमें स्कोर नहीं मिलेगा हमें। तो आने वाले समय में अगर हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हमें, बिफोर अप्लाइंग फॉर जो कॉलेज PG कॉलेज चल रहे हैं ना, ये UG कॉलेज के लिए, PG कॉलेज के लिए खास बोलूंगा यहाँ पर, जो कॉलेज PG है, तो उसके लिए एक चीज है, वो है कि सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, लेकिन IPR के ऊपर खास करके करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, तो इसके ऊपर वर्कशॉप या सेमिनार या कॉन्फ्रेंस या लेक्चर ये हमें करना चाहिए, है ना, वरना वी मे लूज द स्कोर इन दिस मेट्रिक रिलेवेंट टू दिस। रिसर्च के ऊपर, रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर भी करना चाहिए, क्योंकि ये PG कॉलेज चलाते हैं। PG में अगर कॉलेज में PG चलता है, PG कॉलेज है, तो ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड वहाँ रिसर्च का इंपॉर्टेंस रहता है, रिसर्च का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जो UG कॉलेज है और PG कॉलेज में हम देखेंगे, दोनों में वेटेज में डिफरेंस है ना। तो यहाँ वेटेज जो है बढ़ जाता है, 10% का वेटेज बढ़ जाता है यहाँ पर। तो रिसर्च के ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी ये वर्कशॉप या सेमिनार कुछ रखने चाहिए हमें। एक चीज जो साहब ने बताई थी, हम क्वेश्चन भी पूछा गया था, जियोटैग फोटोग्राफ्स की बात हुई थी। तो एक चीज याद रखो कि जो भी कॉलेज में या कॉलेज के कोई प्रोग्राम जो होते हैं,
माना कि कॉलेज के अंदर होता है, कॉलेज के कैंपस में होता है, अगर एनएसएस वाला प्रोग्राम होता है तो आउटरीच प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम है, तो जो भी इसकी फोटोग्राफी करते हैं, अब हम तय कर लेते, जब भी फोटोग्राफी करेंगे तब हम इसका लोकेशन मतलब जीपीएस चालू कर देंगे। हम अपने मोबाइल से फोटो लेना है तो जीपीएस चालू कर देंगे। जीपीएस चालू करने से क्या फायदा होता है कि जब फोटो खींचते हैं तो जब फोटो खींची गई तो इस जो कहाँ पर फोटो खींची गई उसका लैटिट्यूड ना लॉन्जिट्यूड दोनों जो है स्टोर हो जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। वो ना फोटो में आई, फोटो की प्रॉपर्टीज में जब कोई भी फोटो खींचते हैं तो जेपीजी फाइल बनती है या तो पीएनजी फाइल बनती है, जो भी फाइल बनती है, इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो प्रॉपर्टी में हमें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दोनों दिखाएंगे कि ये फोटो कहाँ पर ली गई है ना। एंड डीवीवी पार्टनर जो वही चाहते हैं कि फोटो जब खींचते हैं, हम मोबाइल से खींचते हैं तो भी तो आसान है, मोबाइल से फोटो खींचना बहुत आसान है। वो अभी तो मोबाइल जो है वो फोटो खींचने पे कैमरा का जैसे काम कर रहा है, तो अब बहुत आसान चीज हो गई है। हम देखते भी हैं कि जहाँ पर भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई इवेंट होती है, कोई एक्टिविटी चल रही है, तो टीचर्स है ना, टीचर्स क्या करते हैं, बस मोबाइल ले लेते हैं और फोटो खींचते हैं। हाँ, तो फोटो खींचते हैं तो, लेकिन फोटो जो खींचते हैं तो ये देखना चाहिए कि उसमें जो अपना जीपीएस जो है वहां पर वो चालू कर दे, लोकेशन वहां पर बिजी से लोकेट हो सके कहां पर फोटो लेते हैं। तो जियो टैग फोटो वाली होनी चाहिए। अगर एनएसएस का बता कि हाँ एनएसएस के यहाँ पर एक कैंप हुआ था, हमारे एनएसएस के इतने वॉलंटियर वहां पर गए, ये एक्टिविटीज की हमने, तो ठीक है, हम बताते कि हाँ हमारे नजदीक के गांव में गए, तो वह गांव जहां पर भी गए हम बताते, तो उसका भी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वहां पर फोटो में दिखना चाहिए। अभी तो इसके लिए अलग अलग ऐप भी आती है। अगर आप है ना, जियोटैग फोटोग्राफ खींचने के लिए अलग अलग ऐप भी है ना, विद द हेल्प ऑफ दोज ऐप, है ना, फोटो खींचेंगे तो नीचे ही इसका नीचे जब फोटो, हर एक फोटो के साथ नीचे में लिख के आएगा कि कौन सी डेट पर फोटो खींचा गया था, फोटो लिया गया, एट व्हाट टाइम, डेट, टाइम, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब दिखाएंगे। तो ऐसे भी ले सकते हैं। तो जियो टैग फोटो की प्रैक्टिस अब से शुरू कर देते हैं, कल से शुरू कर सकते हैं हम। मैंने बताया कि हर एक कॉलेज को एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहिए, है ना, और इसका एक मैगजीन फॉर्म में हम डिस्प्ले हम पब्लिश भी कर सकते हैं। तो हर एक कॉलेज एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात है यहाँ पर कोलैबोरेटिव क्वालिटी इनिशिएटिव्स, है ना, ये मैंने बताया वही है चीज है कि collaborative quality initiative with sister institutions under the same management will not be considered। वो कंसीडर कभी नहीं किया जाता है। हम डीवी पार्टनर को कहीं कितनी बार भी क्वेरीज जनरेट करेंगे लेकिन नहीं होगा कभी भी, या तो नैक को लिख के भेजेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि जो एसओपी बनाई है, जो पॉलिसी तय की है, तो पॉलिसी रिमेन्स पॉलिसी, एक प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड पॉलिसी है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो इसको फॉलो करना है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि जब भी हम कोलैबोरेटिव एक्टिविटी करते हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो इसके लिए हमें कोलैबोरेशन करना है, लेकिन सेम इंस्टीट्यूट में, सेम मैनेजमेंट में जो कॉलेजेस आती है, इसके साथ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी नहीं दिखा सकते, वी कैन नॉट क्लेम कोलैबोरेटिव एक्टिविटी के लिए। ओके, फॉर एनी मैकेनिज्म, एक चीज यहाँ नोट कर लो, हर एक को बोलता हूँ, धोती बंधु कॉलेज के लिए बोल रहा हूँ कि हर एक कॉलेज के लिए कॉमन है, ये कॉमन चीज है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल, फॉर न्यू कॉलेज, फॉर ओल्ड कॉलेज, फॉर ईच एंड एवरी कॉलेज। जहां पर भी कोई मैकेनिज्म की बात आ रही है, कोई सिस्टम की बात आ रही है, कोई स्ट्रक्चर की बात आ रही है, तो देयर शुड बी अ पॉलिसी, वहां एक पॉलिसी होनी ही चाहिए, देयर शुड बी अ पॉलिसी। तो पॉलिसी लिखा ना कैसे होती है, वो लिखी जाती है, जरा देख लेना एग्जांपल, आप मिली बहुत सी पॉलिसी देखेंगे आप वेबसाइट पे, कहीं पर भी ब्राउज करेंगे, यू कैन फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज, कैसी पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं कि हाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, तो सेल की भी ग्रीवेंस अगर आते हैं तो सबसे पहले किसके पास आएंगे ग्रीवेंस, ओके, वो क्या करेंगे, किसको भेजेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसके लिए भी पॉलिसी बना दो। हम कहते हैं कि एंटी रैगिंग सेल, तो हमारे यहाँ तो 5 साल में या इतने सालों में कभी रैगिंग हुआ ही नहीं है,
तो हम नील रिपोर्ट बना के रिपोर्ट जो सेल जो है एंटी रैगिंग कमेटी नील रिपोर्ट देती है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हुआ तो क्या, इफ यू कॉलेज के पास कोई ऐसी पॉलिसी है क्या, देन कॉलेज मस्ट हैव द पॉलिसी। तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना। तो वेरेवर द मैकेनिज्म, कहीं पर भी पूरे एसएसआर में, सेल्फ रिपोर्ट में, या तो नेक में, जो नेक का जो मैनुअल है, गाइडलाइंस है, जहां पर भी लिखा हो, मैकेनिज्म लिखा हो, जहां पर भी सिस्टम लिखा हो, इसके लिए पॉलिसी होनी ही चाहिए। और इसको कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड पॉलिसी कहते हैं ना, है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसी। ओके, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट एवरी ईयर होना चाहिए, ये इंटरनल है, और ये हर एक साल होना है। माना कि इस साल हमने क्वालिटी ऑडिट किया, इंटरनल किया ना, माना कि चेयरपर्सन है, कोऑर्डिनेटर है, सीनियर टीचर्स हैं, या तो मैनेजमेंट में है, कोई भी है, एक से कमेटी बनाई हमने, 3 लोगों की या 5 लोगों की कमेटी बनाई, और असेसमेंट पूरा हमने एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा ऑडिट कर लिया। और हमें ऑडिट करने के बाद हमने वी फाउंड आउट सम वीकनेसेस, वी फाउंड आउट सम रिकमेंडेशंस कि ये सुधार कर सकते हैं, ये इंप्रूवमेंट हो सकता है यहाँ पर। तो ये रिकमेंडेशन भी बनाते हैं। यहाँ जब ये एवरी ईयर की बात हो रही है, हमारा ये खुद का है, ये अपना है, अपने ये बाहर एक्सटर्नल नहीं है, ये है ना, सेल्फ असेसमेंट है। तो जो भी हम कमियां देखते हैं, इंटरनल असेसमेंट करते हैं, तो उसमें रेकमेंड देना ही चाहिए जो भी है। इसमें यहाँ ऐसा नहीं है कि नेक वालों के लिए तो क्या है कि 10 से ज्यादा रेकमेंड नहीं देते हैं, नॉट मोर देन 10 रिकमेंडेशंस इन द पीयर टीम रिपोर्ट। लेकिन हम यहाँ रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो हमारा काम तो यही है, वी आर फॉल्ट फाइंडिंग, हमारा काम तो इम्प्रूवमेंट करना है। हमारा काम तो डायग्नोसिस काम है। एम अलग है, दोनों का एम अलग है। हमारा काम एक्रेडिटेशन नहीं करना है। तो इंटरनल क्वालिटी ऑडिट इज नॉट फॉर एक्रेडिटेशन, बट इट इज टू फाइंड आउट व्हाट आर द issues, what are the weaknesses, और what are the recommendations can be made। तो ये हमें एक पूरा लिस्ट बनाना है, ये बने 10 बने या 20 बने या 30 बने या 50 बने, कोई बात नहीं है, हर एक पॉइंट लिखना है। और इसके बाद नेक्स्ट जब होगा, फिर एक बार दूसरे साल ऑडिट होगा, तो एट दैट टाइम वो देखना चाहिए कि जो रिकमेंडेशन दिए गए थे, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, इसमें से कितना इंप्रूवमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस रिपोर्ट। इसका कंप्लायंस रिपोर्ट बनाना चाहिए हर एक के लिए। रिकमेंडेशन वाइज कंप्लायंस रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय IQAC, है ना। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट की जब बात होती है, तो जैसे एक्चुअली साहब ने तो बताई आई है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट जो बनता है वो तो आता ही है कि फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिटिंग जो है एक गवर्नमेंट से भी हो सकता है, अपनी कमिश्नर ऑफिस होती है, वहीं से भी ऑडिट रिपोर्ट बनता है, या तो AG का ऑडिट भी आता है, वो भी इसका भी रिपोर्ट बनता है। और भी रिपोर्ट बन सकते हैं, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट के अलावा और भी रिपोर्ट बन सकते हैं। लेकिन जब माना कि कमिश्नर ऑफिस से कोई रिपोर्ट आया, तो इसमें कोई पारा निकला, कोई इश्यूज आया, तो इश्यू मेंशन किया है, तो वो भी हमारे पास होना चाहिए कि ये इश्यू हमें मेंशन किया गया, दैट वाज द पारा, है ना, इसको पारा कहते हैं। तो पारा को कैसे सॉर्ट आउट किया, कैसे रिजोल्व किया हमने, इंस्टीट्यूशन ने क्या पारा था और कैसे रिजोल्व किया, वो भी हमें दिखाना चाहिए, है ना। क्योंकि वो ये चीज वही दिखाती है कि नहीं, जो IQAC इज बिल्कुल जो है वो एक्टिव है, और ये इन टाइम वो काम कर लेती है। दैट प्रूव्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट के अलावा और भी रिपोर्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि ग्रीन ऑडिट रिपोर्ट बनता है, इसमें एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट बनता है, जेंडर रिपोर्ट बनता है। तो ये सब रिपोर्ट बनाना, ये एनुअल ऑडिट रिपोर्ट में सब आते हैं। एक चीज है यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे छोट में लिखा इवेंट वर्सेज एक्टिविटीज। इवेंट्स एंड एक्टिविटीज में क्या अंतर है। एक कॉलेज की बात बताता हूं मैं। एक कॉलेज में एक इवेंट कहते हैं कि भाई ये दिसंबर में एक इवेंट हमने किया था। वो इवेंट था 10 दिन का इवेंट था। इवेंट वाज ऑफ 10 डेज, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स भी थी, इंडोर स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। इवेंट का नाम एक ही रखा था, है ना, इवेंट का नाम एक ही रखा था। माना कि उसका नाम रखा है कुछ भी
महोत्सव, है ना, कोई कोई कुछ भी कर सकते, कोई भी एक महोत्सव नाम दे दिया, तो इवेंट का नाम है महोत्सव, महोत्सव फॉर 10 days। तो विद इन 10 days देयर वर नंबर ऑफ एक्टिविटीज, activities on singing, and activities on dancing, activities on music, activities on drama, plays, activities on different games, activities on ना, ऐसे अलग अलग बहुत सी एक्टिविटी, नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट स्पेशली डिजाइन किया गया था पूरे 10-10 दिन के लिए। बच्चों को बस एक्टिविटी में भरपूर एक्टिविटी देनी है, जिस एंजॉय करना है, स्टूडेंट में जो भी इन्हें टैलेंट है उसको बाहर लानी है। बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी इवेंट होती है। और इतना ही नहीं, वो बहुत वेल मैनेज इवेंट थी, और इसकी जो पूरी इवेंट में स्टूडेंट्स ने ही ये मैनेज सुना, द इवेंट वाज मैनेज बाय स्टूडेंट्स। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, इवेंट एक थी, एक्टिविटीज बहुत सी थी, वी कैन से देयर आर 50 एक्टिविटीज, लेकिन इवेंट एक थी। और जब ये नेक में जब दिखाते हैं, according to standard operating procedure SOP of the NEC for the DVV partner for assessment, तो वो DVV partner वो उसको पूरे इवेंट को एक ही कंसीडर करते हैं। दो देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज, there are different activities on different days on the, okay, even then the DVV partner understand that it is one event, under one event there are number of activities, but it is one event, that's why it is considered only one. ये एक चीज गलत है मेरे ख्याल से। तो इसमें हमें क्या करना है, ठीक है, जो भी है, जो भी डीवी पार्टनर करना है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं। हमें क्या करना है, हमें हर एक एक्टिविटी को एक अलग इवेंट देनी है। हर एक एक्टिविटी के लिए रंगोली, इसको अलग रंगोली स्पर्धा है तो रंगोली स्पर्धा इसको अलग, किसी एक इवेंट के अंडर में सबको मत रखो। हर एक एक्टिविटी के लिए हर एक इसको अलग डिफरेंट इवेंट दे दो। तो ऑल दिस विल बी डिफरेंट इवेंट्स एंड तो क्या होगा, डीवीवी पार्टनर जो चाहे वहां एसेस करते हैं वो एक ही इवेंट नहीं मानेंगे और हर एक इवेंट को कंसीडर करेंगे, वरना क्या होगा, कॉलेज विल लूज द स्कोर हियर। दिस इज द ग्रे पॉइंट, दिस इज ग्रे एरिया, है ना। अच्छी कॉलेज की बात बता रहा हूँ, अच्छी कॉलेज में, है ना, ये उसको ये सफर करना पड़ा है। स्टूडेंट प्रोग्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे क्राइटेरिया में 5 में आया था, क्राइटेरिया में 5 में आया था स्टूडेंट प्रोग्रेशन, स्टूडेंट सपोर्ट एंड स्टूडेंट प्रोग्रेशन की बात वहां पर होती है। क्योंकि जब स्टूडेंट जब पूरा अपना जो प्रोग्राम पूरा करके बाहर निकलते हैं, पास आउट होके बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है या तो कोई जॉब से, है ना, जॉब ढूंढते हैं, प्लेसमेंट कहीं हो जाता है इसका। तो प्लेस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, तो एक क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। अब हम कहते हैं कि हाँ, माना कि 50 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड और 50 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, 100 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, 120 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। तो वहां बहुत क्लियर मेंशन है कि प्लेस्ड थ्रू द कॉलेज। डायरेक्टली स्टूडेंट्स ने अपने आप अप्लाई कर दिया और अपना प्लेसमेंट, जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, ये नहीं। इसमें व्हाट वाज द रोल ऑफ द कॉलेज, थ्रू द कॉलेज। अगर थ्रू द कॉलेज नहीं है तो भी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है तो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, रिमेंबर। तो इसका मतलब ये होता है कि देयर शुड बी सम रोल ऑफ कॉलेज फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जब स्टूडेंट्स हमारे यहाँ लास्ट ईयर में जो पढ़ते हैं, फाइनल ईयर में जो पढ़ते हैं, उसको पास आउट एग्जाम देके चले जाते हैं, फिर नहीं आते, उसके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा हमें, पहली बात। और उसको, इसके लिए हमें आफ्टर द एग्जामिनेशन, आफ्टर द पास आउट, हमें यहाँ पर एक IQAC को या तो किसी को एक काम, एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो प्लेसमेंट के लिए स्पेशली कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए। माना कि, है ना, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाओ। वैसे तो ये इट इज एक्सपेक्टेड। तो ये एग्जाम करने के बाद, एग्जाम पूरी करने के बाद ये वहां पर कैस में कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल के ट्रेनिंग देते हैं, या तो एग्जाम रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं।
तो ये देयर शुड बी, है ना, ऐसी ट्रेनिंग चलाओ जिससे वो क्या होता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो एग्जाम देने के बाद भी इस कॉलेज में आ सके और हम कह सके कि देयर वाज द रोल ऑफ द कॉलेज फॉर द प्लेसमेंट। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमें दिखानी पड़ेगी कि हाँ देयर वाज, अगर कैंपस प्लेसमेंट होता है तो दैट इज एक्सपेक्टेड, दैट इज आइडियल थिंग। तो ये हर एक कॉलेज के लिए ये शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जिस कॉलेज के लिए भी पॉसिबल होता है उस कॉलेज, ये कॉलेज ऐसे कैंपस प्लेसमेंट करें, ये अच्छी चीज है। वी शुड ट्राई, मतलब इसके लिए हर हमारे नजदीक में जो भी इंडस्ट्रीज है या कंपनियां हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उसका हमें कांटेक्ट करना चाहिए। वी शुड अप्रोच देम और इसको रिक्वेस्ट भी करना चाहिए, उसके साथ अच्छी रिलेशन भी बनाना चाहिए और कभी कभी उसको बुलाना भी चाहिए कॉलेज में, वो भी हमें गाइडेंस दे, खास करके जिसको कह सकते हैं कि प्लेसमेंट के बारे में जब गाइडेंस दे हमें कि स्टूडेंट्स शुड हैव दिस नॉलेज देन दे कैन हैव द जॉब। तो ये प्रोग्रेशन में ही आता है, तो ये हमें कॉलेज में करना चाहिए। दूसरी बात ये भी होता है कि प्लेसमेंट होता भी है, नहीं भी होता है स्टूडेंट्स का। जो प्लेसमेंट नहीं होता है वो क्या, कुछ ऐसे भी होते हैं वो फर्दर स्टडी के लिए, है ना, कहीं और एडमिशन लेते हैं। माना कि ग्रेजुएशन किया, अंडर ग्रेजुएशन यूजी पूरा किया तो पीजी के लिए जाते हैं, है ना। अगर पीजी पूरा किया तो नेक्स्ट फर्दर या तो एमफिल करने के लिए जाते हैं या तो पीएचडी करने के लिए जाना, यू मे यूज इट, कोई बात नहीं। तो हमारे पास का हमें ढूंढना पड़ता है। मैंने देखा है कॉलेज ढूंढना, कॉलेज के पास स्टूडेंट्स का एड्रेस नहीं मिलता है, कांटेक्ट नंबर नहीं होता है, कांटेक्ट नंबर मिलता है, कांटेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए। नीचे नहीं नेटवर्क नहीं पकड़ा है, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए हमें कि स्टूडेंट्स जो है एक कॉलेज से साथ कॉलेज के कांटेक्ट में रहे और जब भी उसको आफ्टर बीएससी वो एमएससी में जाता है, आफ्टर बीए एमए करने के, आफ्टर बीकॉम एमकॉम के लिए जाते हैं, तो उसको कि आफ्टर ये आपने ज्वाइन किया है इसका हमें कॉलेज को प्रूफ देना पड़ेगा, तो ही डीवी पार्टनर विल एक्सेप्ट। अदरवाइज हम कुछ भी क्लेम करें दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। और क्यों एक्सेप्ट करें? अगर माना कि हम डीवी पार्टनर है तो हम क्यों एक्सेप्ट करें? सपोज वी आर द डीवी पार्टनर, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट इट? तो एक्सेप्ट करने के लिए कुछ तो आधार तो चाहिए, तो ये आधार हमें लेना पड़ेगा। माना कि स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला तो एडमिशन लेटर मिला होगा तो वो लेटर चाहिए। अगर एडमिशन फीस उसकी फीस भरी होगी तो उसकी रिसिप्ट भी हो सकती है। और अगर उसके आई कार्ड मिला होगा तो आई कार्ड भी दिखा सकते हैं। तो एसओपी में मेंशन किया ही है कि क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं एज ए प्रूफ। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वरना क्या होगा, एक बार स्टूडेंट्स कॉलेज से निकल गए फिर उसका कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल बनता है फॉर एवरी कॉलेज। तो लेकिन एक चीज बन सकती है हमारे पास, जब कॉलेज को स्टूडेंट्स को एमएससी में या तो एमए या तो एमकॉम या तो और भी कोर्स में प्रोग्राम में जो एडमिशन लेते हैं तो स्टूडेंट्स नीड ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं, तो एट दैट टाइम स्टूडेंट्स से हमें लेना है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन एक चीज है, आपको ये इसमें से कोई भी एक चीज की कॉपी हमें देनी पड़ेगी, या तो आईडी की, या तो आपको एडमिशन मेमो मिला है उसकी कॉपी दे दो, हाँ, या तो आपने फीस भरी है इसकी कॉपी दे दो। वी नीड, है ना, वी नीड इट, तो ही हम टीसी देंगे, तब तक टीसी नहीं देंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास एक रिकॉर्ड बनेगा। और किसी एक कोई काम सौंप दो, किसी आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर में, आईक्यूएसी में किसी एक को काम सौंप दो कि ये जो स्पेशल ये स्टूडेंट प्रोग्रेशन वाला जो ये पार्ट है वही संभालेंगे जो भी। और ये स्टूडेंट ब्रांच जो होती है कॉलेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के साथ जुड़े रहेंगे। तो इससे फायदा ये होता है कि एडमिशन जो स्टूडेंट ब्रांच विल कम्युनिकेट टू द पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर और इसके डेटा देते रहेंगे। तो इससे हमारे पास एक डेटा बनता जाएगा पूरा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वी मे फील द प्रॉब्लम। और हम दिखाएंगे कि हमारे पास तो टीसी ले गए, इतने स्टूडेंट टीसी ले गए, ये टीसी की बुक है, और टीसी की बुक हम डिग्री पार्टनर को दिखाएंगे बट दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। रिमेंबर एसओपी में बहुत मेंशन किया, क्लियरली मेंशन किया है कि देयर शुड बी आईडी कार्ड, स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड, जो भी नया प्रोग्राम में जो एडमिशन लिया उसका आईडी कार्ड चाहिए, या तो इसका एडमिशन मेमो चाहिए, तो फीस की रिसिप्ट चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स का कांटेक्ट होना बहुत जरूरी हो, और इसके लिए सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी को बोलना पड़ेगा कि अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहें।
तो ये प्लेसमेंट कब होता है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिले, और दूसरी बात उसका प्रोग्रेशन फर्दर स्टडी के लिए कहाँ जाते हैं उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन मिले, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरी बात वो भी काम में आएगी, वो एलमनाई भी हमारे लिए बनते हैं ना, ये स्टूडेंट जो हमारे बनते हैं एलमनाई बनते हैं, उसको फर्दर जब एलमनाई एसोसिएशन की मीटिंग होती है तब भी उसको हम इनवाइट में, एसोसिएशन कैन इनवाइट देम, मीटिंग में आ सकते हैं। ओके, ये जो पॉइंट मैंने रखे थे कि जो खास करके ये जो पॉइंट्स दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये बिफोर अप्लाइंग फॉर नेक असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन, ये आपके पास इतने आने वाले 6 महीने में या तो 1 साल में आपके पास होना ही चाहिए। these are the points which are necessary. Sufficient तो है ही नहीं, है ना, but these are necessary points. You should think over it. You should do some work for it. Okay. और जैसे कि मैं साहब बता रहे हैं, हम लोग यही बताते हैं कि जब भी ये सब चीजें जो हम बोल रहे हैं वो एवरीथिंग इज ऑन द वेबसाइट ऑफ द नेक। तो नेक का जो वेबसाइट जो है वो nec.gov.in पर है ही, है ना, वहां पर जाएंगे तो आप कर सकेंगे, ये है। तो वहां पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी कुछ भी नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो नेक का वेबसाइट वेब पेज होंगे, तो ये इसका होम पेज है, नेक का जो पोर्टल है उसका ये होम पेज है। तो होम पेज में सबसे ऊपर यहाँ पर लॉगिन दिखा है, तो लॉगिन में जब हम माउस ले जाएंगे तो वहाँ पर 2 चीज़ देख सकेंगे हम, HEI पोर्टल, HEI मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए पोर्टल है ये, और दूसरा बहुत पोर्टल यहाँ पर खुलता है एसेसर के लिए। तो हमारा काम तो HEI पोर्टल में जाना है, तो HEI पोर्टल पर जाएंगे, है ना, तो ये खुलेगा, ये पेज ऐसा दिखेगा हमारा HEI लॉगिन। तो यहाँ पर लॉगिन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके लिए तो ठीक है, ये बिल्कुल कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए यहाँ पर होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। और क्या क्या चीज दी गई है यहाँ पर, एंटर इंस्टीट्यूशनल ईमेल, इंस्टीट्यूशन का ईमेल देना है ना, पर्सनल ईमेल की बात नहीं हो रही है, कॉलेज का अपना जो ईमेल होता है वो देना है। यहाँ पर इसके लिए जो पासवर्ड जो मेंशन बनाया गया है वो पासवर्ड में एक तो स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, ये चीज खास याद रखें, अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पर कैप्चा डालेंगे तो लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ये अगर न्यू रजिस्टर्ड, हमें तो पहली बार जा रहे हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो क्या पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या, जब पहली बार रजिस्टर करेंगे तो ये पेज खुलेगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट HEI है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन। तो सबसे पहले क्या मांगा है, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी दिए गए हैं ना, क्वेश्चन मार्क, ये जब जिसने भी ये वेब पेज डिजाइन की है ना, तो उसको ये साथ में क्वेश्चन मार्क वाला ये पॉइंट यहाँ नहीं रखा ही है। क्यों, अगर किसी को पता नहीं है कि यहाँ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में क्या लिखना है, तो जस्ट यहाँ पर एरो ले जाएंगे माउस का, तो दिखाएंगे यहाँ इंस्टीट्यूशन का नाम क्या लिखना है, क्या, तो वही लिखना है जो हमने जो नाम रखा है ना। ये एक्चुअली ये पेज खुला है, ये पेज का पूरा ऊपर का हिस्सा है। तो कॉलेज का नाम, अफिलिएटेड कॉलेज में जो नाम है वही नाम लिखना है, नॉट थोड़ा डिफर नहीं होना चाहिए, वहां जो लिखा है वही नाम होना चाहिए। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन कौन सी टाइप की इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ लिखना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, GIA है ना, ग्रांटेड कॉलेजेस है, सेल्फ प्राइवेट कॉलेज कौन सी है वही है। और यहाँ पर है MHRD AISHE जो है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन का जो हमें ID देती है, उसका ID का यहाँ पर लिखना है, माना कि C कॉलेज के लिए C है तो C इसका नंबर होगा, तो ये इसका ID लिखना पड़ेगा हमें। इसका मतलब अगर कोई कॉलेज के पास AISHE ID नहीं है, इसका मतलब वो कॉलेज नेक में कभी अप्लाई नहीं कर सकेगी जब तक इसके पास ये ID नहीं आएगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल ईमेल ID, इंस्टीट्यूशन का ईमेल ID नहीं है तो बनाओ, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ID देना पड़ेगा। ये ID जो हमेशा के लिए उपयोग में रहेगा, जब भी कोई भी कम्युनिकेशन होगा, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, थ्रू दिस ईमेल ID ओनली, है ना। री एंटर द ईमेल ID वही देना है, और मोबाइल नंबर ऑफ द फॉर द कम्युनिकेशन के मोबाइल नंबर देते हैं, तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा, किसी कोऑर्डिनेटर का दे सकते हैं या तो प्रिंसिपल, जनरली प्रिंसिपल का देना चाहिए। ओके, पर दूसरी बात, आर यू प्रीवियसली एक्रीडिटेड और नॉट, यहाँ यस और नो दिखा सकते हैं। और इसके नीचे ये लिखा होता है कि आर यू प्रीवियसली एक्रीडिटेड, यस और नोट आया, इसके बाद नीचे एक चीज लिखी होती है, 1 2 3 पॉइंट दिए गए हैं।
Visit NAC website www.nac.gov.in for eligibility criteria, fee structure, grading pattern, etc. Next, provide official institutional email IDs and contact numbers only, है ना? ये important चीज है. All future communications from NAC shall be done with this email IDs and this contact number. जो भी मेंशन या यहाँ जो देंगे वही रहेगा, પછી बाद में फिर चेंज नहीं कर सकते हैं. एक चीज खास ध्यान रखें. This is important for us. रजिस्ट्रेशन डज नॉट इम्प्लाई, हम रजिस्टर कर लेते इसका मतलब ये नहीं होता है कि वी कॉलेज इज एलिजिबल फॉर असेसमेंट. कॉलेज एलिजिबल है ये मानना हमारा गलत होगा, इसके लिए हमारे एक ख्याल रखें. ओके, HEI पोर्टल की बात जब होती है तो ये जैसे कि साहब ने तो अब दिखाया है, गणेश साहब ने हमें दिखाया कि जब पोर्टल खुलता है तो कैसे दिखता है. नहीं तो जब खुल जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ऐसे डैशबोर्ड में तो यहाँ डैशबोर्ड लिखा होता है, फिर मैनेज IIQA, प्रिपेयर IIQA, मेक पेमेंट, सबमिट IIQA, न्यू IIQA. तो सबसे पहला जो होता है हमें जब अप्लाई करना है तब हमें IIQA जो है वो भरना पड़ेगा. IIQA का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, है ना. तो इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ देना पड़ता है. सबसे पहले क्या होना, प्रिपेयर करना पड़ता है. IIQA का जब फॉर्म खुलेगा वो भरना पड़ेगा, हमें जो डेटा मांगा है वो भरेंगे, प्रिपेयर करेंगे. इसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा. पेमेंट हमें पता है कितना है, पेमेंट कितना है 25,000 प्लस 18% GST, मतलब 29,500 रुपीज़. इसका पेमेंट करेंगे. उसके बाद सबमिट करेंगे, IIQA सबमिट होगा. सबमिट करने के बाद लेकिन सबमिट सब इसके बीच में एक स्टेज आता है, कुछ क्वेरी भी आती है, हो सकता है ना. तो वो क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, है ना. तो क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि कुछ उसको लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है. IIQA जब प्रिपेयर करते हैं और सबमिट करते हैं, एट द टाइम वी नीड टू प्रोवाइड सम डॉक्यूमेंट्स. माना कि कॉलेज कहते हैं कि कॉलेज के पास 12 भी है, तो हाँ कॉलेज कहती है हाँ 12 भी है, ठीक है. तो 12 भी है तो इसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो. अगर विच इंस्टीट्यूशन अफिलिएटेड विथ कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएशन में है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, तो एक काम करो, यूनिवर्सिटी के अफिलिएशन लेटर जो है इसको अपलोड करो. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया. क्यों? क्योंकि DVV पार्टनर जो है उसको इसके तरफ से जो SOP है वो तो क्लियरली SOP को फॉलो करता है, करना भी चाहिए. वो कहते हैं कि नहीं ये जो है मतलब ये जो अफिलिएशन है वो 5 साल पहले का नहीं है, लास्ट ईयर का होना चाहिए. हम कहते हैं कि नहीं ये तो हमारी कॉलेज अभी भी चल रही है, बहुत पुरानी कॉलेज है, 1945 से चल रही है कॉलेज, आज भी चल रही है. लेकिन हम दिखाते हैं कि अफिलिएशन लेटर जो है वो तो 10 साल पुराना ये नहीं चलेगा, 5 साल पुराना ये भी नहीं चलेगा, 3 साल पुराना वो भी नहीं चलेगा. वो लास्ट ईयर का ही मांगेंगे, करंट मांगेंगे, करंट दे दो. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर एप्लीकेशन, ओके, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर NAC, जो भी अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है वहां पर जाएं और उससे रिक्वेस्ट करें कि हमें लेटर चाहिए फॉर IIQA. तो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड, बस यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें किसके क्यों चाहिए वो थोड़ा लिख के देते हैं. तो रजिस्ट्रार जो है उसके जो इसमें जो एकेडमिक सेक्शन है वो लिख के दे देते हैं कि दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटी फॉर फॉलोइंग प्रोग्राम्स. उसमें प्रोग्राम भी मेंशन किए जाते हैं कौन कौन से प्रोग्राम के लिए ये अफिलिएशन हुआ है, क्योंकि इसके लिए इसके पीछे का भी कारण होता है कि अफिलिएटेड विथ फॉलोइंग प्रोग्राम. कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जो सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम चलाने के लिए होते हैं और इसके लिए अफिलिएशन एवरी ईयर देना पड़ता है. अफिलिएशन फॉर ईच ईयर, एवरी ईयर उसको अफिलिएशन लेना पड़ता है. स्पेशली फॉर फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम के लिए अफिलिएशन एवरी ईयर लेना पड़ता है. तो दैट इज व्हाई इट इज आस्क लेटेस्ट अफिलिएशन लेटर फ्रॉम द कॉलेज. ओके, और बीच में ये लेटेस्ट मांगेंगे, जो भी क्लैरिफिकेशन मांगे, क्लैरिफिकेशन क्लियर हो कर देंगे हम, उसके बाद सबमिट कर सकेंगे, सबमिट करेंगे. सबमिट करने के बाद हम देख पाएंगे कि ये क्लैरिफिकेशन आया था और क्लैरिफिकेशन का जवाब ने ये दिया था और इसके डॉक्यूमेंट ये थे, हम देख पाएंगे. तो ये ऐसे हो सकता है. इफ यू वांट टू सी ए पोर्टल, अगर हम पोर्टल देखना चाहते हैं तो भी हम देख सकते हैं. आई वुड लाइक टू शो यू लाइव. मैंने लाइव दिखाऊंगा. आई वुड लाइक टू शो यू लाइव. यस वी कैन शो. लेकिन कैसे देखते हैं पहले.
ओके, इसको ये मिस ये हेलो, ये शेयर होता है, ये पेज स्क्रीन में आता है, ये पेज खुलता है। हेलो Sir, right now it's not opening, sir. ओके, तो ये इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट मी शो यू। मुझे पहले बताइए मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू? क्योंकि आई एम नॉट यूज टू दिस, मैंने माइक्रोसॉफ्ट यूज का मैं बहुत यूज करता हूँ, लेकिन इससे जूम में कम यूज करता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। न्यू शेयर, अच्छा न्यू शेयर में जाता हूँ मैं। न्यू शेयर में आई थिंक आई शुड डू दिस स्क्रीन, नहीं ये वाला। इज दिस नाउ देख, अब दिखता है क्या? Yes, sir. हाँ Yes, अभी sir. दिख रहा है सर। ओके, देखिए अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक कॉलेज है जिसका मैं लाइव दिखा रहा हूँ, जहाँ पर असेसमेंट हो गया है। तो यहाँ पर जाएंगे, लॉगिन के ऊपर जब माउस ले जाएंगे तो वहाँ पर HEI पोर्टल है। HEI पोर्टल को जब मैं क्लिक करता हूँ ओके, यहाँ कॉलेज का नाम आ गया, इसका पासवर्ड जो सेव किया था वो भी आ गया। यहाँ पर कैप्चा डालना है, तो मैं कैप्चा डाल रहा हूँ RMM, है ना, 6। लॉगिन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर एक बार कैप्चा में शायद गलती हुई, 8P1L7। ओके, तो ऐसे पेज खुलेगा, कॉलेज का नाम यहाँ पर आएगा, AICTE IDI पे आएगा, कॉलेज का नाम यहाँ पर होगा। ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पर लिखा है मैनेज IIQA, मैनेज SSR, मैनेज DVV, मैनेज असेसमेंट, मैनेज अपील, मैनेज AQAR, रिपोर्ट्स, विजिट फीडबैक, मैनेज प्रोफाइल। हाँ ओके, जूम कर देना। ओके, मैनेज प्रोफाइल, डेस्क डिटेल्स, सपोर्ट, हेल्प डेस्क। यहाँ ये हेल्प डेस्क इसके लिए क्वेरीज के लिए होता है, नीचे गाइडलाइन और नीचे इसके नीचे FAQ होता है। तो एक चीज यहाँ पर होती है कि जब भी इसको लॉगिन करते हैं तो लास्ट कब लॉगिन किया गया था वो यहाँ पर दिखाएंगे। लास्ट लॉगिन कब हुआ था यहाँ पर मेंशन किया करते हैं, और लास्ट स्टेटस क्या था वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। IIQA का स्टेटस क्या था, पेमेंट का क्या था, वेरिफिकेशन भी, ये सब चीजें हम देख पाएंगे। कितने से इंस्टीट्यूशन टाइप, करंट साइकिल, प्रीवियस साइकिल, जो भी है ग्रेड, वो भी दिखाएंगे यहाँ पर। एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, ये है फॉर एग्जाम्पल, तो ये प्रिपेयर IIQA, जब इसको क्लिक करते हैं तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी। माना कि अब ये कॉलेज अब सेकंड से अब जाना चाहती है, देख पाएंगे। तो बेसिक ऊपर देखें, ऊपर का जो टैब है, बेसिक एलिजिबिलिटी, अफिलिएशन, कंप्लायंस, प्रोफाइल information, academic information and quality information. In this way there are 5 tabs, 1 2 3 4 5। लास्ट जो है वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन के लिए है। ये इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन पर क्वालिटी एश्योरेंस असेसमेंट फॉर कॉलेजेस, ओके, इंक्लूडिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस। कॉलेज का नाम आता है, ये एक्रेडिटेशन कर, फर्स्ट टाइम करते हैं तो एक्रेडिटेशन, सेकंड टाइम करेंगे तो रीअसेसमेंट आएगा। कॉलेज का नाम, साइकिल 1 2 जो भी है, कॉलेज का नाम यहाँ पर जो पहले था वही नाम आएगा। यहाँ पर जो देखो, अभी माना कि अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो फैच कर ली है यहाँ पर पुराने डेटा में से, लेकिन माना कि सिटी का नाम क्या है वो लिखना पड़ेगा, स्टेट या तो UT जो है लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें जब सीट या स्टेट डालेंगे तो स्टेट के हिसाब से सिटी वी कैन फाइंड द सीट, डिस्ट्रिक्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ असेसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं, जो पुराना हो तो डाल सकते हैं, मतलब पहले हुआ है तो दिखा सकते हैं ना, ऐसे ही। फिर इसको सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद हम नेक्स्ट में जा सकते हैं। दूसरा जो है वो एफिलिएशन कंप्लायंस है। एफिलिएशन कंप्लायंस, where the college is affiliated, yes or not, हम कि yes कहते हैं तो then name of the affiliating universities, okay, and एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, तो यूनिवर्सिटीज भी हो सकती है, एंड द स्टेट एंड द स्टेट्स इन विच द यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड, तो स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज नेम भी लिखना पड़ेगा, ओके। Is the college offering programs recognized by any
स्टेचुटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो SRA जिसको कहते हैं, सच एज AICT है, UGC इज वन ऑफ द स्टेचुटरी बॉडीज। तो माना कि AICT के प्रोग्राम चलाते हैं, NCT के प्रोग्राम चलाते हैं, माना कि टीचर्स के BEd के लिए पढ़ाते हैं तो NCT होता है, MCI है मेडिकल के लिए, DCI है, BCI है, INC है, आयुष है, RCI है, CCIM है, ये सब जो स्टेचुटरी बॉडीज है इसके बारे में मांगते हैं। तो यस कहेंगे तो हम यहाँ पर, तो इसके लिए हमें इसका आधार देना पड़ेगा। ये प्रोफाइल इंफॉर्मेशन जब आती है, नेम ऑफ द, ओके, इंडिकेट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज चेंज सिंस द लास्ट साइकिल। यस, इफ हाँ कहेंगे तो इसका नाम एंटर न्यू नेम, अदरवाइज तो इसके लिए नया नाम लिखा है तो इसके लिए अब कोई अपलोड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा हमें। फिर नेम ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड जो हेड होते हैं इसका नाम यहाँ पर लिखना पड़ता है हमें। तो हेड जो है ना, इसको हम क्लिक करेंगे देख पाएंगे क्या क्या है, क्या इसकी वो तो है मिस्टर मिसिस वो लिखना इसके लिए है वो। डेजिग्नेशन, वो किसका डेजिग्नेशन क्या है वो यहाँ पर डेजिग्नेशन, ये स्क्रॉल कर सकते हैं। डेजिग्नेशन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इंचार्ज है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर इंचार्ज है, जो भी है वो लिखना पड़ेगा हमें। डज द कॉलेज फंक्शन फ्रॉम ओन कैंपस, खुद का कैंपस है या दूसरे कैंपस, किसी और के कैंपस में कॉलेज चलती है, इसके बारे में देना पड़ेगा हमें इन्फॉर्मेशन। कॉलेज का एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये पिन कोड, फैक्स, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो है जो भी है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ईमेल ID देना पड़ेगा। ऑल्टरनेट फैकल्टी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इसके अलावा भी हम इसके अलावा भी कुछ फैकल्टी डिटेल देना चाहते हैं कॉन्टेक्ट के लिए ये जरूरी होता है, तो हम यहाँ दे सकते हैं, उसके भी इंफॉर्मेशन में दे सकते हैं यहाँ पर। फिर नेचर ऑफ द कॉलेज, ये जो कॉलेज हमारी जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, ग्रांटेड है, सेल्फ फाइनेंसिंग, ओके, या कंस्टिट्यूट है, जो भी है इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। आर यू स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉलेज, कोई स्पेसिफिक टाइप कॉलेज है, अगर नहीं है तो किसी नहीं है, अगर है तो ये बताएंगे यहाँ कौन सी है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, अलाइड हेल्थ साइंस है, टीचर एजुकेशन, डेंटल है, ऐसे में जो भी है वो दिखा सकते हैं हम। Is the institution recognized under section 2F and UGC and the date of recognition of UGC under 2F? तो इसके लिए अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ लिखा है अपलोड डॉक्यूमेंट, है ना। ये 2F के लिए, नीचे 12B के लिए होगा, 2F के लिए, 12B के लिए, दोनों के लिए एक दोनों का डॉक्यूमेंट एक ही डॉक्यूमेंट होता है तो भी हमें अपलोड तो करना ही पड़ता है। Is the institution recognized as an autonomous college? अगर है तो नहीं है तो नहीं है, जो भी है। यहाँ CPE है जो सेंटर फॉर प्रोटेक्शन एक्सेलेंस, या कोई वो स्टेटस है या नहीं है वो भी दिखा सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें भरनी पड़ेगी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ अपलोडिंग डाटा MHRD वेबसाइट फॉर ऑल इंडिया सर्वे एजुकेशन, तो AISC में हम डाटा जब हमने फिल किया था ना, अपलोड किया था, तो उसकी कौन सी डेट थी, लास्ट कौन सी डेट थी, है ना, ये डेट हमें याद रखनी पड़ेगी। बिफोर अप्लाइंग इन नेक, ये डेट हमें हमारे पास होनी चाहिए। और हमने जो किया था इसका हमें, है ना, AISC का जो रिपोर्ट जो है ना लास्ट ईयर लास्ट का, वो हमें यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। फिर अटैच सर्टिफिकेशन बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैविंग कंप्लाइड विथ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? जी, तो इस तरीके से हमें ಇವರೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆದರು, पंडित विद्यासागर यार। तो इस तरीके से हम IIQA में इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। और एक लास्ट में ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೋನಿತ್ಪುರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ। इसके बाद आता है एकेडमिक इंफॉर्मेशन, ಶಾಂತಿಪುರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಇವಾಗ? इसमें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, कितने प्रोग्राम है ऑफर करते हैं, PG के कितने प्रोग्राम है, ये हम प्रोग्राम यहाँ दिखाना है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। और यहाँ पर ये है डिपार्टमेंट कितना है, डिपार्टमेंट वाइज हमें ऐड करते जाना है और डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, कौन सा प्रोग्राम है ना, ये कौन सी स्टेचुटरी बॉडी है, ये भी हमें इसके बारे में लिखना होता है। और इसके हमें इसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये है डिटेल, तो स्टाफ डिटेल भी यहाँ पर देनी पड़ती है, कैटेगरीज। तो ये है IIQA जो हम देख रहे हैं। तो IIQA में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए पहले से ये तैयार रखनी है बिफोर अप्लाइंग नेट, है ना। और लास्ट जो है और मात्र ಬೇಕಾದರ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ। ये है क्वालिटी इंफॉर्मेशन। खासकर में यहाँ पर तो अभी तो कुछ नहीं है, पहले यहाँ हुआ करता था। इसमें क्या हुआ करता था, AQR कितने सबमिट हुए हैं, यहाँ पर मांगी जाती है।
तो ये जो चीजें हैं, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ತರಲೆ ये जो चीजें हैं, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. तो हमें बिफोर अप्लाइंग नेट IIQA शुड टेक केयर ऑफ दिस, है ना, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है. तो बस यहाँ तक रखते हैं हम आज का काम. मैं यहाँ तक रखता हूँ अपना. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं वो भी, और बाकी तो पूरा करते हैं यहाँ. मेरा जो बिफोर अप्लाइंग नेट व्हाट IIQA शुड डू, इसके बारे में मैंने कुछ बताया है. और इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी. और गणेश सर भी है, उसको भी पूछ सकते हैं. वैसे गणेश सर, हाँ, हेलो जी. थैंक यू सर. सॉरी फॉर ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था, ये इसके लिए आई एम सॉरी फॉर इट. अब बंद कर लेते. It is a technology, it happens, sir. I owe my heartfelt gratitude for the valuable presence and expertise, sir. The only source for knowledge is experience. We have learned this from you. I would like to invite Dr. Dilip Jena on behalf of organizing team for formal vote of thanks. Thank you, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, sir. Okay, thank you, ma'am. First of all, before I go for my assigned job, I would like to tender my apology for all sort of technical facts and coming. Our sincere gratitude goes out to Dr. Ganesh Hegde for accepting our invitation and guiding us with his updated knowledge pertaining to NAAC's assessment and accreditation in an illustrious manner. Thank you, Hegde sir. I need to mention my deep sense of appreciation to Dr. Narendra Chotalia for his eloquence and intellectual depth. Thank you, sir, for being with us and for your effective presentation. A special mention to our respectable principal, Dr. Anjan Naidu. Being the catalyst, you have inspired us to do our best and stand as a pillar of support always before us in accomplishing all activities. I also want to thank principals of Menti colleges, coordinators, faculties of Menti colleges, and faculties of various colleges across the nation. My special thanks go to Dr. Dilip Chaudhary, the coordinator of UGC Paramars scheme and the real architect behind this particular event. I also extend my heartfelt thanks to Dr. Sheetal Banerjee for anchoring this webinar in a very impressive manner. It would be an injustice if I do not mention the direct and indirect support of the teaching and non-teaching staff of Dhote Bandhu Science College, Gondia. So thank you all, and with the permission of chair, now I declare that this virtual event is over. Thank you all, and thank you all the distinguished guests. Thank you. Thanks to all the academicians, research scholars, and delegates for the patient's participation. Let's move together and start a new beginning. Because every ending creates a new space for new aspirations, new dreams, new tasks, and togetherness. Now it's time to take leave for now. Stay digital, stay connected. Good day.